We'll be beginning with the chapter atmosphere. So देखो, atmosphere is a complex mixture of different gases, water vapor and dust particles that envelop the earth from all sides. So about 99% of the earth's total mass is concentrated within 32 kilometers of the earth's surface. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ये वाला जो डेटा पॉइंट है, this you should be knowing कि 99% of the total mass is concentrated within 32 kilometers of the earth's surface. ठीक है, and it is essential for life. ये बिल्कुल जनरल चीज़ें बताई हुई हैं, बस ये कर लो 30 and 99. So 99 is a multiple of 33. ठीक है, एंड इवन 30 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 99 और 30 कर लो 32 की जगह. ठीक है, so this can be remembered easily. Now we'll be doing these questions after we have read the theory. ठीक है, so composition of the atmosphere देख लेते हैं. First of all we have atmospheric gases, है ना. तो atmospheric gases में क्या क्या है मेन? We have nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and ozone. So nitrogen forms the majority, that is around 78% of the entire gases. ठीक है, whereas बाकी जो है we have oxygen at around 21%, argon 0.93, then carbon dioxide is very less at around 0.03. ठीक है, और इसके अलावा ओजोन भी है थोड़ा बहुत, है ना. उसको बाद में वील सी कि कौन सी लेयर में आता है ओजोन. ठीक है, एंड देयर इज़ वाटर वेपर एज वेल, है ना. वाटर वेपर कॉन्स्टिट्यूट्स रेंज, मतलब इट रेंजेस फ्रॉम 0% to 4% डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लेस दैट इट इज़. ठीक है, तो 0% डेजर्ट वगैरह में रहेगा एंड 4% मॉइस्चर विल बी एट, मतलब 4% of water vapor will be at wet tropical regions. ठीक है, so how will you remember these percentages? देखो इससे रहेगा 78%, this is a multiple of 3. ठीक है, all of these are multiples of 3. ठीक है, तो 78 is a multiple of 3, है ना. उसके अलावा 21 is a multiple of 3. Then argon, that is 0.9%, that is also a multiple of 3, and carbon dioxide 0.03%, again it is a multiple of 3. ठीक है, तो चारों आर मल्टीपल्स ऑफ 3 ओनली. ठीक है, और इसमें इसके बारे में भी देख लेते हैं. सो नाइट्रोजन एज एन इनर्ट गैस एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? इट सपोर्ट्स कंबशन एंड रेस्पिरेशन, and marine phytoplanktons and photosynthetic bacteria produce about 50% of the world's oxygen. So this is an important data point that you need to know, कि 50% of world's oxygen is being produced by these phytoplanktons and photosynthetic bacteria. ठीक है, now well oxygenated water contains far less oxygen than atmospheric air. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट शुड बी नोन कि ऑक्सीजन है वाटर में, बट इट विल कंटेन, इवन इफ there is a lot of oxygen in water, even then it will be lower than the amount of oxygen that atmospheric air can carry. ठीक है, and this is common sense because air में क्या gases हैं, gases की oxygen is also a gas, then therefore it is easier to dissolve in air. Whereas when it comes to water, then dissolving gases in water will be comparatively difficult. ठीक है, then argon का पता चल गया ना, 0.93% inert gas. नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज़ यूज इन फोटोसिंथेसिस, है ना. ग्रीन हाउस गैस है. इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू incoming shortwave solar radiations, but it absorbs the outgoing long wave terrestrial radiations, and this results in the greenhouse effect. ठीक है, so it traps radiations and heat, thus maintaining Earth's average temperature. तो क्या होगा, जो सन से आ रहा है, I'll show you, ये सन है, सपोज सन से जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो शॉर्ट वेव्स हैं.
ठीक है। और ये फिर पहुंच जाएंगे अर्थ के ऊपर। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में डज नॉट स्टॉप दीज शॉर्ट वेव्स, शॉर्ट रेडिएशंस फ्रॉम कमिंग इन, शॉर्ट वेव रेडिएशंस। ठीक है। वेराज जो हमारे अर्थ से रिफ्लेक्ट होके जाते हैं दोज आर जनरली लॉन्ग वेव रेडिएशंस। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहुँच गया रेडिएशन, अभी यहाँ पे से रिफ्लेक्ट होके जो जाएगा ये छोटा छोटा यहाँ पे पहुँच गया शॉर्ट वेव। नाउ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो रहेगा दैट विल, ये ये इसको जो ब्लू वाली लेयर है दैट वोंट अलाउ इट टू गो आउटसाइड। ठीक है। तो वो इट वोंट बी एबल टू go outside the atmosphere, and that is why हीट विल बी कॉट ओवर हियर ओनली, है ना, ट्रैप हो जाएगा पूरा रेडिएशन। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके ऑल ऑफ दैट रेडिएशन हैज़ गॉटन ट्रैप्ड। ठीक है। तो यहाँ पे वही दिखाया है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दिस हैपेंस। फोटोसिंथेसिस नहीं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसे ही काम करता है। ठीक है। तो लॉन्ग वेव रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ आर नॉट able to get out of the atmosphere। ठीक है। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो सन से एस है सन में, है ना, सन का एस एंड शॉर्ट का एस आर कॉमन, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि सन गिव्स आउट शॉर्ट वेव रेडिएशंस, वेयर एज जो लैंड है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड गिव्स अवे एल से लॉन्ग वेव रेडिएशंस। ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर द टू। ठीक है। नाउ ये पढ़ लिया। अभी ओजोन क्या दिया, इट इज़ बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस एंड अब्जॉर्ब्स सोलर अल्ट्रावायलेट लाइट रेज। नेक्स्ट है वाटर वेपर। वाटर वेपर वेरीज फ्रॉम 0% to 4%, ये पता पढ़ लिया था। देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वेरिएबल कंपोनेंट। ठीक है। एंड इट इज़ concentrated in the lower atmosphere, and it is a primary absorber of infrared radiation। ठीक है। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि जो नियर इंफ्रारेड रेडिएशन है वो वाटर वेपर अब्जॉर्ब कर लेता है ना। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस कि इंफ्रारेड, बस ऐसे ही करके रिमेंबर कर लो कि वाटर वेपर अब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है। इट डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड एंड फॉर्म्स and from equator to the pole. So with altitude also the amount of water vapor in the atmosphere will decrease, and if you move towards the pole from the equator then also the amount of water vapor in the atmosphere will decrease। ठीक है। बिकॉज पोल्स पे क्या है, डेजर्ट एरिया है पूरा, एंटार्क्टिका वगैरह इज कंसिडर्ड टू बी अ कोल्ड डेजर्ट। ठीक है। डेजर्ट में वाटर वेपर का कंटेंट विल बी लो, मॉइस्चर कंटेंट विल बी लो। ठीक है। एंड इक्वेटर पे तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह का आपको पता ही है, एवरी डे देर इज रेन, है ना। सो एवरी आफ्टरनून देर इज रेन्स देर। ठीक है। सो वाटर वेपर कंटेंट विल बी वेरी हाई, है ना। Then it acts like a blanket, allowing the earth neither to become too cold nor too hot। So ठीक है। तो it is water vapor which acts as a blanket। ठीक है। Then dust particles के बारे में देख लेते हैं। They are microscopic solids which help in condensation। ठीक है। So these are the things which are important for forming clouds। ठीक है। They also scatter light, है ना। और दे आर कंसिडर्ड टू बी, मतलब हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में, ड्यू टू द ड्राई विंड्स विच आर प्रेजेंट देयर। ठीक है। ट्रॉपिकल में नहीं है वहाँ पे क्योंकि गीला गीला रहता है पूरा, बट सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में वी हैव अ लॉट ऑफ डेजर्ट्स एज वेल, और एरिड रीजन्स काफ़ी सारे हैं, दैट इज़ वाई डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो द हाइएस्ट ओवर देयर, है ना। एंड स्पार्स वेजिटेशन जहाँ पे भी है, स्टेबल एयर इन हाई प्रेशर बेल्ट्स जो भी हैं, हाई प्रेशर बेल्ट्स इज रिलेटेड टू डेजर्ट एरियाज। ठीक है। देन इक्वेटोरियल रीजन्स में बिकॉज देयर इज़ हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल देयर फोर देयर इजंट एज मच डस्ट, तो डस्ट पूरा वॉश आउट हो जाता है। पोलर रीजन में देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइस एंड स्नो कवर, दैट इज़ वाई देयर इज़ नो डस्ट जनरेशन एज सच। ठीक है।
तो बस वहीं पे रहता है डस्ट, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में। सो ये पढ़ने पे वी विल जस्ट डू दीज क्वेश्चंस नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दिस वाज आस्क्ड इन 2025। Statement 1 है, the amount of dust particles in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar regions। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में सब, हाँ दिस इज करेक्ट, अभी जस्ट पढ़ा हमने, ठीक है। फिर सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, ये गलत दिया है, ठीक है। सो द आंसर विल बी ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो सी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द planet Earth, consider the following statements. Rainforests produce more oxygen than the than that produced by oceans. So ये गलत हो गया, because we had just read कि जो हमारा marine phytoplanktons हैं and photosynthetic bacteria है, they produce about 50% of the world's oxygen, ठीक है। So this statement will be wrong. Then क्या दिया है, marine phytoplanktons and photosynthetic bacteria produce about 50% of the world's oxygen, so this is correct, ठीक है। नेक्स्ट है, वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। ये भी अभी हमने पढ़ा था, है ना। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू वाटर वेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So it is a gas, the amount of which decreases with altitude. वाटर वेपर इज अ गैस बोल रहे हैं, देखो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स, तो ये गलत हो गया, पोल्स पे नहीं, इक्वेटर पे इट इज द मैक्सिमम, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स में। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो आंसर विल बी वन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी, सो वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, वी विल बी डूइंग दीज आफ्टर वी रीड द थ्योरी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना, उनके बारे में देख लेते हैं। सो दिस इज अ डायग्राम शोइंग द वेरियस लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीसोस्फेयर है, देन थर्मोस्फेयर है ना, एंड एक्सोस्फेयर इज द लास्ट वन, ठीक है, TSMTE, ठीक है। और हाँ, बस इतना लर्न कर लेते हैं, उसके बाद वील रीड द थ्योरी एंड देन कम बैक टू द डायग्राम। सो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है, TSMTE, इसको ऐसे लर्न कर लो। TSMTE, ठीक है। तो इसका हाइट कितना रहता है ट्रोपोस्फेयर का, एवरेज हाइट इज़ अराउंड 13 किलोमीटर्स एंड इट इज़ 8 किलोमीटर्स एट द पोल्स एंड 18 किलोमीटर्स एट द इक्वेटर, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। फिर अभी हम सबका हाइट पहले कंपेयर कर लेते हैं, सो दैट इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर। फिर 13 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पे, है ना, दिस इज़ अप टू 13 किलोमीटर्स मान लो एवरेज, ठीक है। उसके बाद में वी हैव द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर कब तक है, अप टू 50 किलोमीटर्स। सो यहाँ पे 13 तक ये है, बाकी फिर बचा हुआ दिस विल बी अप टिल 50 किलोमीटर्स, ठीक है। देन वी हैव द मीसोस्फेयर दैट इज़ अप टू 80 किलोमीटर्स, ठीक है, ये रहेगा 80 किलोमीटर्स तक, है ना। एंड देन यू हैव thermosphere that is up to 400 kilometers,
तो ये 400 तक है, एंड लास्ट में एग्जोस्फेयर इज अबव 400, ठीक है। तो अबव 400 विल बी आर एग्जोस्फेयर, ठीक है। तो ये दिया है, एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस, दिस इज फेयरली सिंपल टू रिमेंबर। नहीं तो यू कैन यूज़ के सारे 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो इसको अराउंड आप वो ले लीजिए, यू कैन टेक दिस एज 12, है ना, यू कैन टेक दिस एज 12 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर ये इसको 50 की जगह 40 ले लो, ये 80 है, ठीक है, और ये 80 से 400 है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अबव 400। सो ऑल ऑफ दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 4, यहाँ मैं लिख देती हूँ, सेकेंड, मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर ट्रेंड। सो इन केस ऑफ ट्रोपोस्फेयर व्हाट हैपेंस इज दैट, देखो आपको समझ आ गया ना, सारे 4 के मल्टीपल्स हैं, देयरफॉर इट विल बी इजी टू रिमेंबर। ट्रोपोस्फेयर कब तक है, 12 किलोमीटर, देन स्ट्रेटोस्फेयर 40 मान लो, ठीक है। बिकॉज देर इज, ऐसे नहीं है कि 50 किलोमीटर पे एक लाइन बनी हुई है कि इसके बाद बस मीजोस्फेयर है, ऐसे नहीं होता। दिस इज़ अ जनरल थोड़ा सा अंदाज़न दिया है, ठीक है। तो 40 मान लो इसको, देन मीसोस्फेयर इज अप टू 80, है ना, 40 इंटू 2 इज 80। देन उसके बाद में वी हैव द थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर इज अप टू 400। देन लास्ट में एग्जोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, है ना, एंड लास्ट में वी हैव द एग्जोस्फेयर अबव 400, ठीक है। नाउ वी विल बी लुकिंग एट द टेम्परेचर ट्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें क्या होगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड। तो ये हमें वैसे भी पता है, फॉर एग्जांपल राइट नाउ इफ़ यू आर एट प्लेन्स एंड यू गो टू अ हिली रीजन, देन टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है। तो हिली रीजन में जाने से प्राइमरीली क्या चीज़ हुई, योर ऑल्टीट्यूड हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। सो एनी हिली रीजन यू गो टू द टेम्परेचर विल बी लोअर, ठीक है। सो द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर में ऐसा होता है। एंड लैप्स रेट कितना है, नॉर्मल लैप्स रेट ट्रोपोस्फेयर में इट इज़ अराउंड 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। सो इफ़ यू मूव 6.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर, आई एम सॉरी, if you go 1 kilometer above the ground then the temperature will drop by 6.5 degree celsius, ठीक है। तो इसको लर्न करना पड़ेगा हमको, 6 डिग्रीज तो काफ़ी हो जाता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एट कोई भी प्लेन रीजन ले लो, कहीं भी प्लेन्स में आप, गैंजेटिक प्लेन में आप बैठे हैं कहीं पे, वहाँ पे आपका टेम्परेचर रहेगा 18 डिग्री के आसपास, एंड इफ़ यू गो टू स्लाइटली हिली रीजन्स देन द टेम्परेचर विल बी अराउंड 11.5 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे करके लर्न कर लो, या 6.5 को ऐसे ही लर्न कर लो आप, कि अच्छा ऐसे भी लर्न कर सकते हो, 65 ईयर्स की एज पे पीपल वांट टू गो टू हिली रीजन्स, है ना, वो ऐसे संन्यास लेके हिली रीजन्स में चले जाते हैं ना, वैसा करके कुछ, यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। सो ट्रोपोस्फेयर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर के किलोमीटर, है ना। देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर। सो स्ट्रेटोस्फेयर के लिए क्या होगा, द टेम्परेचर विल इंक्रीज विद हाइट, ठीक है। सो इसमें अपोजिट चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा रहता है कि ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीजेस विद हाइट है, स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीजेस विद हाइट, फिर मीसोस्फेयर में फिर से डिक्रीजेस विद हाइट है, देन थर्मोस्फेयर में इट इंक्रीजेस विद हाइट, एंड लास्ट में एक्सोस्फेयर में देर इज हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसा रहेगा। और स्पेस में कितना टेम्परेचर रहता है, इट इज़ अराउंड -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 3 या 4 केल्विन के आसपास रहता है। लेट मी चेक अगेन वंस अगेन, शायद एज फार एज आई नो स्पेस का टेम्परेचर, हाँ, इट इज़ अराउंड वही -270 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज़ 2.7 केल्विन के आसपास, ठीक है। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ स्पेस, दिस इज समथिंग विच यू शुड बी नोइंग, ठीक है। और यहाँ पे आप याद रखना कि ऑल्टरनेट हो रहा है, तो ट्रोपोस्फेयर में
डिक्रीज हो रहा है, देन स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज, मीसोस्फेयर में अगेन डिक्रीज एंड थर्मोस्फेयर में थर्मो मतलब इंक्रीज, थर्मल कुछ रहेगा, सो इट विल इंक्रीज रैपिडली विद हाइट। एंड एक्सोस्फेयर में भी देर इज स्लाइटली हायर टेम्परेचर। ठीक है। नाउ ये हो गया। अभी क्या हो रहा है, हाँ इसका देख लेते हैं। इंक्रीजेज विद हाइट हो गया। मीजोस्फेयर में क्या है, डिक्रीजेज विद हाइट। एंड मीजोस्फेयर इज कंसिडर्ड टू बी द कोल्डेस्ट लेयर, ठीक है, बिकॉज उसके बाद इंक्रीज ही हो रहा है ना। एंड द टेम्परेचर रीचेज टू अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू शुड बी नोइंग कि मीजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर, ठीक है। एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। सो चलो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच लेयर। सो ट्रोपोस्फेयर के केस में क्या है, द थिकनेस इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर, है ना, बिकॉज वहाँ पे द गैसेस हैव एक्सपैंडेड, तो थोड़ा सा दे ऑक्यूपाई अ लार्जर एरिया ड्यू टू द हीट, ठीक है। सो हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स, वही बोला है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, इट कंटेन्स डस्ट एंड वाटर वेपर, ठीक है। And all weather phenomena occur here, तो rain, storms, clouds, ये सब they occur in the troposphere, ठीक है। एंड ट्रोपोपॉज क्या है, इट इज़ द बाउंड्री विद स्ट्रेटोस्फेयर वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देखो, ट्रोपोपॉज इज अ बाउंड्री विद द स्ट्रेटोस्फेयर और यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इट विल बी अराउंड -80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड -45 डिग्री सेल्सियस ओवर द पोल्स, ठीक है। सो पोल्स पे कम टेम्परे मतलब कम नहीं, it is warmer at the poles as compared to the equator. And why is it so? Because equator का जो tropopause है, it will be at a higher distance, 18 kilometers के आसपास रहेगा, whereas in case of poles it will be around 8 kilometers only, ठीक है। So due to the altitude, the difference is there, ठीक है। अदरवाइज यू शुड जस्ट रिमेंबर कि -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मीसोस्फेयर में, ट्रोपोपॉज में कितना है, -80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो 20 डिग्रीज का फर्क है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट हियर। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्राटोस्फेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट कंटेन्स द ओजोन लेयर, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्राटोस्फेयर, ठीक है। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स और वेदर एंड इट इज़ आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है। सो स्ट्राटोस्फेयर में देर आर नो क्लाउड्स एज सच, बहुत कम है, इफ एट ऑल देयर आर देयर एनी, इफ देयर आर एनी क्लाउड्स, एंड दैट इज़ वाई जो जेट एयरक्राफ्ट्स हैं दे आर फ्लोन ओवर हेयर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, और ये कहाँ पे स्टार्ट होता है, इट इज़ अबव, हमने क्या करा था, 4 के मल्टीपल्स लिए थे, है ना, तो 40 किलोमीटर्स तक है। सो फ्रॉम 12 किलोमीटर्स टू 40 किलोमीटर्स वी हैव द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मीसोस्फेयर में मीटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर अपॉन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, ठीक है। तो मीसो से मीटियोर इसे लिंक कर लो, मीसो, ठीक है। एंड यहाँ पे दिस इज ऑल्सो द कोल्डेस्ट लेयर, इट रीचेज टू अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एक नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स होते हैं यहाँ पे, सो नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स विच आर द हाईएस्ट ऑन द अर्थ फॉर्म हियर, ठीक है। सो डू रिमेंबर दैट नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स जो हैं विच आर कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट ऑन द अर्थ, दे आर प्रेजेंट इन मीसोस्फेयर, ठीक है। एक बार लेट मी चेक नॉक्टिल्यूसेंट। So these are extremely thin clouds, very thin wispy clouds, and वही वहाँ पे मिलते हैं, मीसोस्फेयर में मिलते हैं, ठीक है। एंड हाउ विल यू रिमेंबर दैट दे आर फाउंड इन मीसोस्फेयर, देखो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पता है ना।
सो ए बी सी डी ई एफ जी पता है, फिर एल एम एन, एम के बाद में एन आता है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि एम से मीसोस्फेयर, उसमें मिलेगा हमको एन से नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। ठीक है, एंड इसका नाम कैसे लर्न करेंगे, नॉक्टिल्यूसेंट, लूसेंट से आप ल्यूमिनेट करके लर्न कर सकते हो, तो ये बिल्कुल ऐसे थिन लाइट, और उन पे भी ऐसे लाइट पड़ती है तो दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो वैसे करके लर्न कर लो, लूसेंट से लाइट से लिंक कर लो। ठीक है, सो दीज आर वेरी थिन लेयर ऑफ क्लाउड्स एंड वेरी प्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोस्फेयर। सो थर्मोस्फेयर में क्या टेम्परेचर ट्रेंड है, इट इंक्रीजेज रैपिडली विद हाइट। ठीक है, so thermosphere contains electrically charged particles known as ions, है ना, ये ions होते हैं काफ़ी सारे electrically charged particles, they reflect the radio waves back to the earth। ठीक है, इसलिए इसको ionosphere भी बोलते हैं, and thus it enables wireless communication। Thermosphere और ionosphere is also the site of auroras, एंड औरोरा पता होगा आपको, पोलर रीजन्स में दिखता है, ऐसे ग्रीन कलर की लाइट होती है ना। एंड वाई आर auroras formed due to the interaction of solar flares with the ionosphere, है ना, जो सोलर फ्लेयर होता है वो आयनोस्फेयर में जो आयन्स हैं उनके साथ व्हेन इट रिएक्ट्स नहीं, व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद देम, तो क्या होगा, ये आयन्स दे मूव टू हायर, अपना जो इनका ऑर्बिट होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, सो दे मूव टू हायर ऑर्बिट ड्यू टू गेन एज दे गेन एनर्जी फ्रॉम द सोलर फ्लेयर्स, है ना, एंड when once they move to a higher orbit they एनर्जी वगैरह रिलीज होती है, एंड दैट थिंग वी सी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ auroras, वी हैव borealis एंड australis। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आयनोस्फेयर है उसमें देर आर अ लॉट ऑफ satellites as well। ठीक है, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू शुड बी नोन, है ना। तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिस होता है, सॉरी, हाँ, ऑस्ट्रेलिस को आप ऑस्ट्रेलिया से कर लो लिंक। सो ऑस्ट्रेलिस इज प्रेजेंट इन सर्दर्न हेमिस्फेयर, सर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑस्ट्रेलिस दिखते हैं हमको। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिंक कर लो बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, देन यू हैव बोरियालिस, बोरियालिस कहाँ पे है, इट इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो आर्कटिक रीजन में। ठीक है, नाउ तो ये ऑरोरास हो गया, एंड डू रिमेंबर दैट मैनी सैटेलाइट्स आर फाउंड इन द आयनोस्फेयर। ठीक है, देन एक्सोस्फेयर, तो दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, और ये बस ऐसे स्पेस आ ही गया, ऐसा रहता है कि ऑलमोस्ट स्पेस से इक्विवेलेंट है ये। ठीक है, इट ग्रेजुअली मर्जेस विद द आउटर स्पेस, तो वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द इंटायर हार्ड, हमने लेयर्स के बारे में पढ़ लिया है ना। नाउ वी लुक एट द क्वेश्चंस व्हिच वर गिवन हियर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements। Statement 1 है, thickness of the troposphere at the equator is much higher as compared to the poles। So thickness of troposphere, this is a correct statement, है ना, 18 किलोमीटर रहता है यहाँ पे इक्वेटर पे, एंड इट इज़ अराउंड 8 किलोमीटर एट द पोल्स। ना उसके अलावा क्या रहेगा, we look at the second statement, at the equator heat is transported to great heights by strong convectional currents। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। तो एट इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन, हाँ सही स्टेटमेंट है। ठीक है, एंड दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सो ऑप्शन आंसर शुड बी ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट. सो क्लाउडी नाइट में क्या होगा? Clouds will absorb the radiation released from the Earth's surface. नहीं, this is not the reason. Next है clouds reflect back the Earth's radiation. This is the answer. ठीक है, तो क्या होगा? Clouds will reflect back the Earth's radiation, तो it will be quite warm. ठीक है, तो कंडेंसेशन टेम्परेचर्स नहीं रीच हो पाएंगे. That is why dew drops will not be formed. Okay, so the answer will be option B. Then, in the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus clouds, a cirrus cloud thinning technique, and the injection of sulfate aerosol into the atmosphere? So, all of this will be done for creating reducing global warming. ठीक है, artificial rain इससे नहीं होता है. It is global warming के लिए यूज़ करते हैं इसको. ठीक है, cirrus thinning टेक्निक और cirrus क्लाउड को थिन करने से क्या होगा? द लॉन्ग वेव रेडिएशंस विल बी, मतलब थोड़े बहुत दे विल बी एबल टू एस्केप द एटमॉस्फेयर. ठीक है. सेकेंडली, सल्फेट एरोसोल को भी बाय आर दे ट्राइंग टू इंजेक्ट इट इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर so that reflectivity बढ़ जाए. So whatever short wave radiations are coming from the sun, they get reflected back into the space. ठीक है, so both of these techniques are used to reduce global warming. ठीक है. So now we'll start with atmospheric thermodynamics, insulation and heat budget. Atmospheric thermodynamics में क्या होगा? It involves the study of heat exchange between the sun, earth and the atmosphere, which will in turn determine the different weather patterns and global climate. ठीक है. Now the earth maintains a constant temperature by ensuring that the energy which it receives, जिसको इंसोलेशन बोलते हैं, इट इज़ बैलेंस्ड बाय द एनर्जी इट एमिट्स. ठीक है, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज हीट बजट. हीट बजट में क्या हो रहा है? इट विल बी इंश्योर्ड कि जितना अर्थ एनर्जी रिसीव कर रही है, दैट इज़ द अमाउंट विच इट एमिट्स एज वेल. ठीक है, इससे द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड बढ़ता या डिक्रीज नहीं होता है. ठीक है. Now, these questions we'll do them once we are done with the theory. So, first of all, we'll look at incoming solar radiations, which are also known as insolation. ठीक है. So, nature क्या है? They are received primarily in short wavelengths. है ना? As I told you earlier, also मैंने एक डायग्राम में बना के बताया था कि यहाँ पे था, पिछले वाले में था, मे बी. So I had shown that by a diagram that incoming radiations are short wave radiations, whereas long wave radiations are the ones which are emitted by the terrestrial ecosystem. ठीक है, लैंड emits the long wave radiations. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, it permits the short wave radiations to come in. However, it prevents the long wave radiations from going out. ठीक है. सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को विल कॉल दैट इंसोलेशन. अब नेचर क्या है? इट इज़ रिसीव्ड प्राइमरली इन शॉर्ट वेवलेंथ्स हो गया. देन फैक्टर्स इन, हाँ, ये आप ट्राई टू रिमेंबर व्हाट शॉर्ट वेवलेंथ्स एक्चुअली मीन्स. इट इज़ फ्रॉम 0.39 to 0.76 माइक्रोमीटर्स. ठीक है, सो दैट विल बी नोन एज अ शॉर्ट वेवलेंथ. नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंसोलेशन. सो इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, है ना. तो क्या क्या होगा? एक तो रोटेशन ऑफ द अर्थ, बिकॉज इट कॉजेज डे और नाइट, है ना. तो डे पे देर इज लार्जर अमाउंट ऑफ इंसोलेशन एज कम्पेयर टू नाइट. ठीक है. देन यू हैव एंगल ऑफ सन रेज. सो एंगल ऑफ सन रेज से भी डिपेंड करता है. जो स्लांटिंग रेज रहेंगी, दे विल बी स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया, तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन विल बी लेस, इंटेंसिटी विल बी लेसर. ठीक है, और एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगा उनका एज कम्पेयर टू डायरेक्ट रेज. ठीक है. देन लेंथ ऑफ द डे. सो इफ द लेंथ ऑफ द डे इज लॉन्गर, देन मोर इंसुलेशन कैन बी रिसीव्ड. फिर एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी, दैट मीन्स नंबर अमाउंट ऑफ क्लाउड्स, water vapor and dust which is present in the atmosphere. So what these things do is that they either reflect or absorb
or scattered the radiation. ठीक है. सो और जहाँ पे ये सब नहीं है, क्लाउड्स नहीं है, वाटर वेपर नहीं है, देयर द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन विल बी लार्जर. ठीक है. फॉर एग्जांपल सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में दे रिसीव मैक्सिमम इंसुलेशन बिकॉज मॉइस्चर नहीं है तो क्लाउड्स भी नहीं है, है ना. मॉइस्चर तो होता नहीं है डेजर्ट्स में ज़्यादा कुछ. सो क्लाउड्स भी नहीं है ज़्यादा, सो डायरेक्ट सनलाइट रीचेस देयर. ठीक है. नाउ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड. सो जो साउथ फेसिंग स्लोप्स हैं, दे रिसीव मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू द नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स. ठीक है. एंड दैट इज़ वन रीज़न वाई insulation will be higher over there. फिर land heats and cools faster than water due to its lower specific heat capacity, है ना. and that also affects the amount of insulation. फिर sunspot आपको पता है, this refers to cooler areas present on the sun's surface. ठीक है. cooler areas on sun's surface. ठीक है. कोरोना भी बोलते हैं. So if the sunspot number of sunspots increases, then that means lower. अच्छा, इंक्रीज इन इंसुलेशन हो जाएगा उससे. ठीक है. फिर नेक्स्ट है लैटिट्यूड. जस्ट लेट मी चेक व्हाई इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सनस्पॉट्स. सनस्पॉट्स. ठीक है. ये कूलर नहीं होते हैं, सो दिस इज रॉन्ग वट एवर आई हैव सेड, है ना. they are actually not cooler but rather they are having higher amount of magnetic flux. ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि कूलर एरियाज हैं या देयर इज नो सच थिंग हैपनिंग देयर. द ओनली थिंग विच इज different over here is that they will be having more amount of magnetic flux, and if the number of sunspots increases, then the insulation will also increase. ठीक है. Now जो लैटिट्यूडनल एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखते थे इंसुलेशन का. सो इक्वेटर रिसीव्स नियरली 5 times मोर इंसुलेशन दैन पोलर रीजन्स. ठीक है. एंड वाई इज इट सो? बिकॉज ये देखो, ये फॉर एग्जांपल दिस इज द अर्थ. तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी इक्वेटर पे, वेर एज पोल्स पे इट विल हैव टू ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस टू रीच इट. ठीक है. So that is why the equator receives 5 times more insolation than polar regions. ठीक है. Now the equator receives lesser less insolation than tropics. अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं. I'll just mark this. I have not fully understood this statement. Next है subtropical deserts. They have the highest insolation and हाँ, because they have minimal cloud cover, whereas equator पे you might be knowing that there are frequent rains which occur. ठीक है. and that is one reason why the insolation drops. ठीक है. so जो tropical subtropical areas हैं deserts वाले, they will receive more insolation. Now जो same latitude पे अगर हम देख रहे हैं, then insolation will be higher over the continents as compared to the seas. This is also extremely important. So if you're looking at the same latitude, यहाँ दो जगहों पे if you are trying to match, then जहाँ पे भी equator है वहाँ पे the amount of insolation will be higher. ठीक है. Then winter season में जो middle and higher latitudes रहेंगे, they will receive lesser insolation. So this is again common sense only, है ना. So next देखते हैं temporal variation. Insolation during January 3rd, that is perihelion, will be higher than that on July 4th, which is aphelion. So बताइए हमें, this is perihelion is when the earth is closer to the sun, है ना. ये वाला portion, this is if this is the sun, then this will be perihelion position और ये रहेगा aphelion position.
ठीक है, तो यहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू यहाँ वाला पोर्शन। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंशन्ड ओवर हियर। नेक्स्ट देखते हैं अल्बीडो। सो अल्बीडो क्या होता है? It is the proportion of solar radiation which is reflected back to the space without heating the surface. So this is extremely important कि जो भी reflect back करते हैं that will be known as the albedo. ठीक है, so as you might be knowing जो atmosphere है it is transparent to the incoming short wave radiations, है ना, हमने लर्न करा था सन से short wave radiations आते हैं SS and land से there we have long wave radiations, ठीक है, तो LL, ठीक है, so that is how we had learned it, है ना। so atmosphere transparent to incoming radiations but it is opaque to outgoing long wave radiations, ठीक है, we already know this concept. then earth का जो albedo है it is approximately 30 to 35 units of incoming radiation is reflected back, ठीक है, so that is what काउंट्स एज द अल्बीडो, ठीक है, तो जो भी रेडिएशन आ रहा है और वो एकदम से रिफ्लेक्ट हो बैक करते जा रहा है अर्थ, दैट विल बी काउंटेड एज द अल्बीडो, ठीक है, तो अराउंड 30 to 35% ऑफ वॉट एवर इज इनकमिंग विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, और फिर इस पे देर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द अल्बीडो. फर्स्ट ऑफ ऑल you have the cloud impact. So if you have low thick clouds in a region, है ना, stratus clouds जो होते हैं ना वो है, then they will be having a very high albedo, ठीक है, so they will be reflecting a lot of the incoming solar radiations. और अगर बहुत हाई थिन क्लाउड्स हैं सिरस वगैरह, है ना, वो और even the noticulent clouds which are present in mesosphere, all of those will transmit incoming radiations, they do not reflect as much. बट जो नीचे जो थिक क्लाउड्स होते हैं ना स्ट्रेटस वगैरह, they reflect back the radiations and thus they have higher albedo, ठीक है, so this is important. next ये जो higher thin clouds हैं they'll just transmit the incoming radiation but trap the outgoing infrared heat, whereas जो low thick clouds हैं वो आने ही नहीं देंगे, है ना। अभी we look at the order of albedo. So first of all fresh snow, उसका सबसे ज़्यादा अल्बीडो कंसिडर करते हैं, देन ओशनिक आइस, फिर सैंड, फिर ग्रीन ग्रास, फॉरेस्ट, ओपन ओशन एंड चारकोल. सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर. अभी आई हेल्प यू रिमेंबर दिस. सो देखो फ्रेश स्नो हमको ये वैसे कॉमनली नोन फैक्ट है कि जो स्नो होता है और आइस होता है they have very good albedo, and since the snow at in the arctic regions and antarctica they are melting, that is why हमारा वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज major portion of the sunlight insolation which was earlier reflected by the back by the snow and the ice is no longer being reflected back, ठीक है, तो ये हो गया फ्रेश स्नो एंड आइस हैव वेरी हाई अल्बीडो. इसके बाद में आप ऐसे इमेजिन करिए कि आउट ऑफ डेजर्ट में सैंड मिलता है ना, आउट ऑफ डेजर्ट एंड सम ग्रीन एरियाज, इट इज़ द डेजर्ट विच विल बी हैविंग हायर अल्बीडो, ठीक है, सो दिस इज़ सरप्राइजिंग बट ट्राई टू रिमेंबर इन दिस मैनर. फिर इनफैक्ट डेजर्ट का ग्रीन ग्रास और फॉरेस्ट से ज़्यादा है. सो हाउ डू यू रिमेंबर दिस? देखो फॉरेस्ट में देयर इज़ अ लॉट ऑफ मतलब डार्कनेस ज़्यादा होती है ना, जहाँ पर भी डार्कनेस होता है और डार्क कलर्स होते हैं दे अब्जॉर्ब लाइट वेल, ठीक है, सो दे वोंट बी रिफ्लेक्टिंग दैट लाइट बैक, ठीक है, तो ट्राई टू रिमेंबर दिस वाया डार्क कलर कि जहाँ पे भी डार्कनेस ज़्यादा है डार्क कलर ज़्यादा है दैट मीन्स दे विल अब्जॉर्ब द लाइट इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग इट बैक, ठीक है, ऐसे कलर्स में भी होता है वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स द लाइट बैक वेरी नाइसली whereas black color absorbs the light, ठीक है, so similar thing is happening here.
है ना। सैंड हैज़ लाइटर कलर तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। ग्रीन ग्रास फॉरेस्ट डार्कर इन कलर, दे विल absorb the light. देन ओपन ओशन इज ऑलमोस्ट मतलब ब्लैक कलर का होता है, बहुत डार्क डार्क ब्लू ब्लैक कलर, है ना। सो इट विल बी, it won't reflect as much light back. And then charcoal तो पता ही है, it is completely black in color, so it will absorb that light instead of reflecting, ठीक है। So this is the order of albedo. Now we'll be looking at the heating and cooling of atmosphere. So atmosphere is heated mainly by outgoing long wave terrestrial radiation compared to incoming shortwave solar radiation, ठीक है। ये आपको पता ही है ना। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो आराम से आ भी जाता है, और जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है दे आर नॉट एबल टू लीव इजीली। नेक्स्ट कंडक्शन देखते हैं। कंडक्शन रेफर्स टू हीट ट्रांसफर बाय अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन वार्म लैंड एंड कूलर एयर, सो इट हीट्स द लोअर एटमोसफेयर, ठीक है। तो ये तो पता है कंडक्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। देन कन्वेक्शन इज ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी वर्टिकल हीट ट्रांसफर, सो वार्म एयर विल राइज एक्सपैंड एंड स्प्रेड हीट एंड देन इट विल कूल डाउन एंड सिंक, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ कन्वेक्शन करंट and it is confined only to the troposphere, so this is extremely important to know, है ना। देन यू हैव एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या होगा, इट रेफर्स टू हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शन में वर्टिकल हीट ट्रांसफर होगा, whereas एडवेक्शन में हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर होगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द एयर, ठीक है। नाउ इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर सिग्निफिकेंट इन मिडल लैटिट्यूड्स। सो मिडल लैटिट्यूड्स में it has higher significance, and why is it so, because वहाँ पे pressure differences ज़्यादा होते हैं, है ना। and pressure differences causes winds, and winds is the major manner in which advection takes place, ठीक है। so जैसे लू होता है नॉर्थ इंडिया में, and other daily weather changes, all of these are examples of advection, ठीक है। now we have terrestrial radiation. सो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में क्या होगा, सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी हीटिंग सोर्स ऑफ एटमोसफेयर, और ये वही है जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस आते हैं ना, विच आर गिवन बैक बाय द अर्थ इनटू द एटमोसफेयर, है ना। सो दीज आर द प्राइमरी हीटिंग सोर्स ऑफ द एटमोसफेयर। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, दे अब्जॉर्ब द लॉन्ग वेव रेडिएशन, है ना। एंड दिस लॉन्ग वेव रेडिएशन इज इंफ्रारेड, सो दिस ऑल्सो यू शुड बी नोइंग कि ये इंफ्रारेड होता है, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, ठीक है। देन विदाउट द एटमोसफेयर्स एबिलिटी टू ट्रैप हीट, द अर्थ's surface temperature would remain well below the freezing point everywhere, ठीक है। ये तो आपको समझ आ रहा है कि इट इज़ ओनली ड्यू टू द एटमोसफेयर एंड इट्स एबिलिटी टू prevent the long wave radiations from escaping that the earth can maintain its temperature, otherwise हमारा पूरा freeze हो रहा होता अर्थ, ठीक है। and that is why the other planets which do not have atmosphere, they have very low temperatures, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हीट बजट। सो हीट बजट में क्या होगा, बेसिकली वी विल ट्राई टू कैलकुलेट कि कितना अमाउंट ऑफ हीट इज़ कमिंग इनसाइड द अर्थ, इनसाइड मतलब कि अपना पूरा यहाँ तक अर्थ तक, एंड हाउ मच इज़ लिविंग। सो आइडियली बोथ ऑफ देम शुड इक्वेट, है ना, कि जितना आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, ठीक है। आइडियली इक्वेट होना चाहिए सो दैट द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। हाउएवर एज यू माइट बी नोइंग ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, so that means the amount of heat which is being retained is more than what is being reflected back and given back, ठीक है। सो इसको देख लेते हैं हीट बजट को।
So wait a second. Hmm. We'll first of all look at the diagram. So for example, if the incoming solar radiation is 100%, ठीक है, उसमें से 47% will be absorbed by the ocean and the land, ठीक है, and रिफ्लेक्ट बैक कितना होगा, अराउंड 30% विल बी रिफ्लेक्टेड बैक. वो अलग अलग जगहों से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. एक तो स्पेस से स्कैटर हो जाएगा, देन some of it will be reflected back by the clouds, then some of it will be reflected by the surface. ठीक है, ये हो गया 30% रिफ्लेक्ट बैक हो गया, 47% हैज़ बीन अब्जॉर्ब बाय द ओशन एंड लैंड. बाकी जो 23% है बचा हुआ, दैट विल बी अब्जॉर्ब बाय द एयर. एयर, वाटर, ओजोन, क्लाउड्स, ये सब अब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक है, अब ये हो गया इनकमिंग पोर्शन. नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द आउटगोइंग वन. सो आउटगोइंग वन में क्या होगा, द ये जो लैंड है, इट विल बी गिविंग आउट टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, है ना, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस. तो उसको देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन इज, कंडक्शन के थ्रू 7% ऑफ दैट विल बी लॉस्ट. ठीक है, कंडक्शन. फिर एक लेटेंट हीट के फॉर्म में 24% ऑफ द हीट विल बी लॉस्ट, नहीं है ये, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द एटमोसफेयर. ठीक है, उसके बाद में ये जो क्लाउड्स वगैरह हैं, clouds, ozone, water, and other gases in the atmosphere, they will absorb nearly 6% of the long wave radiations. ठीक है, बाकी जो 10% of the long wave radiations हैं वो they'll escape into the space. ठीक है, अभी जो क्लाउड्स में आया है उसमें से 20% will be radiated back from the clouds और 40% will be radiated from water, ozone and carbon dioxide. ठीक है, सो इफ़ यू ऐड ऑल ऑफ दिस इट विल कम आउट टू बी 100%. देखो 40, 50, 60, 70, 70, 30 और एक यहाँ पे 3% ज़्यादा हो रहा है. 3 नहीं 7% ज़्यादा हो रहा है. वेट अ सेकेंड, इसको पढ़ के देख लेते हैं. बट दिस इज़ द जनरल आइडिया एंड यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट परसेंटेजेस. बस आपको ये वाला थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यहाँ पे 30% ऑफ द थिंग इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक, whereas 47% will be absorbed by the ocean and the land. ठीक है, these things you should be knowing, मतलब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि 30% तो याद ही रख लो आप लोग, है ना, और 47 एंड 23% इफ पॉसिबल यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं, हीट बजट इम्बैलेंस एंड ह्यूमन स्ट्रेस. ठीक है, सो रेडिएटिव फोर्सिंग का मतलब क्या होता है. रेडिएटिव फोर्सिंग refers to the change in net downward radiative flux at top of atmosphere from factors altering the energy balance. ठीक है, तो जो नेट डाउनवर्ड रेडिएटिव फ्लक्स है उसमें कुछ भी अगर चेंज हो रहा है at the top of the atmosphere, it will be known as radiative forcing. मतलब it refers to the difference between energy entering and leaving the earth's atmosphere. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये ऊपर वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये वाला definition is better. Radiative forcing refers to the difference between energy entering and leaving the earth's atmosphere, and it is called so because the difference in energy can force changes in earth's climate. ठीक है, तो यही है कि difference between energy entering and leaving the earth's atmosphere.
नेक्स्ट है नो फोर्सिंग. सो इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन इज जनरली बैलेंस्ड. अगर नो फोर्सिंग का सिचुएशन है, that means that the incoming and outgoing radiations are balanced. Then there is a situation of positive forcing and negative forcing as well. पॉजिटिव फोर्सिंग के केस में क्या होगा, अर्थ विल बी गेनिंग एनर्जी. ठीक है, तो मतलब वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग टाइप. एंड दिस इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन एट्सेट्रा. एंड नेगेटिव फोर्सिंग विल हैपन व्हेन अर्थ लूजेस एनर्जी. ठीक है, सो कूलिंग विच इज़ कॉज्ड बाय एरोसॉल एंड इवन वोल्केनोज. अगर लार्ज वोल्केनिक इरप्शन होता है, देन अ लॉट ऑफ डेब्री भी नहीं, डस्ट पार्टिकल्स विल एंटर द एटमोसफेयर. ठीक है, तो डस्ट क्लाउड्स बन जाते हैं, उसकी वजह से albedo increases and the amount of solar radiation coming to the ground decreases. So that is something which will cause negative forcing, negative radiative forcing. ठीक है, and it is this is used to compare the influence of different drivers on climate change. ठीक है, and a baseline year is used to measure changes in reflect in radiative forcing. And IPCC uses 1750, the year 1750, as the baseline year to measure changes in this radiative forcing. ठीक है, तो how will you remember the year? देखो, radiative फोर्सिंग, इसको ऐसे आप लिंक कर लो. 1750s में इंडिया में क्या हो रहा था, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लिंक कर सकते हैं. 1756 में वी हैड द बैटल ऑफ प्लासी, है ना. तो प्लासी, बक्सर, ऑल ऑफ दिस, इसमें हो क्या रहा था, द ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू फोर्स देमसेल्व्स अपॉन अस, है ना. दे वर ट्राइंग टू गेन कंट्रोल ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज, एडमिनिस्ट्रेटिव तो नहीं इतना, बट दीवानी राइट्स वगैरह पे दे वर ट्राइंग टू गेट कंट्रोल ओवर दोज, है ना. दे वर फोर्सिंग देमसेल्व्स ओवर इंडियन पॉपुलेशन. ठीक है, जो इंडियन कॉन्टिनेंट में लोग रह रहे थे उसके ऊपर. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस के 1750 मतलब फोर्सिंग वाला एरिया टाइम है. मतलब 1750 को यू कैन ऑल्सो लिंक इट विद रेडियो एक्टिव रेडिएटिव फोर्सिंग. ठीक है, नेक्स्ट है वेट बल्ब टेम्परेचर, देख लेते हैं. सो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर विच इज़ अचीवेबल बाय वाटर इवापोरेशन ऑन थर्मोमीटर. ठीक है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब लोएस्ट टेम्परेचर अचीवेबल बाय इवापोरेशन ऑफ वाटर ऑन थर्मोमीटर. एंड इसको इवापोरेटिव कूलिंग लिमिट भी बोलते हैं. ठीक है, सो एक होता है ह्यूमन लिथालिटी थ्रेशोल्ड. तो इसमें क्या होगा, इट इज़ सस्टेन्ड एट अराउंड 31 to 35 डिग्री सेल्सियस, कि ह्यूमन इससे ज़्यादा कोल्ड ना हो जाए, है ना. बिकॉज क्या होता है, स्वेट फेल्स एट हाई ह्यूमिडिटी एरियाज में. स्वेट इज़ नॉट एबल टू कूल डाउन द बॉडी, बिकॉज क्या होगा, स्वेट तो आएगा, बट what will happen is that it won't get evaporated. ठीक है, so it won't be able to cool down the body. ठीक है, एंड ये ह्यूमन लिथैलिटी थ्रेशोल्ड वो टेम्परेचर रेंज बताता है कि what temperature range is suitable for humans. So it ranges from 31 to 35 degrees Celsius, or anything greater than 37 degrees Celsius will be fatal for even healthy people. ठीक है, एंड दिस इज़ रेलिवेंट फॉर हीट वेव्स विच आर प्रेजेंट. मतलब इंडिया में आते रहते हैं ना हीट वेव्स, उससे रिलेटेड एक ये टर्मिनोलॉजी है, ह्यूमन लिथैलिटी थ्रेशोल्ड. ठीक है, एंड यू माइट बी नोइंग, ये ह्यूमन टेम्परेचर का तो पता ही होगा कि कितना होता है ना. इट इज़ अराउंड दिस रेंज ओनली, 31 to 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, नेक्स्ट है वेट बल्ब टेम्परेचर.
combines air temperature and humidity to indicate the lowest temperature air can reach through evaporation of water. ठीक है, सो इवापोरेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये सपोज वाटर ड्रॉपलेट्स है, इट विल टेक अप लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को इट विल अब्सॉर्ब इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू गैस, गैस मतलब वाटर वेपर, ठीक है. सो दिस लेटेंट हीट विच इज अब्सॉर्ब, इट इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू द कूलिंग डाउन ऑफ द सराउंडिंग्स, ठीक है. तो एक तो नॉर्मल टेम्परेचर ही जो भी रहेगा रूम में, अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव दिस थिंग कि ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके हिसाब से यू कैन डिटरमाइन कि कितना, इफ फॉर एग्जांपल इफ द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई then evaporation rate will be slow because there is no space for more evaporation, ठीक है. सो दैट इज़ वाई अगर ऐसा है तो मतलब लेटेंट हीट भी अब्जॉर्ब नहीं हो रही है ना, दैट मीन्स द टेम्परेचर विल बी हायर, ठीक है. एंड इफ द एयर इज़ वेरी ड्राई देन दैट मीन्स दैट टेम्परेचर इवन इफ ज़्यादा टेम्परेचर हो, बट अगर लेटेंट हीट को भी हम लोग अकाउंट करेंगे देन द टेम्परेचर विल बी स्लाइटली लोअर, ठीक है. दैट विल बी नोन एज द, ये वेट बल्ब टेम्परेचर इसी से रिलेटेड है, इसी टर्म, ये कंसेप्ट से, ठीक है. सो वेट बल्ब टेम्परेचर विल बी कंबाइनिंग एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी to indicate the lowest temperature which the air can reach through evaporation of water, ठीक है. now at critical threshold of 35 degrees Celsius the wet bulb temperature, नहीं, at critical threshold of 35 degrees Celsius wet bulb temperature the sweat cannot evaporate effectively through sweating and evaporation, thus it cannot regulate the internal body temperature and this may result in life threatening conditions even for healthy individuals and animals, ठीक है. तो ये वही बता रहे हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनका मेन, वन ऑफ द मेजर वेज इन विच दे रेगुलेट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ वाया स्वेटिंग, ठीक है. सो वंस दे स्वेट, तो ये जो स्वेट ड्रॉपलेट्स हैं दे आर अ फॉर्म ऑफ वाटर, देन व्हाट विल हैपन, this water will on the body will absorb latent heat from the body and turn into water vapor, ठीक है. बट अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो ये नहीं कर पाएगा वो, है ना, वो स्वेट वहीं पे रह जाएगा, सो इट वोंट बी अब्जॉर्बिंग एनी हीट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है. एंड इफ द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रीचेस 35 डिग्री सेल्सियस एंड मोर, अगर उससे भी ज़्यादा हो गया देन इट बिकम्स unhealthy and very fatal, in fact even fatal for human beings, ठीक है. ये at the critical threshold of 35 degrees Celsius the sweat won't evaporate effectively. Now the World Bank has warned that India could become world's one of the first places in the world where wet bulb temperatures routinely exceed 35 degrees Celsius, ठीक है. So it is very unhealthy if we look at it from that way. और ये हीट वेव्स जब होते हैं then you might have read the news के किसी का डेथ हो गया है ना ड्यू टू द हीट वेव, ठीक है. इट इज़ प्राइमरली हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली, ठीक है. सो बस आपको इसमें वही वेट, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो यू नीड टू रिमेंबर वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है. इट कंबाइंस air temperature and humidity to indicate the lowest temperature which the air can reach through evaporation of water, ठीक है. now you have heat index. so heat index क्या, उसको apparent temperature भी बोलते हैं. so it combines air temperature and relative humidity in order to come to a figure which gives us how much the temperature is, मतलब कितना feel like है, मतलब यहाँ पे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा अगर अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस है, बट अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है देन हमारा फील लाइक टेम्परेचर विल ऑल्सो बी लेस, ठीक है. तो ये एक ऐसे मेट्रिक है इन ऑर्डर टू
give a figure which will tell us कि कितना feel like temperature कितना है. ठीक है. So इसमें इतना ही दिया है. Heat indexes, it combines air temperature and relative humidity for feels like heat in shade. ठीक है. थ्रेशोल्ड क्या है? 27 to 32 डिग्री सेल्सियस और डेंजर क्या हो जाता है 39 to 51 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सट्रीम विल बी 52 डिग्री सेल्सियस और मोर. ठीक है. 52 डिग्री सेल्सियस पे देर इज़ अ रिस्क ऑफ हाइपरथर्मिया, है ना. हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया में देर इज़ अ डिफरेंस. सो आई टेल यू वेट अ सेकेंड. एक सेकेंड. हाइपरथर्मिया. So hypothermia will be वही when the body temperature rises a lot. तो 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है ना, that will cause body failure, है ना. And that is known as hyperthermia. And hypothermia will be when the body temperature becomes very low. बहुत ठंडा हो जाता है, वो ठंड में होता है. ठीक है. So this is important, this thing you should be knowing. ठीक है. तो हीट इंडेक्स अपेरेंट टेम्परेचर को बोल रहे हैं, है ना. ये अच्छे से एक्सप्लेन करा है. हीट इंडेक्स मतलब अपेरेंट टेम्परेचर कि कितना, जैसे इवन दो द एयर टेम्परेचर इज़ हायर, इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ लोअर देन द टेम्परेचर विल फील टू बी लेस. तो फील लाइक टेम्परेचर कितना है वो बताता है ये हीट इंडेक्स. ठीक है. नेक्स्ट यू हैव यूनिवर्सल थर्मल क्लाइमेट इंडेक्स. तो ये अगर आप देखोगे ना तो हीट इंडेक्स और वेट बल्ब टेम्परेचर थोड़ा सा सिमिलर लगेगा इनका जो डेफिनेशन है. जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या बोला था? Wet bulb temperature combines air temperature and humidity to indicate the lowest temperature air can reach through evaporation of water. ठीक है. यहाँ पे lowest temperature बताएगा which the air can reach. Whereas in the case of heat index it will tell कि क्या चल रहा है अभी temperature. What is the feel like temperature right now. ठीक है. This is the difference. Wet bulb में lowest बताने का कोशिश करता है वो, है ना. Lowest temperature which the air can reach. Whereas यहाँ पे जो apparent टेम्परेचर अभी है दैट इज़ व्हाट विल बी टोल्ड. ठीक है. नेक्स्ट है हाँ ये डू रिमेंबर द थ्रेशोल्ड्स. ठीक है. यहाँ का क्या क्रिटिकल थ्रेशोल्ड था वेट बल्ब टेम्परेचर का? इट वॉज 35 डिग्री सेल्सियस. whereas in this case ideal threshold is between 27 to 32 डिग्री सेल्सियस और डेंजर सिचुएशन कब रहेगा 39 to 51, है ना. एंड देन यू हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा 52 एंड मोर. ठीक है. नेक्स्ट है यूनिवर्सल थर्मल क्लाइमेट इंडेक्स. सो यूनिवर्सल थर्मल क्लाइमेट इंडेक्स क्या है? इट इज़ द इक्विवेलेंट टेम्परेचर विच फैक्टर्स एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेडिएंट हीट, क्लोथिंग और एक्टिविटी. सो जैसे यहाँ पे ओनली ह्यूमिडिटी और एयर टेम्परेचर को अकाउंट कर रहे थे, यहाँ पे देयर विल बी सो मैनी अदर फैक्टर्स एज वेल विच विल बी अकाउंटेड फॉर. ठीक है. सो इट विल बी द इक्विवेलेंट टेम्परेचर विच फैक्टर्स एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेडिएंट हीट एंड क्लोथिंग और एक्टिविटी. ठीक है. डू रिमेंबर दीज फैक्टर्स. और इसको हम लोग यूनिवर्सल थर्मल क्लाइमेट इंडेक्स बोलते हैं. ठीक है. सो ये भी पढ़ लिया हमने. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट टेम्परेचर. सो टेम्परेचर क्या रहेगा? द इंटरैक्शन ऑफ इंसुलेशन विद द एटमॉस्फेयर, that interaction of insulation with the atmosphere and the earth's surface creates heat which is measured in the form of temperature. तो ये हमको पता ही है ना. and it is the measurement in degrees of how hot or cold a thing or place is. ठीक है.
तो उसको ही टेम्परेचर बोलेंगे. इट इज़ द मेजरमेंट इन डिग्रीज ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड द थिंग इज. यहाँ ऊपर कुछ क्वेश्चंस बचे हैं क्या? लेट मी चेक. हाँ, दीज आर द क्वेश्चन विच आर लेफ्ट. वील फर्स्ट डू दीज एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो देखो, consider the following statements. Without the atmosphere, the temperature would be well below freezing point everywhere on the Earth's surface. So this is a correct statement. ठीक है, हमने we have already read this also. Atmosphere is the one which is trapping the long wave radiations, and that is why heat is being मतलब trapped. ठीक है, the heat absorbed and trapped by the atmosphere maintains our planet's average temperature. ठीक है, so this is also correct. Then atmosphere's gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping radiation. So this is also correct. ठीक है, so according to me all of these are correct. 1, 2 and 3. क्या है आंसर? क्या है? Let me check. हाँ, 1 का C है, that is all 3 statements here are correct. ठीक है, next question है the World Bank warned that India could become one of the world's first places where wet bulb temperatures routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statements best reflects the implication of the above said report? So क्या क्या दिया है? Peninsular India will most likely suffer from flooding. अच्छा, implication की बात हो रही है कि इससे अगर वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीनली एक्सीड्स 35 डिग्री सेल्सियस तो इससे क्या हो सकता है? Peninsular India will most likely suffer from flooding, tropical cyclones and droughts. So देखो, ये वेट बल्ब टेम्परेचर का इम्प्लीकेशन मेरे को तो नहीं लग रहा है ना? दिस डज नॉट सीम टू बी द एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन. इसका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा? ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ के ऊपर. इवन प्लांट्स का तो पता नहीं. हाँ, इवन प्लांट्स में भी. ठीक है, so the survival of animals, including humans, will be affected as shedding of their body heat through perspiration becomes difficult. This seems likely. This seems more likely. ठीक है, ये so according to me the answer should be option B. Let me check once. हाँ, the answer is second वाले का B है. Only the second statement is correct. Now if we look retrospectively, अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे फिर से, देखो, Peninsular India will most likely suffer from flooding, tropical cyclones and droughts. देखो, एक तो यहाँ सब कुछ डाल दिया and most likely it will suffer from this. This clearly looks like a statement जो बनाया गया है. ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आपको कहीं बुक्स में नॉर्मली नहीं मिलेगा. बुक्स में या किसी रिपोर्ट में यू वॉन्ट फाइंड सच अ जेनरिक तो नहीं. ये ऐसे है कि सब कुछ डाल दिया, हाँ ये भी गलत हो जाएगा हमारे साथ, ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स नॉर्मली कहीं पे भी किसी भी रिपोर्ट में या इवन इफ़ यू रीड NCRTs, इफ़ यू रीड newspapers, you do not find such statements there. ठीक है, so if you are able to identify such statements, for example even if you did not have the knowledge about the theory but you are able to identify कि यार ये तो बनाया हुआ स्टेटमेंट लग रहा है, it looks like a made up statement. ठीक है, एक होता है बनाया हुआ स्टेटमेंट, एक होता है कि उठा के लाए हैं किसी से कहीं जगह से. ये है कि उठा के लाए हैं स्टेटमेंट कहीं पे, दे हैव read it somewhere in some report or something and directly written the statement down. Whereas there will be जो wrong statements रहेंगे, those statements will be the one which have been made up. ठीक है, they will look like they have been made up, and if you are able to detect that then it will be helpful for you in the examination. ठीक है, तो ऐसे जो made up statements होते हैं ना, try to keep an eye on them कि कैसे दिख रहे हैं. देखो, इसमें पता चल रहा है वैसे पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफ़र फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्रॉट्स. सब कुछ एक जगह डाल दिया है ना. सो इट लुक्स लाइक अ मेड अप स्टेटमेंट, देयरफॉर इट विल बी रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 है द एटमोसफेयर इज हीटेड मोर
बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये गलत है, हमें पता है कि इट इज़ द अदर वे राउंड, है ना। एंड मोर ओवर व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे भी जहाँ पे भी मोर लेस कुछ भी दिया हो, जनरली व्हाट यूपीएससी हैज अ टेंडेंसी टू डू दैट, इट स्वैप्स। ठीक है, तो लेस को मोर लिख देगा, मोर को लेस लिख देगा। ठीक है, कहीं पे भी ऐसे ऑपोजिट वर्ड्स का ऑप्शन है, देन यूपीएससी विल स्वैप द वर्ड। देन स्टेटमेंट टू क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. So this is a correct statement. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। सो वील लुक एट द, हाँ ये सही बोला है हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फोर, विद रेफरेंस टू अर्थ्स एटमोसफेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो क्या क्या दिया है, the total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times that received at the poles. So देखो पहले ही जहाँ पे भी there is a figure mentioned, वो उसका wrong होने के chances are very high because it is the easiest statement to make wrong. देखो for example imagine that UPSC has to make this question paper, है ना, so they have to create wrong statements which look like they are correct statements, है ना। एक तो correct statement रहेगा ही, next, है ना, और फिर उसमें बीच बीच में they have to add wrong statements as well. Now in order to add wrong statements what can they do, they can easily take a factual statement और fact को गलत कर सकते हैं वो। ठीक है, कोई भी बड़ा सा statement, factual statement उन्होंने बुक से लिया और उसका fact गलत कर दिया। So easiest fact कौन सा रहेगा, ये ऐसे जो भी नंबर रहेंगे ना, डेटा नंबर, ये सब दे आर द ईजिएस्ट टू मेक रॉन्ग। ठीक है, नहीं तो अगर जैसे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें दे हैड टू मेक दिस इंटायर स्टेटमेंट। ठीक है, सो जो डेटा वाले क्वेश्चन हैं दे आर द ईजिएस्ट टू मेक देम रॉन्ग। ठीक है, सो वहाँ पे वो लोग कॉमनली दे मेक डेटा वाले क्वेश्चन रॉन्ग। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस कि जहाँ पे डेटा दिया है इज जनरली रॉन्ग। ठीक है, इन केस यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट आंसर यू कैन मार्क इट एज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे आंसर में 5 टाइम्स होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या दिया है स्टेटमेंट, सो दिस वन विल बी रॉन्ग हियर, है ना। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली रफली 2/3 दिया। ठीक है, इंफ्रारेड रेज waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. अच्छा, फिर infrared waves are a part of the visible spectrum of electromagnetic waves of solar radiation. तो visible spectrum के part नहीं होता infrared rays waves, we already know that. ठीक है, डी तो गलत हो गया, है ना। नाउ बी और सी में देख लेते हैं, they are largely absorbed by water vapor. This is a correct statement. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी रेड दिस अर्लियर एज वेल कि वाटर वेपर अब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जहाँ पे भी डेटा पॉइंट गिवन है ना, यूजुअली इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, सो दिस थिंग ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रहा लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये इंफ्रारेड होते हैं, दिस इज़ ओनली 10%। ठीक है, बाकी ये कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन ये सब हो रहा है ना। सो अगेन दिस विल बी, दिस स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, द आंसर शुड बी सी। ठीक है, और ये अगेन डेटा पॉइंट है, सो इट इज़ अगेन रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये, हाँ ये बचा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाई क्लाउड्स primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. अच्छा, तो हायर क्लाउड्स को बोला है कि दे रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन एंड कूल द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सो ये गलत दिया है,
ठीक है, इट इज़ द लोअर क्लाउड्स विच डू दिस. नाउ हाउ वुड यू हैव, अगर अगर आपको पता नहीं होता ये कंसेप्ट एग्जाम में, आप वही मैं एज आई टोल्ड यू, जो स्वॉपेबल वर्ड्स हैं दे मे हैव बीन स्वॉप्ड बाय यूपीएससी. ठीक है, हाई लो स्वॉप कर सकते हैं. So there is a high possibility that UPSC may have swapped this. ठीक है. Then क्या है low clouds? Low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the Earth's surface and thus cause warming effect. So according to me, both of these statements are incorrect. ठीक है. They have a, क्या बोला है, low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from Earth's surface and thus causing the warming effect. ये उल्टा चीज़ें दे दी हैं दोनों की. ठीक है, ये हाई क्लाउड्स का स्टेटमेंट नीचे लिख दिया है, लो क्लाउड्स का ऊपर लिख दिया है. ठीक है, सो द आंसर शुड बी नाइदर वन नॉर टू. ठीक है, सो दिस हैपन्स अ लॉट. ये स्वॉप वाले क्वेश्चन, देर आर मेनी सच क्वेश्चन वेर इन यूपीएससी स्वॉप्स द statements. ठीक है, so we are done the questions. Now we have done the questions. Now we'll move on to जो ये वाले क्वेश्चंस हैं. we will do this after we have read the topic. ठीक है, चाहिए तो पहले भी कर सकते हैं ना, बिकॉज मैनी टाइम्स क्या होता है वहाँ पे हमारे पास नॉलेज होती नहीं है. ठीक है, क्योंकि हर बार नए सवाल पूछते हैं ना, तो एक बार पहले क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं सो दैट वी कैन यूज़ द ट्रिक्स. ट्रिक्स तो नहीं, इनको इंटेलिजेंट गेसिंग बोलते हैं. ठीक है, सो विल ट्राई टू यूज़ दैट हियर. सो क्या क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट वन है, इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द इक्वेटर while crossing the land masses and towards the pole while crossing the oceans. ठीक है, सो अभी इसमें बस ऐसे लिख, इवन इफ ऐसे अज्यूम करते हैं कि हमको नॉलेज नहीं है आइसोथर्म का, बट वैसे आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ लाइन विच कनेक्ट्स टेम्परे प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर. ठीक है, तो अगर हम लॉजिक से देखें तो क्या बोल रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दी आइसोथर्म्स विल बेंड टुवर्ड्स द इक्वेटर इन जनवरी. जनवरी में क्या है, विंटर्स चल रहे हैं. अच्छा, तो ये बोलना चाह रहा है कि जनवरी में, हाँ, इक्वेटर की तरफ भी देयर विल बी ठंडा टेम्परेचर. सो दिस सीम्स करेक्ट टू मी. अच्छा, नहीं नहीं, वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस एंड पोलवर्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशंस. हाँ, दिस सीम्स करेक्ट टू मी बिकॉज व्हाट हैपन्स इज, जो लैंड होता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है जल्दी, है ना. सो दी दे विल बी हैव, जो लैंड पोर्शंस रहेंगे इट विल बी हैविंग लोअर टेम्परेचर, तो उसमें नीचे तक लो टेम्परेचर रहेगा. वेर एज व्हेन इट कम्स टू द ओशंस, oceans will have higher temperature because they lose heat in a slower manner. ठीक है, so the first statement seems correct to me based upon logic. Second है, in January the air over the oceans is warmer than that over the land masses in the northern hemisphere. This is also correct. देखो जनवरी में क्या है, विंटर्स है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. ठीक है, तो ओशन क्या रहेगा, वार्मर रहेगा बिकॉज इट लूजेस हीट इन अ स्लोअर मैनर, है ना. तो वहाँ के ऊपर जो एयर रहेगी इट विल बी वार्मर नेचुरली एंड देन दैट ओवर द लैंड मासेस इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. सो दिस ऑल्सो सीम्स करेक्ट टू मी. ठीक है, नाउ इसका क्या होना चाहिए, देखो तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, एंड both statement 1 and 2 are correct and statement 2 explains 1. um Not exactly. ठीक है, it does not explain 1 because इसका correct explanation would be the specific heat of land and water according to me. ठीक है, so I'll just check कि आंसर क्या दिया है क्वेश्चन 1 का. according to me it should be B. इन्होंने A दिया है. अच्छा, चलो ठीक है, फिर मतलब कि it is indeed the correct explanation. so देखती हूँ, रुको, आइसोथर्म. ठीक है, सो इट इज
दे आर कंसिडरिंग इट टू बी करेक्ट, मतलब एक्सप्लेनेशन सही मान रहे हैं इसका। ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है हाँ, ये वही रहेगा। मैं इसको, ये जो टेम्परेचर है ये लैंड का टेम्परेचर नहीं है ना, ये एयर का टेम्परेचर की बात हो रही है। तो ठीक है, सो दिस विल इंडीड बी दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। ठीक है। हाँ, दैट इज़ वेयर आई मेड अ मिस्टेक, बिकॉज दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द एयर अबव दैट लैंड या ओशन, है ना, उसका उससे आइसोथर्म बनता है। ठीक है, सो द स्टेटमेंट टू इज एक्सप्लेनिंग इट वेल, सो द आंसर शुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट inferences from isothermal maps in the month of January। So आप देख रहे हो these are similar questions, है ना, 2024 और 25 में सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, सिमिलर टॉपिक से, है ना। सो द टॉपिक आइसोथर्म इज इम्पॉर्टेंट और कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में ही रिपीट हो गया है, मतलब एग्जैक्ट रिपीट नहीं हुआ है बट सेम टॉपिक से सवाल पूछा है। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन मंथ ऑफ जनवरी। फर्स्ट क्या है, द आइसोथर्म्स deviate towards the north over the ocean and towards the south over the continent। ये शायद सेम ही क्वेश्चन हो गया है ना। आइसोथर्म्स जनवरी में they deviate towards the north over the ocean, this is correct, and towards the south over the continent। ठीक है, सेम सेम स्टेटमेंट फर्स्ट में भी वही दिया है। नेक्स्ट है, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन currents, the Gulf Stream and North Atlantic drift makes the North Atlantic colder and the isotherms bend towards the north। टूवर्ड्स द नॉर्थ है, ये गलत स्टेटमेंट दिया है अकॉर्डिंग टू मी, है ना, क्योंकि कोल्ड ओशन करंट्स नीचे को आ रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्या दिया है, रुको, सेकेंड का वही मैं बोल रहा हूँ ना, द सेकेंड क्वेश्चन, द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज जो कोल्ड ओशन करंट्स नीचे को आ रहे हैं देयरफॉर द आइसोथर्म शुड बेंड टुवर्ड्स द साउथ ड्यू टू द ओशन करंट्स। ठीक है, बट यहाँ पे उल्टा लिखा है, सो दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, सो द आंसर शुड बी ओनली वन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो इट इज़ बेटर इफ यू डू इट विद लॉजिक ओनली एंड अवॉइड एनी ट्रिक्स ओवर हियर, बट वर्स्ट केस सिनारियो इफ यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस स्टफ, तो क्या है, आप बस ये देखिए कि कहाँ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दे माइट हैव स्वैप्ड समथिंग, नॉर्थ साउथ कर सकते हैं। ठीक है, वर्स्ट केस सिनारियो है ये, आपको नहीं पता है कुछ भी, यहाँ पे भी स्वैप कर सकते हैं, सो दिस विल बी टफ टू डू, इट इज़ बेटर इफ़ यू डू सच क्वेश्चन विद लॉजिक। ठीक है, लॉजिक मतलब जो आप पढ़ के गए हैं उससे। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द टेम्परेचर कंट्रास्ट between continents and oceans is greater during summer than in winter। अच्छा, फिर this than this, फिर the specific heat of water is more than that of land surface। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, ये ऐसे गलत दिया हुआ है, दोनों ही स्टेटमेंट देखो, नहीं नहीं, लैंड सरफेस वाला सही दिया है, वेयर एज जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग ओवर हियर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इंडीड मोर देन दैट ऑफ लैंड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया है, द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंटल ओशंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर दैन इन विंटर, ऐसा नहीं है, इट इज़ इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस शुड बी ऑप्शन डी, है ना। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें आप याद रखना कि स्पेसिफिक हीट जो पानी का होता है इट इज़ मोर देन दैट ऑफ लैंड surface। नाउ अगेन इफ such a question, if you had been trying it with intelligent guessing, then it would have become difficult, because इन चीज़ों में if you have knowledge then it would be the best, because देखो यहाँ पे क्या है, specific heat of water is more than that of land surface। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्वैप कर सकता है यूपीएससी। देन
Temperature contrast between continents and oceans is greater during summer than in winter. यहाँ पे भी स्वैप कर सकता है, ग्रेटर, लेसर, इक्वल। ठीक है, सो यू विल गेट कंफ्यूज बिकॉज दोनों में ही स्वैप हो सकता है। ठीक है, सो सच क्वेश्चन इट इज़ बेटर इफ यू डू विद प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट गेसिंग वगैरह इतना काम नहीं आएगा। So now we'll study the topic factors controlling temperature distribution. फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले क्या है, वी हैव लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड से क्या होगा, एट हायर लैटिट्यूड्स यू विल हैव लोअर टेम्परेचर्स। ठीक है, दिस इज़ कॉमन सेंस। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, सबसे ज़्यादा तो नहीं, मतलब इट विल बी हायर, एंड एज यू मूव अपवर्ड्स टूवर्ड्स द पोल द टेम्परेचर विल डिक्रीज। ठीक है, देन ऑल्टीट्यूड, अगेन ऑल्टीट्यूड मतलब ये ऐसे है ना। सो इफ़ यू आर स्टैंडिंग हियर द टेम्परेचर विल बी हायर एज कम्पेयर टू ऑन टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, एंड वाई इज इट सो, बिकॉज ट्रोपोस्फेयर में एज यू माइट बी नोइंग एज यू मूव अपवर्ड्स द टेम्परेचर डिक्रीजेज। ठीक है, बट व्हेन वी गो टू द स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर विल इंक्रीज एज वी मूव अपवर्ड्स। ठीक है, और फिर स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में क्या आएगा, ट्रोपोस्फेयर हो गया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, उसके बाद फिर से इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एज वी मूव अपवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, लैटिट्यूड हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सो if you are at a coastal region then the temperature will be moderate as compared to interiors. Why is it so, because coastline जो water bodies होते हैं they have a moderating effect. इन लोगों का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है। ठीक है, सो दे लूज हीट एंड गेन हीट एट अ स्लोअर पेस एज कम्पेयर टू द लैंड। ठीक है, तो लैंड अगर बहुत ज़्यादा गर्म है द वाटर विल बी कूलर। ठीक है, सो वाटर का कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। देन सिमिलरली इफ द लैंड इज़ वेरी कोल्ड देन द वाटर विल बी वार्मर और उसका फिर वार्मिंग इफेक्ट आ जाएगा। दैट इज़ वाई कोस्टल एरियाज में द टेम्परेचर्स आर जनरली मॉडरेट, whereas जो इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं देयर द टेम्परेचर्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स विल बी फाउंड प्राइमरली। ठीक है, नाउ वील बी लुकिंग एट द ओशन करंट्स। सो ओशन करंट्स में क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म करंट्स से क्या होगा, द टेम्परेचर विल राइज। ठीक है, सो दिस इज नॉर्मली नोन फैक्ट कि वार्म करंट से देयर विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर, और कोल्ड करंट से लोअर टेम्परेचर। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही जेनरिक चीज़ दी है। देन क्लाउड कवर। सो क्लाउड कवर से क्या होगा, इट विल रिड्यूस द डे टाइम हीटिंग एंड इंक्रीज नाइट टाइम टेम्परेचर। हाउ, देखो जैसे यहाँ पे क्लाउड्स है सपोज, सो व्हाट विल इट डू इन ड्यूरिंग द डे टाइम, इट विल प्रिवेंट द सनलाइट फ्रॉम कमिंग इन। ठीक है, इंसुलेशन, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, सो इट वोंट बी एबल टू रिसीव reach the ground. Whereas at the night time, what will the cloud cover do? It will prevent the heat from um, getting lost. ठीक है, तो वो ट्रैप कर लेगा हीट को। ठीक है, सो ट्रैप कर देगा हीट को एट नाइट टाइम। सो अगेन टेम्परेचर विल राइज ड्यूरिंग नाइट टाइम वेयर एज इट विल बी केप्ट लेस ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं रात में। फिर स्लोप, sheltered slopes versus sunny slopes, हाँ, they affect the local temperature. So एक साइड में सन पड़ रहा है तो that will be having a higher temperature as compared to the this zone. ठीक है, यहाँ पे there is shadow, so this is a sheltered slope, so it will have lower temperature. ठीक है, so these are very generic things, these you might be knowing already. इसमें हाँ सारा ही पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं। ये वही दिया है, ये दिस इज़ अ डायग्राम विच शोज द आइसोथर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो आइसोथर्म्स में जो लाइंस हैं ड्यूरिंग जनवरी व्हाट इज़ हैपनिंग इज दैट दीज लाइंस आर कर्विंग टुवर्ड्स द इक्वेटर।
लैंड के ऊपर, बट ओशन में दे आर गोइंग पोलवर्ड्स, है ना। दिख रहा है ना, ये हो रहा है इधर, यहाँ लैंड में दे आर गोइंग टूवर्ड्स द इक्वेटर एंड दे आर गोइंग टूवर्ड्स द पोल इन द oceans. Whereas when it comes to the month of July, जुलाई में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वी हैव समर्स। तो समर्स में क्या होगा, लैंड विल गेट हीटेड अप फास्टर। तो लैंड का जो आइसोथर्म रहेगा दैट विल बी, मतलब जो इक्वेटर वाला आइसोथर्म रहेगा दैट विल बी गोइंग अपवर्ड्स। ठीक है, तो समझ रहे हो आप। सो लैंड वाले पोर्शन में द आइसोथर्म्स विल बी मूविंग पोलवर्ड्स, whereas in the oceanic regions the isotherms will be गोइंग फ्रॉम द पोल टू द अर्थ। ठीक है, आप समझ रहे हो उनका कर्व। यहाँ पे इसी का उल्टा होगा, यहाँ पे क्या कैसा था, इधर ऐसे था, लैंड के ऊपर ऐसे और ओशंस के ऊपर ऐसे, whereas in summers it will be like this। ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का मैंने बताया है। सदर्न हेमिस्फेयर में एकदम उल्टा हो जाएगा। सो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, ड्यूरिंग जनवरी में दे विल बी हैविंग समर्स। तो समर्स में क्या होगा, उनका लैंड विल बी वार्मर। ठीक है, तो उनका आइसोथर्म विल बी लाइक दिस on the land, and on the oceans it will be like this। whereas in जुलाई में they will be having winters। ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर, तो विंटर्स में उनका लैंड विल बी कोल्ड। ठीक है, तो लैंड पे ऐसे रहेगा और ऐसे होगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा एग्जैजरेट करके बताया, बट हल्का सा वेव आता है बस। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी आर लुकिंग एट द नॉर्मल, हाँ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। सो नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, normal lapse rate means the temperature will decrease with height at this rate, that is 6.5 degrees Celsius per kilometer। So we had read about this while we were doing the different लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो ट्रोपोस्फेयर वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे। देन ऑल्सो वी हैड रेड दिस कि नॉर्मल लैप्स रेट कितना है। ठीक है, सो इट इज़ द टेम्परेचर रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। कितना होता है नॉर्मली, इट इज़ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट है टेम्परेचर इन्वर्जन। So temperature inversion क्या है, it is a reversal where temperature increases with altitude। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है, temperature inversion a reversal where temperature increases with altitude। normally क्या होता है, it decreases with altitude। ठीक है, तो उसी का उल्टा हो रहा है इस केस में। so when does this happen, दो तीन केसेस में होता है। one of the cases is when in case of long winter nights where there are clear skies, still air and dry air। ठीक है, सो इसमें होगा क्या, देयर विल बी, हाँ कंडीशन ये रहेगी कि लॉन्ग विंटर नाइट है, क्लियर स्काई है और स्टिल एयर और ड्राई एयर है। तो उस केस में आइडियली क्या होना चाहिए, अगर इफ़ वी टॉक अबाउट द नॉर्मल लैप्स रेट, व्हाट शुड बी द सिचुएशन। मैं इसको अच्छे से डायग्राम से बताती हूँ। सपोज दिस इज़ द लैंड, ठीक है, ग्रीन कलर का। सो टेम्परेचर विल डिक्रीज विथ हाइट। ठीक है, सो हॉट होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे इट शुड बी कोल्ड। ठीक है, बट टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज द लैंड, देन इट विल बी कोल्ड ओवर हेयर, कोल्ड एयर यहाँ पे पर मिलेगा हमको, और ऊपर जाके देयर विल बी हॉट एयर। सो वाई इज दिस हैपनिंग ऑन लॉन्ग विंटर नाइट्स, बिकॉज लॉन्ग विंटर नाइट्स में क्या होगा, जो हमारा लैंड है इट विल लूज हीट वेरी फास्ट, लूजेस हीट, है ना इनका, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कम रहता है लैंड का, तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा लैंड। ठीक है, तो पूरा रेडिएशन ऊपर चले गया, ऊपर सिंस द देयर इज़ नो क्लाउड कवर, है ना, क्लियर स्काइज है, देयरफॉर द हीट वोंट गेट ट्रैप्ड। ठीक है, तो यहाँ बहुत ठंडा हो गया। वेराज एज यू माइट बी नोइंग देयर इज दिस प्रिंसिपल कि हॉट एयर राइजेज अप, हॉट एयर राइजेज अप,
एंड कोल्ड एयर सिंक्स डाउन। ठीक है, तो कोई क्लाउड कवर नहीं है उसको रोकने के लिए, तो हॉट एयर ऊपर चला जाएगा और ठंडा हवा विल कम डाउन, है ना। एंड दिस कोल्ड एयर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड लैंड इट विल बिकम कोल्डर। ठीक है, तो यहाँ बहुत ठंड हो जाएगी एंड दैट इज व्हेन ड्यू ड्रॉप्स एंड फ्रॉस्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पूरा ठंडा है, पूरा ठंडा ठंडा है, सो जो plants रहेंगे they'll also become very cold, and so they'll have a very cold surface on which dewdrops can condensate. Condensation of dewdrops can happen or frost can also happen. ठीक है, so this is the main principle of temperature inversion. Now there are various types. This is the condition which should exist, मतलब कि लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए ताकि ठंडा रहने का अमाउंट ऑफ टाइम for becoming cold, मतलब the amount of time for the land to become cold will be higher in case the night is longer, है ना। clear skies होने चाहिए so that this hot air can escape। ठीक है, otherwise what will happen if we do not have clear skies, then what will happen, ये यहाँ पे radiation will get, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन हमारा लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है दैट विल गेट ट्रैप्ड। ठीक है, सो पूरा यहाँ हॉट एयर ही रह जाएगा नीचे तक। ठीक है, सो द स्काई शुड बी क्लियर इन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन एंड द एयर शुड बी ड्राई एज वेल। नेक्स्ट है टाइप्स। तो टाइप्स में वही हो गया, ये कंडक्शन वाला था, आई जस्ट टोल्ड यू कि ये लैंड से कंटैक्ट में आके दिस एयर विल ऑल्सो बिकम वेरी कोल्ड। ठीक है, so this is known as surface inversion or it is caused primarily due to conduction. Next we also have valley inversion and we also have frontal inversion as well. ठीक है, तो valley inversion में क्या होगा, ये ऐसे वैली है ना, तो यहाँ पे कोल्ड एयर विल सिंक डाउन और हॉट एयर विल राइज अप। ठीक है, तो वही हो गया इस केस में, यहाँ पे कोल्ड हो जाएगा फिर एंड ऊपर इट विल बी वेरी हॉट नहीं, मतलब कंपैरेटिवली हॉट। ठीक है, दिस इज नोन एज वैली इन्वर्जन और इसमें कैटाबैटिक विंड्स प्ले अ मेजर रोल, एयर ड्रेनिंग जो होता है। ठीक है, वेट अ सेकंड, लेट मी लुक एट दिस प्रॉपर्ली। कैटा, हाँ, यहाँ पे आई जस्ट राइट इट डाउन। कैटाबैटिक विंड्स का एग्जैक्ट मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे लिख देती हूँ। कैटाबैटिक विंड्स, these are gravity driven, Hello, can you hear me now? हाँ, gravity driven cold winds which blow downhill from high elevation areas, which blow downhill from higher areas, जैसे माउंटेन से नीचे को आ रहा है, ये जो आ रहा है ना, दिस विल बी द कैटाबैटिक विंड, दिस विल बी कॉल्ड एज द कैटाबैटिक विंड। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, दे ब्लो डाउनहिल, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कैटाबैटिक विंड्स देख लिया हमने, एंड नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट फ्रंटल इन्वर्जन। सो फ्रंटल इन्वर्जन के केस में क्या होगा, अगेन टेम्परेचर इन्वर्जन विल हैपन। सो दिस विल हैपन व्हेन अ कोल्ड डेंस एयर मास, या ये तो मैंने नॉर्मल कंडीशंस बता दिए हैं, है ना। अभी यहाँ पे आई शो यू द फ्रंटल इन्वर्जन। सो इसमें क्या होगा, जब हम लोग व्हेन वी विल बी लर्निंग अबाउट द एयर फ्रंट्स और वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, देन दिस विल बी मोर क्लियर। ठीक है, इसमें प्राइमरली होता क्या है, एक जो कोल्ड एयर मास है इट विल इन अंडरकट
it undercuts a warm air mass. ठीक है, तो हम लोग कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, देन वील अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बेटर. सो फॉर एग्जांपल दिस इज द कोल्ड एयर मास. ठीक है, ये जाएगा वार्म एयर मास के, ये हॉट वाला एयर मास है, उसके ऊपर इट विल गो, उसके अंडर इट विल गो. ठीक है, सो दिस thing will read properly once we are doing air masses. ठीक है, तो this will be known as frontal inversion. नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वी दिस वाज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें नॉर्मल लैप्स रेट एंड टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में देख रहे थे हम लोग. नेक्स्ट वील बी डूइंग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपिक्टेड बाय आइसोथर्म्स. तो आइसोथर्म होता क्या है? दीज आर लाइन्स which join places having equal temperatures. So they are generally parallel to the latitudes. ठीक है, so lines which join places having equal temperature and they are generally parallel to the latitudes. This is something which you should be knowing, है ना. और इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ. सो लैंड वाटर कंट्रास्ट का देख लेते हैं. इसमें जो आइसोथर्म्स होते हैं दे आर इरेगुलर एंड क्लोजली प्लेस्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर due to more land water contact and regular and widely spaced in southern hemisphere. So this is a statement which UPSC can take directly and put it in the question. देखो क्या पूछा है, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि is this statement correct or not. ठीक है, तो do remember that because northern hemisphere में there is a lot of land and land water contact भी ज़्यादा है. That is why the isotherms are slightly irregular and they are closely spaced in the northern hemisphere because वहाँ पे land ज़्यादा है ना. I'll just tell you the reason also. See, land ज़्यादा है, land का specific heat is low. land ज़्यादा है वहाँ पे. specific heat एक सेकेंड. स्पेसिफिक हीट का वैसे मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग भी आई जस्ट फर्स्ट टेल यू. देखो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है. स्पेसिफिक हीट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ हीट which is required to raise the temperature of one unit by 1 degree Celsius. Amount of heat required to raise the temperature of something by 1 degree Celsius. ठीक है, तो हमारा इसका मतलब क्या है. स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज़ लो, मतलब कि उसको कम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर. ठीक है, तो लैंड बहुत जल्दी गर्म ठंडा होता रहता है, वेराज वाटर का स्पेसिफिक हीट इज़ हायर. सो इट विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ हीट इन ऑर्डर टू चेंज इट्स टेम्परेचर. मोर अमाउंट ऑफ हीट या लेसर अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि उसको पानी कम, मतलब कम जल्दी ठंडा गर्म होता है, whereas land will become hot and cold very fast. ठीक है, so land का specific heat is higher, therefore what will happen is higher नहीं lower है ना. specific heat lower होता है land का, तो वो जल्दी गर्म ठंडा होता रहेगा. so on different latitudes है हमारे अर्थ पे, वहाँ पे अलग अलग हीट रहेगा. there will be different amounts of heat. ठीक है, सो सिंस देर इज डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट देयरफॉर लैंड का टेम्परेचर विल ऑल्सो बी डिफरेंट. ठीक है,
वेराज जो वाटर रहेगा, वाटर का तो वो थोड़ा मेंटेन कर लेता है, बिकॉज स्पेसिफिक हीट इज़ हायर, देयरफॉर वो टेम्परेचर इज़ जनरली द सेम ओनली, है ना। वेराज लैंड का टेम्परेचर डिफरेंट होता रहेगा। सिंस द टेम्परेचर इज डिफरेंट, देयरफॉर different isotherms will be required to depict it. Different isotherms will be required, different मतलब बहुत सारे भी, will be needed। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो रहा है कि यहाँ पे लैंड ज़्यादा है, लैंड लैंड काफ़ी सारी है, तो यहाँ पे फिर बहुत सारे आइसोथर्म्स रहेंगे, है ना। वेराज यहाँ पे द ओशनिक पोर्शन इज हायर, सो यहाँ पे देर विल बी लेसर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, because ocean का the specific heat is higher, thus the isotherms will be sparsely placed, because ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है टेम्परेचर में नीचे, है ना, ओशन ओशन नहीं है। ठीक है, so that is what is mentioned here. Isotherms are irregular and closely placed in the northern hemisphere due to the land water contact, more land water contact, and regularly and widely spaced in the southern hemisphere। ठीक है, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन लैंड। हाँ, ये हमें पता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, सो इसमें वही लिख देते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन लैंड एंड लैंड हीट्स एंड कूल्स फास्टर दैन द ओशन। ठीक है, सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस कंसेप्ट टू यू, स्पेसिफिक हीट। देन जनवरी में क्या होगा, जनवरी में विंटर्स होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है वैसे ये डायग्राम के थ्रू, बट वील जस्ट रीड इट वंस। So isotherms will bend equatorward over the land because it will be cooler there, है ना। तो ये यहाँ इक्वेटर की तरफ रहेंगे, बिकॉज देखो बस ऐसे लैंड का करके यू कैन डू इट, है ना। विंटर्स चल रहे हैं यहाँ पे, विंटर्स में लैंड ठंडा रहेगा, मतलब कि ऊपर का जो टेम्परेचर है ठंडा ठंडा वो नीचे भी रहेगा, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द इक्वेटर। ठीक है, दिस इज ऑल व्हाट इज हैपनिंग हियर, है ना। वेराज विंटर्स में ही ओशन तो गर्म ही रहेगा, तो इक्वेटर का जो भी टेम्परेचर है वो थोड़ा ऊपर तक रहेगा। ठीक है, गर्म ही रहेगा पानी तो। वेराज अभी अगर हम समर्स का देखें सिचुएशन, तो इक्वेटर में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर हमारा लैंड पे भी है, तो इट विल कर्व लाइक दिस। वेराज इन द केस ऑफ ओशन व्हाट विल हैपन इज, जो ओशन का टेम्परेचर है इट विल बी लोअर, बिकॉज वो धीरे गर्म ठंडा होता है ना। तो जो ऊपर पोल का टेम्परेचर है ठंडा वाला, दैट विल बी कैरीड थ्रू नीचे तक, सो दिस इज हाउ द कर्व विल बी। ठीक है, तो यही मैंशनड है, आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटरवर्ड ओवर लैंड एंड पोलवर्ड ओवर द ओशंस। ठीक है, सो it is warmer aided by currents like the Gulf Stream. The Gulf Stream is actually a warm current. So when we will be reading currents, then you have to remember कि warm currents के नाम कौन से हैं, cold currents कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई। इन जुलाई और समर्स द आइसोथर्म्स bend polewards over the land and equatorwards over the oceans। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो सम, ये अब समझा ही दिया है मैंने, है ना। नेक्स्ट है विंटर में, द लैंड लूजेस हीट क्विकली ड्यू टू स्पेसिफिक हीट एंड बिकम्स वेरी कोल्ड। ये पता ही है हमको, बिकॉज लैंड हैज़ वेरी लो स्पेसिफिक हीट। ठीक है, एंड ओशन विल स्टे वार्मर, देयरफॉर देयर विल बी हायर कंट्रास्ट। और समर्स में, अच्छा ये अच्छे से आप लर्न करना, ये वाला क्वेश्चन ऑल्सो वी हैड डन अर्लियर। देखो विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में the land will lose heat quickly due to the specific low specific heat, and it becomes very cold, whereas the ocean will stay comparatively warmer। ठीक है, so there will be a high contrast between the temperatures of the ocean and the land, whereas in the case of summers what will happen, the land will heat up quickly, whereas ocean will also stay warm to some extent। ठीक है, तो there will be lesser contrast, तो it is only in the winter when the contrast is very high। ठीक है, तो वहाँ पे फिर बिल्कुल ठंडा हो जाता है लैंड, और
द ओशन सीम्स वार्मर। मैंने पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा शायद गलत बता दिया था कि दे आर इक्वल, बट नहीं। वी हैव डन दिस क्वेश्चन ऑन, है ना अभी, कि ये वाला, द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर दैन इन विंटर, बट नहीं, इट इज़ the opposite. So the temperature contrast between continents and oceans is lower in summer than in winter. So winter में the temperature contrast will be very high. ठीक है, so that is what is mentioned over here. Next क्या दिया है, temperature anomaly. So temperature anomaly क्या होता है, it is the difference between a place's temperature and the mean temperature of its latitude. So this is also important, you should be knowing about this. कि जो लैटिट्यूड है यहाँ पे, जो लैटिट्यूड पास कर रहा है उसका टेम्परेचर और जो लोकल टेम्परेचर, ये जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इक्वेटर है, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे देयर विल बी सिमिलर टेम्परेचर, आइडियली इट शुड बी सिमिलर, ठीक है, एंड दैट विल बी नोन एज द मीन टेम्परेचर ऑफ दैट लैटिट्यूड. However, there are some anomalies, जैसे यहाँ पे अगर कोई कोल्ड करंट हो गई, so this portion will become excessively cold, ठीक है, in that case that will be known as a temperature anomaly, ठीक है, so it will be the difference between a place's temperature and the mean temperature of that latitude, ठीक है. Next, we'll be doing atmospheric circulation and weather systems, ठीक है. So देखो, atmospheric circulation is the large scale movement of air that redistributes heat and moisture across the planet in order to maintain a constant global temperature, ठीक है. तो ये दिस इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्रेज. एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मतलब कि एयर का मूवमेंट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, प्लानट में, ठीक है. Now this motion is primarily driven by variations in atmospheric heating, that is insulation, emergence of pressure belts and the rotation of the earth. So these three things you should be remembering कि किस किस वजह से हो रहा है. एक तो एटमॉस्फेरिक हीटिंग की वजह से हो रहा है, दैट इज इंसुलेशन की वजह से, देन प्रेशर बेल्ट्स की वजह से, एंड थर्डली द रोटेशन ऑफ द अर्थ एज वेल हैज अ मेजर रोल टू प्ले, है ना. रोटेशन ऑफ द अर्थ से क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स इज जनरेटेड विच चेंजेस द पाथ ऑफ द विंड्स, ठीक है. नाउ विल डू द क्वेश्चंस फर्स्ट. ये एक ही क्वेश्चन है इसका. विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स, आई एम डूइंग द क्वेश्चंस फर्स्ट सो दैट ऐसा रहे कि इवन इफ वी डू नॉट हैव द नॉलेज, स्टिल वी शुड ट्राई टू गेस द क्वेश्चन, ठीक है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा वहाँ पे, यहाँ पे तो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, वहाँ पे देर विल बी मेनी थिंग्स विच यू डू नॉट नो अबाउट, है ना. यूल हैव टू मेक एन इंटेलिजेंट गेस. So in order to train that muscle, I am doing the questions first. So with reference to Coriolis force, which of the following statements are correct? So it increases with increase in wind velocity, और फिर क्या दिया है, it is maximum at the poles and is absent at the equator. So ये यहाँ पे both of the statements given here are correct, ठीक है. इक्वेटर पे ज़ीरो होता है, मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है कोरियोलिस फोर्स, and it increases with wind velocity as well. So in such a question, देखो ये मेरे को knowledge था इसलिए that is why I was able to answer this. Otherwise if you try to make a guess here, तो guess के लिए हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा word swap हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे increase को decrease लिखा होगा, there is a possibility, ठीक है, there is a possibility for swap over here, and again there is a possibility for swap over here, ठीक है. So effectively you cannot answer this question if you do not have the knowledge. If you answer this question without the knowledge, then it will become very risky, ठीक है. So it is better to have knowledge in such questions, ठीक है. तो यहाँ पे intelligent guessing will not work as much, ठीक है. Now we'll start with basics of atmospheric circulations. First of all, we'll look at atmospheric pressure. So definition क्या है atmospheric pressure की? It is the weight of a column of air
contained in a unit area from mean sea level to the top of the atmosphere. So आप ऐसे इमेजिन करिए कि there is a column of air. ये suppose अर्थ है ना, अर्थ है ये, एंड यहाँ पे देर इज सम सी, ठीक है, दिस इज द अर्थ सरफेस विद सम सी, ठीक है। तो अभी इमेजिन दैट देर इज अ कॉलम ऑफ एयर गोइंग फ्रॉम हियर अप टिल द एंड ऑफ द एटमोसफेयर, दैट इज द एग्जोस्फेयर तक जा रहा है कॉलम ऑफ एयर, ठीक है। और इसका एरिया कितना है, इट इज़ 1 मीटर स्क्वायर और समथिंग लाइक दैट, यूनिट एरिया है ना। सो नाउ वेट ऑफ दिस कॉलम ऑफ एयर will be known as the pressure, atmospheric pressure, weight of this column, ठीक है। Now pressure is considered to be uneven, it varies vertically and horizontally, ठीक है। तो जो लोअर लेयर्स होते हैं वहाँ पे, लोअर लेयर्स मतलब ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, ये सब, यहाँ पे क्या रहेगा, देयर विल बी a higher density of this thing gases, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेशर भी हायर रहेगा। मोर ओवर सिंस दीज आर द लोअर लेयर्स देयर फोर ये पूरे का वेट भी इस पे ही आ रहा है, ठीक है। सो द प्रेशर विल बी मोर ओवर हियर, ठीक है, एंड vice versa. However, the pressure is generally uneven. Then vertical variation of pressure देख लेते हैं। सो वर्टिकल वेरिएशन में यू नो दैट इट डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, है ना, यहाँ से खुद ही पता चल रहा है कि एज यू मूव अपवर्ड्स द साइज ऑफ द कॉलम डिक्रीजेज, देयरफॉर द वेट ऑफ द कॉलम विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। सो इट डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, then it is not uniform, so it depends upon temperature, water vapor and gravity. So जो vertical pressure gradient होता है, it is considered to be greater than horizontal pressure gradient. एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ बिकॉज देखो यहाँ पे भी रहेगा कॉलम, यहाँ पे भी कॉलम रहेगा, ठीक है। तो मोर और लेस द वेट विल बी द सेम, हाउएवर देयर विल बी सम डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ जैसे एयर मूवमेंट, विंड, एयर मास, है ना, यहाँ पे जैसे हॉट एयर इज मोर, ठीक है। सो देयर विल बी स्लाइट मूवमेंट इन दैट मैनर, बट ओवरऑल जो हॉरिजॉन्टल वेरिएशन है दैट इज बिटवीन दीज पॉइंट्स, इट वोंट बी एज मच एज द वर्टिकल वेरिएशंस, ठीक है। वर्टिकल वेरिएशंस यहाँ पे दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस इन दिस मैनर, ठीक है। बिकॉज वेट ऑफ द कॉलम इज द मेजर फैक्टर, वेयर एज जो थोड़ा बहुत हवा इधर उधर जा रही है और जो प्रेशर बेल्ट्स बन रहे हैं दे वोंट क्रिएट एज मच ऑफ अ डिफरेंस, मतलब रहेगा डिफरेंस बट इतना ह्यूज नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट। नाउ जो राइजिंग प्रेशर होता है इट रिजल्ट्स इन स्टेबल वेदर, वेयर एज falling pressure results in cloudy or unstable weather. So why is it so? I'll just tell you. जैसे rising pressure मतलब कि high pressure zone में, high pressure zone में क्या होगा, there will be cold air over here, है ना, cold air है, और high pressure, you might be knowing कि there's this formula कि air moves from या wind moves from high pressure regions to low pressure regions, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रहेगा अगर कोई भी विंड, सो इट विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इट विल बी वेरी काम, whereas if you look at the low pressure regions वहाँ पे there will be a lot of wind coming in because it is a low pressure region, so high pressure region से यहाँ पे काफ़ी सारी wind आ जाएगी, then it might collide here and then यहाँ पे this wind might rise due to heat, फिर यहाँ rise करके it will form clouds and then clouds से you'll have वही बारिश वगैरह, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच हैपेंस इन इक्वेटोरियल रीजन्स, ठीक है। सो ये यहाँ पे वही दिया है कि राइजिंग प्रेशर विल बी स्टेबल वेदर, फॉलिंग विल बी अनस्टेबल। नाउ हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, सो हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज शोन बाय आइसोबार्स, ठीक है। सो वी हैड जस्ट लर्नड अबाउट आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स क्या रहेगा, इट विल बी अ लाइन विच विल join places having the similar temperature, same temperature, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर सेम टेम्परेचर है मैप पे, then a line joining all of these will be known as the isotherm. Similarly we have a isobar,
wherein a isobar will be a line on the map which will join places having similar pressure. ठीक है, that will be known as an isobar. So यहाँ पे दिया है, if the isobars are closely spaced, मतलब कि पास पास में बहुत सारे isobar हैं, मतलब क्या हुआ इसका कि there are various different pressures over here. नहीं तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि ये एक रीजन है, ठीक है, इस रीजन में क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे पास पास में बहुत सारे आइसोबार्स हैं, वेराज एक दूसरा रीजन है यहाँ पे, वहाँ पे ऐसे थोड़ा दूर दूर है बहुत सारे, ऐसे करके फिर यहाँ पे, ठीक है, दूर दूर है आइसोबार्स. सो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट यहाँ बहुत जल्दी जल्दी देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर वेरिएशन. ठीक है, प्रेशर वेरिएशन बहुत है, तो देयरफॉर देयर विल बी अ स्टीप pressure gradient. Whereas in this case what is happening, बहुत दूर दूर है, मतलब कि यहाँ भी प्रेशर सेम ही है, आसपास बहुत सेम सेम प्रेशर ही है ना. सो दैट इज़ वाई द प्रेशर ग्रेडियंट विल बी वेरी, मतलब नॉट वेरी स्टीप. ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दोज टू. यहाँ पे वही मेंशन है कि हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज शोन बाय isobars, that is lines of equal pressure, and if they are closely spaced isobars then that means steep pressure gradient and strong winds. ठीक है, यहाँ कहीं पे they haven't shown it in the diagram but ठीक है. So next देखते हैं instruments. इंस्ट्रूमेंट देखो यहाँ पे दूर दूर है, मतलब कि प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा मतलब कि देयर वोंट बी एज मैनी विंड्स, whereas in this case there will be a lot of winds since बहुत ज़्यादा प्रेशर वेरिएशंस हैं. ठीक है, नाउ क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर measuring the same, instruments for measuring pressure variations. So pressure variations are measured using a mercury barometer or an aneroid barometer. ठीक है, so this is something which you should know कि barometer is a device used for measuring pressure. ठीक है, now we'll be looking at forces which govern wind velocity and direction, है ना. So wind होता क्या है, it is the horizontal movement of air flowing from high pressure region to low pressure region, है ना. ये हमें पता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है विंड. ठीक है, now there are various forces which govern the velocity of the wind as well as the direction of the wind. ठीक है, तो first of all we have the pressure gradient force. प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में क्या होगा, the it will move air from high pressure to low pressure and the strength will be indicated by the spacing of isobars. ठीक है, तो वही है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स रेफर्स टू द वेरिएशन इन द प्रेशर्स व्हिच कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर. ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड हैं दैट मीन्स देयर इज अ लार्जर प्रेशर ग्रेडियंट एंड द स्पीड ऑफ द विंड विल बी हायर एज कम्पेयर, वो यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा ही था. एंड इफ द isobars are sparsely spaced then the pressure gradient will be lower and the strength of the winds will be lower, speed as well as strength of the winds will be lower as well. ठीक है, so you should know about this pressure gradient force, है ना. it moves air from high pressure to low pressure, ये पढ़ लिया हमने. then you have Coriolis force as well. सो कोरियोलिस फोर्स का भी क्वेश्चन में भी पढ़ा था हमने वैसे तो, बट आई जस्ट टेल यू कोरियोलिस फोर्स इज समथिंग विच इज कॉज्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो इसमें होता क्या है, एनी विंड विच इज फ्लोइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इट विल गेट डिविएटेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, और अगर सदर्न हेमिस्फेयर में है तो इट विल गेट डिविएटेड टू द लेफ्ट. ठीक है, एंड दिस लॉ इज नोन एज द फेरेल्स लॉ. ये लॉ की कौन सी साइड डिविएट होगा,
दैट इज गिवन बाय द फेरल्स लॉ। ठीक है, सो ये दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, कॉरियोलिस फोर्स, है ना। तो नॉर्थ नॉर्थ में है देन इट विल गो टूवर्ड्स द राइट, एंड इफ इट इज इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर इट विल गो टूवर्ड्स द लेफ्ट। And you should know this, that Coriolis force is absent at the equator, and that is why there is no cyclone formation at the equator. And Coriolis force happens to be the maximum at the poles. ठीक है, now ये जो होता है Coriolis force होता है, it is generally acting perpendicular to the pressure gradient force. ठीक है, and the deflection caused by Coriolis force will increase if the wind velocity increases. ठीक है, so these are simple facts which you should be knowing. Then apart from Coriolis force we also have centripetal force. Now this centripetal force acts perpendicular to the wind and it converges inwards. ठीक है, then last है frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होगा, इट विल अफेक्ट द विंड स्पीड इन द लोअर एटमोसफेयर. सो व्हाट हैपेंस इज, जो नीचे ग्राउंड के पास में जो एयर फ्लो हो रही है, इट विल गेट अफेक्टेड बाय द फ्रिक्शन ऑफर्ड ड्यू टू द सर्फेस. ठीक है, और सी सर्फेस के ऊपर देयर वोंट बी एज मच फ्रिक्शन. ठीक है, बिकॉज सी है, पानी में नॉट मच फ्रिक्शन, वेयर एज ऑन लैंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज जैसे लैंड पे बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, देयर विल बी ट्रीज, देन देयर विल बी बिल्डिंग्स ऑल्सो, है ना. तो दे एक्ट एज अ बैरियर एंड दस फ्रिक्शन विल बी क्रिएटेड. ठीक है, so it affects wind speeds in the lower atmosphere, and it is minimal over sea surfaces. Now gravitational force also acts downwards, थोड़ा सा gravitational force का भी effect रहता है. ठीक है, so what are the forces which affect the movement of wind? First of all we have the pressure gradient force, है ना, कि different pressures तो उससे हो रहा है. फिर Coriolis force due to the rotation of the earth. Then you have the centripetal force which acts perpendicular to the wind. ठीक है, एंड लास्टली वी हैव द फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, और ये हो गए चार टाइप के फोर्सेस. नाउ इसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो भी कोरियोलिस फोर्स के परपेंडिकुलर है, एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द विंड. सो जिस भी साइड में विंड इज ब्लोइंग, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी perpendicular to it. ठीक है, सो लेट मी जस्ट चेक वंस. यहाँ पे you will be able to see it. I have asked chat GPT to give diagrams. So देखो, pressure gradient force में क्या रहेगा, वही हाई प्रेशर टू लो प्रेशर द विंड विल बी फ्लोइंग, है ना. ये आइसोबार्स के केस में भी एज शोन, ये दिस इज अ गुड डायग्राम टू शो दिस, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, एंड ये सबको कंबाइन करके डायग्राम दिया है कि आगे ऊपर को देर इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, देन यू हैव द विंड विच इज फ्लोइंग हियर, कोरियोलिस फोर्स इस साइड लग रहा रहेगा, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, नाउ दिस इज अ साइड व्यू ऑफ दिस द सेम. सो इफ फॉर एग्जाम्पल वी हैव हाई प्रेशर एयर ओवर हियर, और यहाँ पे लो प्रेशर एयर है, सो द एयर विल मूव फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन. ठीक है, so this was the pressure gradient force. Next है Coriolis force. So this is primarily due to the Earth's rotation, है ना. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, इट विल टर्न टुवर्ड्स द राइट, जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उसकी राइट में चले जाएगा, मतलब इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट स्लाइटली बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स. ठीक है, तो एज यू कैन सी इट ओवर हियर, यहाँ पे सब जगह राइट जाते जा रहा है, सीधा जा रहा था राइट हो गया, नीचे को आ रहा है देन अगेन इट गोज टुवर्ड्स द राइट. ठीक है, सो दैट इज हाउ ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट को हो जाएगा, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में इट विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. ठीक है, देन यू हैव द सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होगा, इट इज़ प्राइमरली ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द नहीं द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है ना. तो ये वाला डायग्राम अच्छे से देखते हैं. देखो, सर्कुलर मोशन अगर हो रहा होता है कहीं पे भी, सो व्हाट हैपेंस इज दैट
towards the inner side we have the centripetal force, whereas the force which is acting मतलब बाहर की तरफ, that will be known as the centrifugal force. ठीक है, तो अंदर की साइड क्यों है, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रिंग होल्डिंग दिस बॉल, है ना, सो देयर विल बी अ फोर्स विच विल बी गोइंग इनसाइड, और एक बाहर की तरफ भी लग रहा रहता है, ठीक है, सो एंड दीज टू फोर्सेस आर जनरली बैलेंस्ड, है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसको हाउ डू यू रिमेंबर कि कौन सा वाला सेंट्रीपिटल है। देखो, जो फ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल एफ फार अवे जा रहा है, दूर जा रहा है उससे, दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल, और जो सेंटर की तरफ आ रहा है दैट विल बी सेंट्रीपिटल। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। और यहाँ पे दिया है um, हाँ, this is a good diagram. So with the centripetal force, the object moves in a circular path with speed v, and when the centripetal force is removed, then the object will start moving along a tangent. ठीक है, तो जब तक centripetal force है तब तक it will move along a circle, है ना, and once it goes it will start moving along the tangent. ठीक है, तो यहाँ पे वही mentioned है, it helps the wind to move in curved paths like cyclones, है ना. Now we have frictional force as well, और यहाँ पे क्या बोला था, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, पर वहाँ पे वी जस्ट रीड वंस मोर। फिर फ्रिक्शनल फोर्स एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ये तो हो गया था अच्छे से एक्सप्लेन, कि टेरेस्ट्रियल एरिया पे इट विल बी हायर ड्यू टू ये माउंटेन्स एंड अदर थिंग्स, है ना, सो दे एक्ट एज बैरियर्स एंड दस रिड्यूस द स्पीड ऑफ द विंड। ठीक है, एंड सी सर्फेस पे इट विल बी लो। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया है, friction force will slow down the wind. If the wind slows down, what will happen to the Coriolis force? Coriolis force will also slow down, है ना. Now the pressure gradient force will be greater than the Coriolis force, and the ठीक है, ये बोल रहा है कि for example a wind is blowing in this direction, यहाँ पे pressure gradient force लग रहा है higher pressure to lower pressure के लिए, है ना, and Coriolis force is acting यहाँ opposite direction में. ठीक है, सो द विंड विल ब्लो इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट यू कैन जस्ट सी इट कपल ऑफ टाइम्स टू रिमेंबर दिस थिंग. जैसे ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, देन यहाँ पे रहेगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दैट द विंड ब्लोज इन अ सर्कुलर डायरेक्शन. अभी जो भी विंड जहाँ पे भी ब्लो कर रहा और रहेगा उसका एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में वी विल बी हैविंग द फ्रिक्शन. ठीक है, सो दैट वे यू कैन फाइंड के रिजल्टेंट किस साइड आ रहा है एंड विच डायरेक्शन द विंड विल ब्लो. ठीक है, यहाँ पे भी दिया है सरफेस विंड, यहाँ लोअर प्रेशर टू हाई प्रेशर जाने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस साइड लग रहा है. ठीक है, विंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के ऑपोजिट वी आर हैविंग द कोरियोलिस फोर्स, है ना, एंड फ्रिक्शन विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड. ठीक है, एंड फिर इस इन सब का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ऐसे टेढ़ा जा रही रहेगी विंड. ठीक है, so that is all for this video. So I'm sorry, that is all for this topic. आगे बढ़ते हैं. So I'll make a final diagram showing all the things here, all the types of forces. First of all, pressure gradient force. ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एक हाई प्रेशर, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन है और यहाँ पे लो प्रेशर रीजन है. ठीक है, तो यहाँ लो प्रेशर टू आई एम सॉरी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा विंड. ठीक है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन इन विच द विंड विल फ्लो. ठीक है, नाउ अभी इफ यू लुक एट द कोरियोलिस फोर्स, है ना, इसको ऐसे उल्टा ले लेते हैं, इट विल बी इजियर टू मेक ओवर हियर. वेट अ सेकेंड, यहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस तरफ जा रहा है. ठीक है, दिस इज द
आइडियल डायरेक्शन ऑफ द विंड हैड देयर बीन नो अदर फोर्स। ठीक है, पर अभी क्या लग रहा है, कोरियोलिस फोर्स भी लग रहा है। कोरियोलिस फोर्स से क्या होता है, इट टर्न्स टुवर्ड्स द राइट, और यहाँ पे क्या दिया है, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रही है ना। नाउ वी विल बी मेकिंग द कोरियोलिस फोर्स। सो कोरियोलिस फोर्स लगेगा राइट साइड वाली डायरेक्शन में। सो दिस विल बी द कोरियोलिस फोर्स। ये है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अभी थर्ड क्या, अभी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बन रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी दिस। सो द विंड विल ब्लो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया। अभी इसके अलावा और क्या क्या फोर्सेस हैं, वी हैव द सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स से क्या होगा कि एक, आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये जो विंड है, इट इज़ फ्लोइंग अलोंग अ सर्कल। तो बेसिकली ये कर्व्ड, इसको एक कर्व्ड पाथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, इट विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, एंड इट विल प्रोवाइड अ कर्व्ड पाथ टू द विंड। ठीक है, तो ये ऐसे करके दिस इज हाउ इट विल बी अप्लाइंग। तो यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड कर्व्ड रहेगी ये वाली विंड, एग्जैक्ट ऐसे इस डायरेक्शन में नहीं रहेगा, इट विल बी लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया सेंट्रीपिटल की वजह से, है ना। एंड लास्ट व्हाट डू वी हैव, लास्ट थिंग इज द फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड लगता है, इट विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द दिस थिंग, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी ऑपोजिट टू द विंड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, तो इससे क्या होगा, इट वोंट बी एज मच, तो ये बस इसका स्पीड विल रिड्यूस। ठीक है, सो रिजल्टेंट लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, लास्ट में वी विल गेट अ विंड डायरेक्शन विल बी समवॉट लाइक दिस, हल्का सा कर्व रहेगा एंड टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो फॉर हियर फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड्स, है ना। सो जियोस्ट्रोफिक विंड्स का लोकेशन क्या है, दे आर जनरली प्रेजेंट इन द अपर एटमोसफेयर। ठीक है, नॉट द लोअर वन, सो इट इज नियरली 2 to 3 kilometers above the earth's surface. These winds are free from friction। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं, व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स is balanced by the Coriolis force, the wind will blow parallel to the isobar and that will be known as the geostrophic winds। हमें पता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है कोरियोलिस फोर्स, है ना। अभी देयर विल बी अ सिचुएशन व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स विल बिकम इक्वल टू द, मतलब इट विल गेट कम्प्लीटली बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, जो बहुत हाई स्पीड्स पे क्या होगा, इन इसका भी जो रिजल्टेंट आके ना, दिस विल बी सो मच दैट दे विल कैंसल आउट ईच अदर। अब कैंसल आउट हो गए तो क्या बचा, ये जो विंड है, दिस विल फ्लो पैरेलल टू द आइसोबार। ठीक है, तो ये दीज विंड्स आर नोन एज द जियोस्ट्रोफिक विंड्स, है ना। यहाँ पे दिया है, इट विल फ्लो पैरेलल to the isobar and then they will be known as geostrophic winds। ठीक है, now we look at global pressure belts and atmospheric cells। So this is a diagram showing the same, we'll read this and then look at the diagram in order to understand the topic properly। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, the horizontal distribution of pressure follows a latitudinal pattern of alternating high and low belts। ठीक है, जैसे यहाँ पे वही मेंशन है, फॉर एग्जांपल दिस इज द अर्थ ना, यहाँ पे इक्वेटर के पास में देयर विल बी अ लो प्रेशर जोन। ठीक है, उसके बाद में हाई प्रेशर जोन रहेगा, देन अगेन लो प्रेशर जोन रहेगा, और फिर पोलर रीजन्स में देयर विल बी अगेन हाई प्रेशर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू ओवर हियर, कि ऑल्टरनेटिंग बेल्ट्स ऑफ
लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर आर प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद नाउ वील बी लुकिंग एट द बेल्ट नेम, देयर लैटिट्यूड, induction type and characteristic features. So first of all we have the equatorial low, यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है equatorial low में क्या रहेगा, it ranges from the latitude 5 degree north till 5 degree south। ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में है। और इंडक्शन टाइप यहाँ पे रहेगा, इट विल बी थर्मल। देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इट इज़ अ जोन ऑफ इंटेंस हीटिंग एंड लो प्रेशर। ठीक है, इसको डोलड्रम्स भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ जोन ऑफ काम एंड देर इज एब्सेंस ऑफ एनी सर्फेस विंड्स। ठीक है, सो दिस इज अ लो प्रेशर जोन, है ना, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ जोन ऑफ काम बिकॉज देर इज एब्सेंस ऑफ एनी सर्फेस विंड्स एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज डोलड्रम्स। ठीक है, और यहीं पे कहीं पे आई टी सी जेड स्टैंड फॉर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, दिस इज अ लाइन आई टी सी जेड। नाउ आई टी सी जेड keeps shifting depending upon the season बट इट इज़ समवेयर ओवर हियर ओनली। ठीक है, तो वो क्या डिपिक्ट करती है, इट डिपिक्ट्स द कन्वर्जन जोन ऑफ ट्रेड विंड्स। ठीक है, एंड दस इट लीड्स टू हैवी कन्वेक्शनल रेनफॉल एज वेल। ठीक है, सो ये हो गया इक्वेटोरियल लो, है ना, उसको डोलड्रम्स भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ जोन ऑफ काम एंड देयर इज़ नो surface winds over there। ठीक है, एंड डोलड्रम का मीनिंग वही होता है, अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन और बिल्कुल काम वाला पीरियड, उसी को दैट इज ऑल्सो नोन एज डोलड्रम्स। ठीक है, और वही स्टैग्नेंसी स्टैग्नेशन उसी को डोलड्रम्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई जस्ट राइट इट डाउन, स्टैग्नेशन। ठीक है, नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल हाई, ये वाला, है ना, दैट इज हॉर्स लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं इनको, इट इज़ 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे रहेगा। ठीक है, सो दीज आर डायनामिक इंडक्शन टाइप। और फिर इसमें क्या होगा, दे विल बी फॉर्म्ड बाय द सब्सिडेंस ऑफ एयर फ्रॉम द हैडली सेल। हाँ, इसके बारे में भी आई टेल यू कि देर आर सम, ये रहा एग्जाम्पल। सो यहाँ पे वी वर लुकिंग एट द डोलड्रम्स, है ना, ये इक्वेटर पे वी हैव द डोलड्रम्स। उसके बाद में वी हैव द हॉर्स लैटिट्यूड्स, है ना, सो ये वाले हॉर्स लैटिट्यूड्स बोलते हैं, दीज आर द सब ट्रॉपिकल जोन्स। सो दीज आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द हैडली सेल, मतलब हैडली सेल का जो सिंकिंग एयर है दैट विल कम ओवर हेयर। ठीक है, एंड दे आर एसोसिएटेड विद क्लीन skies and deserts due to sinking air preventing cloud formation। ठीक है, so I'll just tell you what Hadley cell means। So as you can see from here, इक्वेटर पे क्या होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ सनलाइट ऑन इक्वेटर, है ना, डायरेक्ट सन आ रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग अप ऑफ द अर्थ विल हैपन। ठीक है, सो वंस दैट हैपन्स व्हाट विल हैपन इज, ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया। ठीक है, एज यू कैन सी हीट अप होके द एयर विल राइज अबव। ठीक है, एयर यहाँ से ऊपर जाएगी, हॉट एयर, तो यहाँ पे जगह बन जाएगी, दिस विल बिकम अ लो प्रेशर रीजन। देयरफॉर हाई प्रेशर जो सराउंडिंग हाई प्रेशर रीजन है उससे विंड विल फ्लो टुवर्ड्स दिस पोर्शन। ठीक है, अभी ये जो ऊपर एयर गई थी इट विल कूल डाउन। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा मूव करके इट विल स्टार्ट कूलिंग डाउन एंड देन इट विल कम डाउन, तो ये जहाँ पे वापस नीचे आ रही है दैट विल बी द हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, एंड दैट विल बी अ हाई प्रेशर जोन, यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज अ हैडली सेल, इस वाली सेल का नाम हैडली सेल है। अ सिमिलर सेल इज प्रेजेंट, और दो ऐसे सेल हैं ऊपर ऊपर, सेम थिंग, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो फिर वहाँ पे, है ना, फिर देन अगेन वी हैव हाई प्रेशर ओवर हियर। सो देर आर 3 cells in all,
One is the Hadley cell, then we have the Ferrel cell, and thirdly we have the polar cell. ठीक है? And how will you remember them? देखो, Hadley cell है सबसे पहले, है ना? तो हाँ, इसको ऐसे लर्न कर लो। इक्वेटर से पोल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। सो वी हैड फूड एंड देन वी हैड पुडिंग। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि हैड पहले आएगा, मतलब हार्डली सेल पहले है, उसके बाद में फेरल सेल है, एंड देन लास्ट में वी हैव द पोलर सेल। ठीक है, पोलर सेल को वैसे लर्न करने का ज़रूरत नहीं है, पोलर रीजन में होगा, है ना? फेरल सेल और हार्डली सेल में हैड पहले आएगा, देन फेरल सेल आएगा। ठीक है, व्हेन यू मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। वो ये याद रखना कि हॉर्स लैटिट्यूड्स बोलते हैं जो हाई प्रेशर जोन्स है ना, तो एच एच, एच से हाई प्रेशर एंड एच से हॉर्स। ठीक है, या सब ट्रॉपिकल हाई, है ना? और देयर विल बी क्लियर स्काईज एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ डेजर्ट्स, बिकॉज यहाँ पे कोई बारिश नहीं होगी। बारिश यहाँ पे हो जाएगी सारी लो प्रेशर जोन में। जहाँ पे भी राइजिंग एयर रहेगा, राइजिंग विंड्स रहेंगे, वहाँ पे बारिश होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सब पोलर लो। सो सब पोलर लो का क्या पोजीशन है, 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, नाउ कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज विल टेक प्लेस, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द साइट ऑफ पोलर फ्रंट्स एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म्स एज वेल। ठीक है, वेस्टर्लीज और पोलर, ये वाले जो वेस्ट, इनको वेस्टर्लीज बोलेंगे। ठीक है, और पोलर ईस्टर्लीज दोनों कन्वर्ज होंगे बिकॉज दिस इज अ लो प्रेशर जोन। ठीक है, जो हमारा सब पोलर लो है, इट इज़ अ लो प्रेशर जोन, so that is why westerly as well as polar easterlies will be meeting over here। ठीक है, एंड यहाँ पे मीट होके दे विल अगेन राइज अप। ठीक है, और फिर वहाँ पे इट विल बी एन एरिया वेयर देयर विल बी अ लॉट ऑफ रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सो ये इट इज़ अ साइट ऑफ पोलर फ्रंट्स एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। Then we have the polar high. This will be at the polar regions, मतलब poles पे रहेगा। यहाँ पे there will be extremely low temperatures, plus there will be no wind as such because it is a high pressure zone, है ना? High polar high। ठीक है, so extremely low temperatures cause air compression and increased density as well। ठीक है, सो इतना ही है इसमें। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टू एटमॉस्फेरिक सेल्स या ट्राइस, वही जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, वही यहाँ पे मेंशन्ड है। सो हार्डली सेल कहाँ पे के बारे में क्या है, राइजिंग एयर एट दी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन सिंक्स एट द सब ट्रॉपिकल हाइज, दैट इज 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, एंड इट कंप्लीट्स द लूप एज सरफेस ट्रेड विंड्स। ठीक है, फिर फेरल सेल्स में क्या होगा, सिंकिंग एयर एट 30 डिग्रीज एंड राइजिंग एयर एट 60 डिग्रीज, and these will be characterized at the surface by westerlies। फिर उसके बाद में polar cell, they will come subsiding air at poles will move towards middle latitudes as polar easterlies, and it will rise near 60 degrees। ठीक है, तो ये यहाँ पे पोलर ईस्टर्लीज जा रहे हैं। फिर इनका नाम कैसे डिसाइड होता है, जहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है एंड वेयर इट इज़ गोइंग, दैट डिसाइड्स कि उसका नाम क्या होगा, ईस्टर्ली होगा कि वेस्टर्ली होगा। सो इन दिस केस एज यू कैन सी, यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, देयरफॉर जहाँ से शुरू हो रहा है उसका, उसके बेसिस पे उसका नाम होगा। ठीक है, वेस्टर्ली। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्ट से जाके वेस्ट की तरफ जा रहा है, देयरफॉर द नेम विल बी ईस्टर्लीज। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे नेम द विंड्स। ठीक है, और यहाँ पे वी हैव द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, एंड मूव टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है।
है ना। तो दैट इज हाउ द नेम्स आर गिवन। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिटरी विंड्स। सो प्लानिटरी विंड्स आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट और प्रिवेलिंग विंड्स। ठीक है, permanent or prevailing winds, they constitute the large scale general circulation of the atmosphere. They blow consistently in the same direction throughout the year, thus redistributing heat from lower latitudes to higher latitudes in order to maintain global thermal equilibrium. ठीक है, तो यहाँ पे there is a diagram which is showing different um, planetary winds, है ना। वो यहाँ पे पहले इन्होंने Hadley Silver वगैरह बता दिया. अभी they will be talking about these westerlies, easterlies, etc. Those are known as the planetary winds. ठीक है. So before starting this, we will do these questions first. उसके बाद में देख लेंगे इनको, है ना. So first question क्या है? Consider the following statements. In the tropical zone, the western section of the oceans are warmer than the eastern sections owing to the influence of trade winds. अच्छा, तो यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्वैप. ठीक है. इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशन वार्मर दैन द वेस्टर्न सेक्शंस. अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्वैप. ठीक है. सो इन दीज केसेस वेयर यू कांट अराइव, मतलब दोनों ही जगह हो सकता है स्वैप, you cannot be using intelligent guessing. Instead you have to go logically according to what you have studied. ठीक है. तो यहाँ दोनों केसेस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्वैप, सो वी विल बी लुकिंग एट ये कौन सा सही है. सो इन द ट्रॉपिकल जोन वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस, तो देखो ट्रॉपिकल जोन्स में क्या फ्लो करते हैं. वी हैव द ईस्टर्लीज, मतलब कि उसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं, है ना. सो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहाँ से आएंगे? नॉर्थ ईस्ट से. ठीक है, ऐसे करके रहेंगे वो, ऐसे करके कुछ. तो यहाँ से ठंडा आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है. तो वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर दैन द ईस्टर्न सेक्शन. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज करेक्ट. ठीक है, ये सही हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्या है? इन टेम्परेट जोन्स वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशन वार्मर दैन द वेस्टर्न सेक्शन. अगेन दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है तो वेस्टर्न सेक्शन विल बिकम कोल्डर बिकॉज यहाँ पे पहुँच गया है. ठीक है, इस बात यहाँ पे अगर हम इक्वेटर पे देखेंगे ट्रॉपिकल जोन में, तो ये वेस्टर्न पोर्शन ऑफ दैट ओशन विल बी कूलर दैन द ईस्टर्न पोर्शन, है ना, ड्यू टू द विंड्स. सिमिलरली अगर हम वेस्टर्लीज के केस में देख रहे हैं, वेस्टर्लीज के केस में क्या होगा? वेस्टर्लीज मूव फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, है ना, ऐसे करके कुछ जा रहे हैं. ठीक है, इन दैट केस इफ यू आर लुकिंग एट द टेम्परेट जोन, सो टेम्परेट जोन पे व्हाट विल बी द सिनारियो? यहाँ पे जो वेस्टर्न पोर्शन है ऑफ द ओशन दैट विल बी वार्मर दैन द ईस्टर्न पोर्शन. अरे नहीं, उल्टा, ये यहाँ से क्योंकि वार्म विंड्स आ रही है ना, नीचे से अगर ऊपर जा रहा है दैट मीन्स वार्मर विंड्स आर कमिंग अप. ठीक है, सो दिस पोर्शन विल बी वार्मर एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पोर्शन. ठीक है, सो अगेन सेकेंड स्टेटमेंट हियर इज ऑल्सो ट्रू. So according to this, the answer should be both 1 and 2 are right. ठीक है, C. Next question, consider the following statements. The wind which blows between 30° north and 60° south latitudes throughout the year are known as westerlies. 30° नॉर्थ और 60 नहीं, देखो ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया. इसमें दो तीन विंड्स अलग अलग ब्लो कर रहे हैं, तो दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, फिर the moist air masses that cause winter rains in the northwestern region of India are a part of the westerlies. कब का है? विंटर रेन्स के बारे में पूछ रहे हैं. विंटर के टाइम पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहाँ पे रहेगा? इट विल बी लोअर.
ठीक है, तो उसमें वेस्टर्लीज नहीं आएंगी, उसमें आएगा नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, अगेन दिस हैज़ टू बी डन बाय नॉलेज, एंड वंस वी रीड द theory below we'll be able to answer this in a better manner. ठीक है, आंसर वैसे क्या है इसका, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट, दैट इज द moist air masses that cause winter rains are a part of the westerlies. ठीक है, आगे आगे पढ़ के देन we'll come back to the question. So first of all ट्रेड विंड्स है ना, दे जनरली यहाँ पे जो है इक्वेटर के पास में, this is a better diagram. So these are the trade winds. So we have northeast trade winds and southeast trade winds as well. So these are on both sides of the equator. ठीक है, so trade winds generally blow from east to west, from subtropical high to equatorial low, है ना, ITCZ तक जाते हैं, and east to west में. ठीक है, characteristics क्या है कि they are more the most consistent in force as well as direction. ठीक है ना, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में देख लेते हैं. सो व्हेन टू ट्रेड विंड्स मीट एट द इक्वेटर, दे क्रिएट द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. ठीक है, उसको डोलड्रम्स भी बोलते हैं, दैट इज अ लो प्रेशर रीजन, है ना, और वहाँ पे देर इज़ नो नॉट मच एक्टिविटी. ठीक है, तो इंटेंस हीट causes the ocean water to evaporate, thus leading to rising air, clouds and heavy rainfall. And they are also known as the thermal equator. This is very important, that the ITCC is known as the thermal equator. ठीक है, and also forces moisture to rise, ये तो normal है. And calm windless equatorial ocean belt को doldrums बोलते हैं. ठीक है, and there is a lot of convection going on there, and heavy rains also occur frequently. ठीक है, now onshore on the eastern coast of continents and tropical region, क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स होते हैं दे ब्रिंग मॉइस्चर एंड हेवी रेनफॉल इन दीज एरियाज. ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखोगे अगर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स को, हाँ ये रहा ईस्टर्ली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये येलो पोर्शन से हमें पता चल रहा है कि जैसे ये कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, इसका जो ईस्टर्न पोर्शन है उस पर दीज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ, ये रहा, they will bring moisture and heavy rainfall in these areas. ठीक है, so offshore on western coasts in the tropical region, देखो हमें ये तो पता चल गया कि ईस्टर्न कोस्ट पे ऑनशोर विंड्स आएंगी, वेराज वेस्टर्न कोस्ट पे दे विल बी ऑफशोर, बिकॉज यहाँ से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं ना, हाँ यहाँ नॉर्थ से ईस्ट से आ रहे हैं, सो वेस्टर्न कोस्ट पे ऑनशोर नहीं पड़ेंगी, दे विल बी ऑफशोर. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर. Onshore on eastern coast of continents in the tropical region and eastern coasts पे there will be heavy rainfall, whereas western coast पे there will be offshore winds, therefore they will lead to dry conditions, है ना. offshore रहेंगी because they won't be, देखो यहाँ तो ocean से आ रहे हैं, है ना, ocean से they will pick up moisture and then result in rainfall on the eastern coasts. ठीक है, बट नाउ बाय द टाइम दे रीच द वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ से ट्रैवल करके वेस्ट पे पहुँच रहे हैं, तो दे बिकम ऑफ शोर विंड्स. ठीक है, सो देयर विल बी नो मॉइस्चर ओवर हियर, है ना, सो दीज विल बी ड्राई विंड्स व्हेन दे रीच द वेस्टर्न कोस्ट. ठीक है, तो यहाँ वही दिया है कि ऑफ शोर एंड वेस्टर्न कोस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन लीडिंग टू ड्राई कंडीशंस एंड डेजर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, सो यू हैव कहाँ गया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स जो है सहारा, आटकामा डिजर्ट, कालाहारी, ऑल ऑफ दीज deserts will be found on the western coasts because no moisture is reaching them.
वाया दीज ईस्टर्लीज। ठीक है, फिर क्लाइमेटिक इम्पैक्ट देख लेते हैं। Heavy rain on eastern tropical coasts and it is dry towards the western margins. So we have already read this over here as well, है ना, इन दोनों पॉइंट्स में वही mentioned है। ठीक है, नाउ ये हो गया। उसके बाद वही trade wind deserts, this is a repetition of the above 2 points. Now in the tropical zone, western sections of the ocean are warmer than the eastern sections of the ocean. And why is it so? Because ऑफ दिस नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स ओनली, है ना, क्योंकि यहाँ ऊपर से आ रहे हैं वो, दे विल बी कोल्ड, है ना, बाय द टाइम दे रीच दिस पोर्शन देयरफॉर विल बी कोल्डर, है ना, ये वाला पोर्शन इज कोल्ड एंड हाईलाइटेड फॉर दिस, ये वाला दिस विल बी कोल्डर रीजन। ठीक है, सो उससे जो भी हवाएं आ रही है दे विल बी कोल्ड एज वेल, देयरफॉर जो वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द ओशन रहेगा दैट विल बी कोल्डर एज कंपेयर टू द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द ओशंस। ठीक है, इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। तो यहाँ पे वही मेंशन्ड है, इन द ट्रॉपिकल जोन वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशन आर वार्मर, लिखा है अच्छा, than the eastern sections। रुको, there's some problem here because, ठीक है एक सेकेंड, यहाँ पे रीज़न ये है कि ऐसे क्यों हो रहा है, देखो, when the northeasterly trade winds they move, they will carry water along with them। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि trade winds blow from the east to west in the tropics, that is near the equator, and as they blow they will drag surface water with them। और जो surface का ocean water रहेगा that will be warm। ठीक है, तो वो ईस्ट से ड्रैग करके वेस्ट की तरफ ले जाएंगे गर्म पानी, वेराज जो ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द ओशन रहेगा वहाँ पे अपवेलिंग करके ठंडा पानी विल कम इन टू प्लेस। ये एज यू कैन सी ओवर हियर, ये ट्रेड विंड्स क्या करेंगे, ये गर्म पानी दे विल टेक टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट और ईस्ट में अपवेलिंग करके ठंडा पानी विल बी प्रेजेंट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट विल बी हैपनिंग देयर, है ना। सो आई हैड गॉटन कंफ्यूज्ड ओवर देयर वंस, तो यही रहेगा उसका रीज़न। ठीक है, तो ये ऐसा इसी से वो सब होता है, एल नीनो वगैरह, ऑल ऑफ दीज ओरिजिनेट फ्रॉम हियर ओनली। सो व्हाट इज हैपनिंग, देखो ये ट्रेड विंड्स हैं, दे विल टेक द वाटर अलोंग विद देम टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, और फिर यहाँ पे क्या रहेगा, सिंस द सरफेस वाटर हैज़ बीन रिमूव्ड, तो नीचे से ऊपर आ जाएगा पानी, जो नीचे से ऊपर आएगा दैट विल बी नोन एज अपवेलिंग ऑफ वाटर एंड दैट विल बी कोल्ड वाटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वार्म वाटर ट्रेड विंड्स के साथ चले गया और नीचे से ऊपर कोल्ड वाटर आ गया। ठीक है, सो यू कैन सी दैट इन द डायग्राम, यहाँ पे भी वही दिया है। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज द रीजन विच हैज बीन मेंशन्ड हियर। ओशनिक इफेक्ट, इट विल पुश वार्म वाटर टुवर्ड्स द वेस्ट, है ना, वेस्ट की तरफ वार्म वाटर पुश कर दिया, सरफेस वाटर को वेस्ट की तरफ पुश कर दिया। ठीक है, सो द ओशनिक वाटर विल बी वार्मर ऑन द वेस्ट, वेर एज ईस्ट पे क्या होगा, सिंस द सरफेस वाटर हैज़ बीन पुश्ड अवे, तो नीचे से अपवेलिंग होके कोल्ड वाटर विल कम इन टू प्लेस। ठीक है, सो दैट इज वॉट इज हैपनिंग हियर। सो वेस्टर्न ट्रॉपिकल ओशंस आर वार्मर दैन द ईस्टर्न वंस। ठीक है, and next we'll be looking at the westerlies. So we just saw the easterlies, that is northeast trade winds को हमने देख लिया, है ना, and we were primarily talking about the northern hemisphere। Similar thing happens in the southern hemisphere as well। तो अभी हम लोग देखते हैं वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज में क्या होगा, ये वेस्टर्लीज ब्लो जनरली फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, है ना, तो मतलब कहाँ से जा रहे हैं, सब ट्रॉपिकल हाई से दे आर मूविंग टू द, ये वाला अच्छा डायग्राम ये रहेगा। सो दे आर मूविंग फ्रॉम द हॉर्स लैटिट्यूड्स, हॉर्स लैटिट्यूड्स को क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई से लेके सब पोलर लो तक जा रहा है वो। ठीक है, सो दीज आर द वेस्टर्लीज, है ना, एंड बस इसमें इतना ही दिया है, दे ऑल्सो कर्व
slightly due to the Coriolis force, so they curve towards the right. और वो वेस्टर्लीज है बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम द वेस्ट टूवर्ड्स द ईस्ट. ठीक है, सो जहाँ पे भी ओरिजिनेट होते हैं वेस्ट में ओरिजिनेट हो रहे हैं, देयरफॉर दे विल बी नोन एज द वेस्टर्लीज. ठीक है, सो उनका हम देख रहे थे. दे ब्लो जनरली फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू द सब पोलर लो, है ना. Now they are stronger in the southern hemisphere because less land is present over there. ठीक है, and there is a predominance of water. ठीक है, अभी इनका नाम भी होता है कुछ कुछ. सो एग्जाम्पल्स ऑफ देयर नेम्स, पहले तो वील लुक एट द लैटिट्यूड इन विच दे फ्लो. सो यू शुड, अभी हमने पढ़ा था कि इक्वेटोरियल लोज कहाँ रहेंगी 5 डिग्रीज तक, 5 डिग्रीज नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक, है ना. दोज विल बी द इक्वेटोरियल लो. फिर सब ट्रॉपिकल हाई कहाँ पे रहेगा, इट विल बी एट 30 डिग्रीज और सो, है ना. देन सब पोलर लो कहाँ पे रहेगा, इट विल बी एट अराउंड 60 डिग्रीज और सो. एंड देन पोलर हाई कहाँ पे, बिल्कुल पोल पे 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, है ना. तो यहाँ पे वही दिया है. तो अभी फिर if you can see where does the westerly flow, it flows in from the subtropical high. कहाँ गया, हाँ, it flows from the subtropical high to the subtropical, गलत, subtropical high to subpolar low. ठीक है, यहाँ पे फ्लो कर रहा रहता है ना. वी नो दिस ऑलरेडी, है ना. तो इसमें देखो सब ट्रॉपिकल हाई पे कितना रहेगा, व्हाट विल बी द लैटिट्यूड 30 डिग्रीज, और सब पोलर लो कहाँ पे 60 डिग्रीज. तो इन दोनों के बीच में देयर विल बी वेरियस लैटिट्यूड्स, और उनका उन पे जो विंड फ्लो कर रही है दे हैव बीन नेम्ड डिफरेंटली. ठीक है, जो वेस्टर्लीज हैं उनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं. सो वी हैव 30 के बाद क्या आएगा, 40, 50 एंड 60. तो रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्क्रीमिंग 60s. ठीक है, ये उनके नाम है. नाउ वेस्टर्लीज का इम्पैक्ट क्या रहेगा ओशन के ऊपर, ओशन वाटर. सो थिंक अबाउट इट दिस वे, वेस्टर्लीज यहाँ पे है ना. तो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, दे विल बी फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट टूवर्ड्स द ईस्ट. ठीक है, तो ये जा रहा है, ये जो येलो एरो है दैट इज शोइंग द सरफेस मूवमेंट, और ये जो ऊपर वाला एरो है ये ऊपर का, ऊपर वाले एटमॉस्फेयर का मूवमेंट दिखा रहा है. ठीक है, so we'll be looking at this arrow first. I'll just make it yellow in color. Wait a second. ये येलो एरो दिखा रहा है. ठीक है, तो ये येलो एरो कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है ना. सो व्हाट विल इट बी डूइंग, यहाँ पे से इट विल टेक द वार्म वाटर एंड पुश इट टूवर्ड्स द ईस्ट. ठीक है, सो ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द ओशंस at the polar regions will be warmer as compared to the western portion of the सीज, वेस्टर्न रीजन्स. ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो वाटर को ले लेके ईस्ट में छोड़ते जा रहा है ना. सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर. ये वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशंस वार्मर एज कंपेयर टू द वेस्टर्न सेक्शंस. ठीक है, तो इतना ही मेंशनड है. फिर इंडिया का लिंक देख लेते हैं. दे these westerlies are responsible for bringing rain-bearing western disturbances to northwest India during winter. ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, दे आर जनरली मॉइस्ट एयर मासेस, जिससे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देयर इज अ लॉट ऑफ रेनफॉल विच टेक्स प्लेस इन विंटर. ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, नाम ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, तो दे आर कॉज्ड ड्यू टू वेस्टर्लीज. ठीक है, एंड दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो, है ना, ऊपर हमने देखा था. नेक्स्ट देख लेते हैं. क्लाइमेट चेंज, सो पोलवर्ड शिफ्ट इट reduced winter rainfall in Mediterranean climates. ठीक है,
तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, देयर इज अ पोलवर्ड शिफ्ट टू ऑफ द, ये जैसे कि यहाँ ऊपर में भी द ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज जो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज हैं दे आर बीइंग अफेक्टेड बिकॉज जो ITCZ है हमारा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इट इज़ गेटिंग शिफ्टेड, ठीक है, तो उससे रेनफॉल बेल्ट्स वगैरह भी शिफ्ट हो रहे हैं एंड दैट इज़ रिस्की फॉर अमेजोन एंड कार्बन सिंक्स, कॉन्गो के कार्बन सिंक्स, ठीक है। Similarly, in this case also due to the climate change, the westerlies are moving towards the pole, है ना, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होते जा रही है ना, सो इट इज़ therefore there is reduced winter rainfall in Mediterranean climates, ठीक है, और इसको केप टाउन क्राइसिस भी बोलते हैं। लेट मी चेक व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। केप टाउन क्राइसिस, ठीक है, वो ऐसे डे ज़ीरो क्राइसिस करके एक हुआ था, वहाँ पे देयर वाज एक्सट्रीमली लो वाटर बिकॉज ऑफ मतलब एक्सट्रीमली लो रेनफॉल, ठीक है, तो उसको केप टाउन क्राइसिस बोलते हैं, है ना, उनके डैम्स वगैरह एवरीथिंग हैड रन ड्राई ड्यू टू दिस। सो बस यही बोल रहे हैं कि इफ देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लाइमेट चेंज हैपनिंग, तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से द वेस्टर्लीज विल मूव टूवर्ड्स द पोल, therefore there will be reduced rainfall in certain regions, तो उससे वही ड्रॉट वाली सिचुएशन हो सकती है। सो दिस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, बस पता होना चाहिए कि रिड्यूस्ड रेन, केप टाउन क्राइसिस एज सच यू डू नॉट नीड टू नो, ठीक है। नाउ वील बी लुकिंग एट पोलर ईस्टर्लीज, तो पोलर ईस्टर्लीज कहाँ पे रहेगा, इट विल बी फ्रॉम द सब पोलर लो, सॉरी, पोलर ईस्टर्लीज है मतलब कि पोलर हाई, जहाँ पे हाई प्रेशर है, दे विल बी कमिंग टू द सब पोलर लो, ठीक है, सो यहाँ पे रहेगा वो पोलर हाई से दे विल कम टूवर्ड्स द, यहाँ पे सब पोलर लो रहेगा, फॉर एग्जांपल दे विल कम टूवर्ड्स दिस प्लेस, है ना, और इट, हाँ ये वही है, ये दिखाया हुआ है ना यहाँ पे रेड रेड वाली लाइंस से, है ना, दिस डिपिक्ट्स द सेम थिंग, ये, ठीक है। सो पोलर रीजन से सब पोलर लो की तरफ जा रहा है एंड सिंस ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड डेंस एयर विच इज सबसाइडिंग एट द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स ब्लोज टुवर्ड्स द सब पोलर लोज। As this cold air moves towards the 60-degree latitude, it converges with the warmer westerlies, thus forming the polar front, ठीक है, so this is important, ये 60 डिग्री लैटिट्यूड के पास जा रहा है तो वेस्टर्लीज के साथ इट विल कोलाइड। वेस्टर्लीज कहाँ से, नीचे से आ रहे हैं, है ना, ये वेस्टर्लीज आ रहे हैं, ये आ रहा है ऊपर से पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है, बोथ ऑफ देम विल कोलाइड एंड फॉर्म अ, मतलब फ्रंटल साइक्लोन्स की यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर, they are forming polar front, thus formation of temperate cyclones will happen here, temperate extratropical cyclones will happen in the middle latitudes, ठीक है। नेक्स्ट we'll be studying about jet streams। सो जेट स्ट्रीम का वैसे डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। jet streams are very fast, that is around 400 to 500 kilometers per hour के स्पीड पे चलने वाले narrow meandering air currents in the upper troposphere or lower stratosphere above 9 to 13 kilometers, ठीक है, so they are very fast narrow meandering air currents in the upper troposphere या lower stratosphere, मतलब कि अराउंड हमारा ट्रोपोस्फेयर कितने किलोमीटर्स पे शुरू, इट एंड्स एट अराउंड 12 किलोमीटर्स, ठीक है, 12 किलोमीटर्स हमने माना हुआ है, 18 एट द इक्वेटर एंड 8 एट द पोल्स, ठीक है, तो एवरेज 12 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। सो
उसी में वहीं पे जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर एंड करता है वहाँ पे देर आर वेरी फास्ट एयर करंट्स, दोज आर नोन एज जेट स्ट्रीम्स। ठीक है। सो सीजनैलिटी क्या है इनका, दे शिफ्ट विद द सन, so they move towards the poles in the summer and equator towards the equator in the winters। ठीक है। सो मेजर टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स देख लेते हैं हम लोग पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सब ट्रॉपिकल जेट्स। सब ट्रॉपिकल जेट्स हैं, फिर पोलर फ्रंट जेट है, देन वी ऑल्सो हैव ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स। ठीक है, ऑल दीज थ्री आर इम्पॉर्टेंट जेट स्ट्रीम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है सब ट्रॉपिकल जेट, इसमें क्या है, दे आर कांस्टेंट इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर, है ना, एंड इट इन्फ्लुएंसेस द इंडियन मानसून का ऑनसेट व्हेन इट विड्रॉज फ्रॉम द हिमालयाज। वेट लेट मी जस्ट चेक, ये रहा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये रहा, ये है पोलर जेट स्ट्रीम, एंड देयर इज ऑल्सो अ टेम्परेरी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट एज वेल। ये तो जेट स्ट्रीम्स में यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। एक तो इट इज़ अबव द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, इट इज़ नॉट नियर द सर्फेस, इट इज़ अबव द ट्रोपोस्फेयर, तो 12 किलोमीटर्स 13 किलोमीटर्स यहाँ पे कहीं पे रहेगा वो जेट स्ट्रीम। ठीक है, दीज आर वेरी फास्ट एयर करंट्स, है ना। सेकेंड थिंग ये पता होनी चाहिए। थर्डली, टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स, सो वी हैव प्राइमरली टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप है सब ट्रॉपिकल जेट, सो इट विल बी इन द सब ट्रॉपिकल रीजन्स, एंड रिमेंबर दैट जो भी जेट स्ट्रीम्स होते हैं दे आर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ये वाला भी वेस्ट टू ईस्ट है और ये वाला भी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है। बस जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है दैट इज़ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, बाकी दोनों आर वेस्टर्लीज, मतलब दे बिगिन फ्रॉम द वेस्ट एंड गो टू द ईस्ट। एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस, link it to how our earth rotates, earth also rotates from west to east। ठीक है, तो वैसे करके आप रिमेंबर कर लो कि द दिस jet streams also move from west to east। ठीक है, तो ये हो गया आपका लर्न। नेक्स्ट क्या है, सब ट्रॉपिकल जेट कहाँ पे रहेगा, सब ट्रॉपिकल रीजन में। एंड वन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन या आप बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ इट्स इफेक्ट वुड बी दैट जब ये हटता है यूजुअली इन द विंटर्स और सो इट विल बी इन द हिमालयन रीजन्स। ठीक है, हिमालयन रीजन्स में के थ्रू भी इट विल बी फ्लोइंग, एंड ओनली when it withdraws from the Himalayas, only then does the Indian monsoon start। ठीक है, सो इंडियन मानसून का जो ऑनसेट है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द विड्रॉल ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फ्रॉम द हिमालयाज। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द पोलर जेट स्ट्रीम, वो वहाँ पे पोलर रीजन वाली जगह पे रहेगा। ठीक है, एंड द थर्ड टाइप इज़ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, दिस इज़ अ टेम्पररी जेट स्ट्रीम, एंड इसका भी एक इंडियन कनेक्शन है दैट इट विल बी स्टीयरिंग ट्रॉपिकल डिप्रेशंस इनटू इंडिया। ठीक है, तो ओडिशा वगैरह में ऑल ऑफ दोज, ये ईस्ट टू वेस्ट है ना, तो ओडिशा वगैरह में साइक्लोन वगैरह आते हैं ना, दे कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द रॉस्बी वेव्स। रॉस्बी वेव क्या है, कुछ नहीं है, ये बस वेव लाइक पैटर्न्स हैं, दीज आर प्राइमरली फॉर्म्ड इन द पोलर फ्रंटल जेट। वहाँ पे क्या रहेगा, ड्यू टू टेम्परेचर डिस्पैरिटीज़ एंड अदर एंगुलर मोमेंटम के कुछ कुछ रीजंस की वजह से these pronounced wave-like patterns meanders will be developed by jet streams due to conservation of angular momentum and temperature disparities। ठीक है, so this is all that you need to know about this। फिर climate change impact क्या है, as the Arctic and Antarctic portion are getting warmer due to global warming, the temperature gradient within the tropic weakens। ठीक है, सो दैट इज़ वन रीज़न वाई द जेट स्ट्रीम्स आर स्लोइंग डाउन एंड ज़्यादा मियांडर करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मियांडरिंग मतलब ये ऐसे वेव लाइक फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है। सो व्हाट विल हैपन, ये वाला जहाँ पे ऐसे अपर साइड पे है वहाँ पे देयर विल बी हीट वेव, वेर एज जो यहाँ पे नीचे को हो गया है वहाँ पे इट विल बी प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड स्पेल हो जाएगा वहाँ पे।
ठीक है, सो डीप कोल्ड स्पेल विल बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, सो दैट इज ऑल। तो रॉस्बी वेव्स में इंक्रीज इन केस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट पोलर वॉर्टेक्स। ठीक है, तो पोलर वॉर्टेक्स इज लाइक अ वेरी वेरी बिग साइक्लोन टाइप का कुछ चीज़ रहेगा, एंड इट विल बी ओनली इन द पोलर रीजन्स। ठीक है, सो आई विल टेल यू व्हाट इट इज। इट इज़ अ लार्ज persistent area of low pressure and extremely cold air which surrounds both of the earth's pole. So as you might be knowing, exact pole पे क्या होता है, it is polar high, है ना, हाई प्रेशर होता है पोल पे। ठीक है, बट उसके सराउंडिंग एरियाज में देयर विल बी लो प्रेशर। ठीक है, सो वही लार्ज एरिया ऑफ persistent low pressure and extremely cold air which surrounds both of earth's pole will be known as the polar vortex। ठीक है, तो यहाँ पे वही रहेगा, देयर विल बी एयर प्रेशर एज वेल एज लॉट ऑफ विंड्स सराउंडिंग द आर्कटिक एज वेल एज इंटार्कटिक का मेरे को पता नहीं होता है कि नहीं। एंड दे विल स्विच बिटवीन टू फेजेस। तो यहाँ पे एक फेज है, ये दूसरा फेज है, स्टेबल पोलर वोर्टेक्स का फेज है एक, एंड द अदर फेज इज फेज ऑफ वेवी पोलर वोर्टेक्स। ठीक है, स्टेबल पोलर वोर्टेक्स कब रहेगा, व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम प्रेजेंट। ठीक है, एंड अनस्टेबल या वेवी पोलर vortex will be when there is a weak jet stream present। ठीक है, and this are um, there is a switch between these two, it happens commonly। तो कभी कभी ये stable बनेगा, कभी it will be wavy, and this switch is known as the arctic oscillation। ठीक है, and it contributes to winter weather patterns as well। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि आर्कटिक ऑसिलेशन क्या होता है। तो इसमें यही होगा, कहीं कहीं पे स्टेबल पोलर वोर्टेक्स बन जाएगा जब द जेट स्ट्रीम इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, एंड व्हेन द जेट स्ट्रीम इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, इट इज़ वीक, देन दीज रॉस्बी वेव्स विल बी फॉर्म्ड। ज़्यादा बड़े वाले रॉस्बी वेव्स विल बी फॉर्म्ड, एंड अ वेवी पोलर वोर्टेक्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, फीचर्स क्या हैं पोलर वोर्टेक्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ एयर रहेगा इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वेयर एज इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर इट विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो डू रिमेंबर दैट इट इज़ अ काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ एयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इट कंटेन्स द कोल्डेस्ट एयर नियर द पोल्स बाय द पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम इन द अपर एटमोसफेयर। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है डायग्राम से। फिर सीजनल बिहेवियर क्या है, इट विल वीकन ड्यूरिंग द समर and it will strengthen significantly during the winters। ठीक है, vortex का disruption भी होता है in winter as the vortex expands the polar jet stream, polar front jet stream, it may shift towards the equator or develop very large Rossby waves। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, jet stream gets weakened, है ना, एंड दिस वीकेंड जेट स्ट्रीम अलाउज अ पोर्शन ऑफ द वोटेक्स टू स्प्लिट और डिप साउथवर्ड, तो उसको हम लोग पोलर आउटब्रेक बोलते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, ये वीक सा है, ये इसको कंटेन नहीं कर पा रहा है पोलर वोटेक्स को, सो दिस पोलर वोटेक्स विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग दिस एरिया एज वेल। ठीक है, इसको बोलेंगे हम पोलर आउटब्रेक। सो व्हाट विल हैपन इज दैट ये कनाडा वाले रीजन्स में इट विल बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, पोलर रीजन जैसे तो नहीं, मतलब इट विल बी वेरी वेरी कोल्ड देयर। ठीक है, दैट इज नोन एज पोलर आउटब्रेक, एंड दिस इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू अ वीकेंड जेट स्ट्रीम। ठीक है, एंड दिस ब्रिंग्स आर्कटिक एयर इनटू द मिडिल लैटिट्यूड्स, यूएस और कनाडा वगैरह में, सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड ओवर देयर। ठीक है, देन ओजोन कनेक्शन क्या है, अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल वोर्टेक्स कैन ट्रैप कोल्ड एयर, है ना, ये कोल्ड एयर को ट्रैप करा हुआ है, दस फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ठीक है, विच प्रोवाइड सर्फेसिस फॉर केमिकल रिएक्शंस दैट एक्सेलरेट ओजोन डिप्लीशन। सो अगर स्टेबल वोटेक्स हुआ, जो हम लोग वैसे तो अच्छा मानते हैं, बट स्टेबल वोटेक्स से क्या होता है, इट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ठीक है, पीएससीज बोलते हैं इनको, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, दीज आर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। और ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, इट इज़ इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन इज ऑल्सो इन द स्ट्रेटोस्फेयर ओनली।
ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं दे विल प्रोवाइड सरफेस फॉर केमिकल रिएक्शंस विद फॉर ओजोन। ठीक है, तो उसमें ओजोन डिप्लीशन काफ़ी हो जाती है। एंड देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट द होल इन एंटार्क्टिका, इवन आर्कटिक में भी, है ना। सो ओजोन होल होता है ना। सो polar stratospheric clouds are the reason for the ozone hole. ठीक है, and this happens primarily when a strong स्टेबल वोटेक्स इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये ऐसे कैच 22 सिचुएशन है कि हमारे लिए स्टेबल पोलर वोटेक्स इज ऑल्सो हेल्पफुल एज वेल एज इट इज़ हार्मफुल इन सम मैनर, वेर एज वेवी पोलर वोटेक्स इज ऑल्सो हेल्पफुल एज वेल एज हार्मफुल इन सर्टन मैनर्स इन सम केसेस। ठीक है, तो ये प्राइमरली जो वेवी वाला है इट इज़ प्राइमरली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये अनस्टेबल सा बना है, वीक जेट स्ट्रीम बनी है ना। वीक जेट स्ट्रीम से रोस्बी वेव्स ज़्यादा बन गई हैं। सो पोलर आउटब्रेक हैपन्स और यहाँ बहुत एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है। ठीक है, सो दिस थिंग दीज ऑल दीज थिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट लोकल विंड्स। So local winds are basically regional air movements which are confined to the lowest level of the troposphere, and they are produced by localized differences in temperature and pressure. तो ये सिंपल चीज़ मेंशन्ड है यहाँ पे कि रीजनल मूवमेंट्स है एंड दे विल बी एट द लोएस्ट लेवल्स ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एज वेल, है ना। और लोकल डिफरेंसेस जो रहेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर में, दे विल बी द वंस विच विल कॉज द लोकल विंड्स। ठीक है, नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकल विंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वार्म या हॉट लोकल विंड्स। यहाँ पे थोड़े से विंड्स के एग्जांपल्स दिए हैं बट ठीक है अच्छे से पढ़ेंगे। वार्म या हॉट लोकल विंड्स होते हैं, देन वी हैव कोल्ड लोकल विंड्स एंड देन वी हैव पीरियोडिक लोकल विंड्स एज वेल। ठीक है, वार्म या हॉट, then cold local winds and periodic local winds which are diurnal in nature, है ना। तो these are the examples of various warm or hot local winds given over here। फिर यहाँ पे cold local winds के examples दिए हैं एंड देन ये periodic winds के examples दिए हैं। ठीक है, तो I'll just show a diagram proper type। इस मैप में सारों के नाम नहीं दिए ना। देखो लू है, चिनूक दिया है, चिनूक है, फोन है, सिरोको, हार्मटान एंड बर्ग। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो इस डायग्राम इस मैप में इट इज़ गिवन इन अ मेटा मैनर ऑल ऑफ द लोकल विंड्स। ठीक है, सो जो ऑरेंज येलोइश ऑरेंज जो भी है ना, वो सारे हॉट लोकल विंड्स हैं, वार्म लोकल विंड्स हैं, वेर एज द ब्लू वंस आर द कोल्ड वंस। ठीक है, सो वी विल बी ट्राइंग टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास में, इन नॉर्दर्न अमेरिका वी हैव 3 हॉट विंड्स। वन इज चिनूक, फिर सेंटा आना और ब्लैक रोलर। ठीक है, सो बोथ ऑल दीज 3 आर इन यूएसए साइड है, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्दर्न अमेरिका। ठीक है, इसको अब लर्न कैसे करेंगे हम लोग। देखो चिनूक, चिनूक करके वो एयरक्राफ्ट भी होता है। हाँ, 2 साइड उसका नहीं, उसके 2 एयरक्राफ्ट नहीं, वो हेलीकॉप्टर टाइप रहता है, चॉपर, एंड इट हैज़ 2 सेट्स ऑफ रोटर्स। ठीक है, सो चिनूक करके रहता है ना। सो द नेम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, एंड हाउ विल यू रिमेंबर दैट इट इज़ अ हॉट विंड। देखो हेलीकॉप्टर है ना। हेलीकॉप्टर में इंजन वगैरह होगा, सो दो इसको बस लर्न करने के लिए मैं ये ट्रिक बता रही हूँ कि हेलीकॉप्टर में इंजन वगैरह रहेगा, सो द विंड विच इट विल गो गिव ऑफ विल बी हॉट। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर इट कि चिनूक इज़ अ हॉट विंड। फिर इसको तीनों को ही वो हेलीकॉप्टर से ही आप लर्न कर लो। सांता आना, आप सोचो कि ये हेलीकॉप्टर में सांता क्लॉज बैठा है and he's feeling very hot because it is hot wind। ठीक है, it is giving off hot wind, chinook। ठीक है, तो Santa Ana is also a hot wind। then black roller, तो ये रोटर होते हैं इनके, जो ये ब्लेड्स को ना जो ऊपर घूम रहा होता है हेलीकॉप्टर के, दोज आर नोन एज रोटर्स। ठीक है, तो उसको आप रोलर से
लिंक कर लो कि इवन ब्लैक कलर के विंग्स लगे हैं, ब्लैक रोटर ब्लेड्स लगे हैं, तो ब्लैक रोलर इवन दैट इज़ अ हॉट विंड। ठीक है, सो चिनूक, सांता आना एंड ब्लैक रोलर, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हॉट विंड्स एंड दे आर इन नॉर्दर्न अमेरिका। ठीक है, अभी नॉर्थ अमेरिका में एक कोल्ड विंड भी है, कोल्ड लोकल विंड है, दैट इज़ नोन एज ब्लिजर्ड। एंड इफ़ यू माइट बी नोइंग, ब्लिजर्ड इज़ अ वेरी कॉमनली नोन वर्ड, है ना। तो आई डाउट इफ़ यू रिक्वायर एनी लर्निंग एड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, ब्लिजर्ड ठंडा, वैसे नॉर्मली इसको वर्ड जैसे भी यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यहाँ वाले विंड को ब्लिजर्ड बोल रहे हैं। कहीं पे भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है उसको ब्लिजर्ड। ठीक है, सो ब्लिजर्ड विल बी कोल्ड विंड एंड दैट टू इन नॉर्दर्न अमेरिका। ठीक है, आपने वीडियो गेम्स वगैरह में देखा होगा ब्लिजर्ड। ठीक है, नाउ वील बी मूविंग टू सर्दर्न अमेरिका। सर्दर्न अमेरिका में एक हॉट विंड है दैट इज जोंडा। ठीक है, जोंडा करके एक हॉट विंड है चिली साइड में कहीं पे। ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस हॉट विंड एंड द फैक्ट दैट इट इज़ इन सर्दर्न अमेरिका। देखो, नॉर्थ अमेरिका आपको पता है यूएसए में चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, तो चिनूक से हमने सांता आना एंड ब्लैक रोलर भी कर लिया। और यूएसए में ज़्यादातर वीडियो गेम्स बनती हैं, वीडियो गेम्स में यू मे हैव सीन के ब्लिजर्ड आ गया, ब्लिजर्ड है ना, वैसे यू कैन रिमेंबर दिस। साउथ अमेरिका में जोंडा। सो जोंडा को हमको साउथ अमेरिका से लिंक करना है एंड वी हैव टू लिंक इट विद the fact that it is a hot wind. So ठीक है, सो जो साउथ अमेरिका है उसका आप मैप देखो, ये जेड जैसा दिख रहा है ना, तो उससे जोंडा यू कैन रिमेंबर दिस, है ना, कि साउथ अमेरिका में जोंडा है। एंड जोंडा राइम्स विद बोंडा या बड़ा। बोंडा या बड़ा खाने का स्नैक्स होता है ना, आपको पता होगा बड़ा जो बाहर मिलता है। सो दीज आर टेस्टी ओनली व्हेन दे आर हॉट। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, जोंडा, बोंडा, बड़ा, उससे, और जेड लुक्स लाइक द साउथ अमेरिका मैप। ठीक है, तो जोंडा लॉन हो गया हॉट विंड इन साउथ अमेरिका। देन वी हैव टू कोल्ड विंड्स, वन इज वीरासेन एंड द अदर वन इज पैम्पेरो। ठीक है, तो वीरासेन, अच्छा, इसको भी लर्न करना है एंड वी हैव टू लिंक इट विद साउथ अमेरिका अगेन। सो एक तो है पैम्पेरो और एक है वीरासेन। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में वी हैव ब्राज़ील, है ना, ब्राज़ील से लिंक करते हैं इसको। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपने अपने, हाँ, इसको ऐसे कुछ भी बना सकते हैं आपके, हाँ, ऐसे कर लो, कोई भी पैम्पर को पैम्पर्ड कर लो। ठीक है, सो पैम्पेरो से पैम्पर्ड हो जाएगा, PAMPERED। ठीक है, पैम्पर्ड, और वीरासेन से ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो कैसे लर्न कर सकते हैं, जो पैम्पर्ड बस ये लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ, देयर इज़ नो ट्रूथ टू दिस, कि जो पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, पैम्पर्ड वाले लोग होते हैं, दे गो टू ब्राज़ील फॉर हॉलीडेज एंड दे टेक देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स अलोंग। ठीक है, तो ब्रदर वीरा से हो जाएगा ब्रदर्स और फ्रेंड, और पैम्पेरो से पैम्पर्ड लोग। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। साउथ अमेरिका में there is Veerasen and Pampero. So I have seen this trick from some different YouTube video and I'm telling you this over here. ठीक है, सो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हो गया। देन वी हैव अफ्रीका एंड एशिया। सो अफ्रीका के कर लेते हैं पहले। अफ्रीका में देर आर 4 हॉट विंड्स, 4 वार्म लोकल विंड्स। क्या क्या है, वी हैव सिरोको, गिबली, थॉमसन और केप डॉक्टर।
या केप बर्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करेंगे? देखो, जो केप डॉक्टर है वो तो वैसे भी आपको पता होगा, केप ऑफ गुड होप यहाँ पे कहीं पे है ना, केप ऑफ गुड होप। सो दैट वे यू कैन लिंक इट एंड रिमेंबर कि केप डॉक्टर के पास में ही केप ऑफ गुड होप है। ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ कहीं पे होता है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो केप डॉक्टर या केप बर्ड, उसके पास में केप ऑफ गुड होप है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, तो ये वाला हो गया। फिर सिरोको, सिरोको अच्छा, एक सेकेंड, मोरक्को के पास में है क्या ये? हाँ, ये मोरक्को के पास में है ना, सिरोको। दिस इज मोरक्को। ठीक है, और सिरोको उससे राइम कर रहा है, तो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि सिरोको इज नियर मोरक्को। ठीक है, फिर गिबली। देखो, अफ्रीका में ऑल ऑफ द मेजर विंड्स आर ओनली वार्म। हरमटान को छोड़ के ऑल ऑफ देम आर वार्म। ठीक है, तो ऐसे आपको लर्न करना नहीं पड़ेगा कि वार्म है कि कोल्ड है ना। तो ऑल ऑफ देम आर वार्म एक्सेप्ट हरमटान। तो सिरोको कर लिया हमने, मोरक्को से राइम कर रहा है। फिर है गिबली, गिबली लिबिया, लिबिया से राइम कर रहा है, गिबली है ना। गिबली और लिबिया सिमिलर साउंड करते हैं। लिबिया इज दिस कंट्री, ये वाला, ये कंट्री लिबिया है ना। और उसी में गिबली करके, दोनों में बी एल है, तो लिबिया गिबली। ठीक है, फिर है खमसिन, खमसिन कहाँ, इजिप्ट साइड में है। खमसिन, तो ऐसे कर लो कि इजिप्ट में वो पिरामिड जो होते थे ना, बस ये लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर कोई सिन करता था देन दे यूज्ड टू बरी देम इन द पिरामिड्स। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस एज अ मैनर ऑफ रिमेम्बरिंग इट। वैसे तो वहाँ पे पिरामिड्स में ऐसे रॉयल लोगों को करते थे बरी, बट ये ऐसे लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये सिन, खमसिन, तो सिन करता था कोई इजिप्ट वगैरह में, देन दे यूज टू मेक देम ममीज एंड बरी देम इन द पिरामिड्स। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर। तो अफ्रीका के हो गए चारों लर्न, सिरोको, गिबली, खमसिन एंड केप डॉक्टर। नाउ वी हैव हरमटान लेफ्ट। ठीक है, हरमटान, हरमटान इज अ कोल्ड, कोल्ड टाइप, कोल्ड लोकल विंड। ठीक है, और कहाँ पे है ये, वेस्टर्न अफ्रीका में है। हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो, हाँ, जो हरमटान में से जो विंड होती है ना, इट इज़ क्वाइट कोल्ड एंड डस्टी, देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट अटैच्ड टू इट। ठीक है, वेरी डस्टी एंड कोल्ड, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड उसको बोलते हैं। ट्रेड विंड तो नहीं है, मतलब लोकल विंड टाइप ही है ये। ठीक है, सो एंड इट ब्लोज फ्रॉम द सहारा डेजर्ट ओवर वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, सो इसको कैसे लर्न करेंगे? डस्टी से आप लर्न कर लो। डस्टी मतलब बहुत मिट्टी होना उसमें, है ना। तो ये हरमटान का मट, मट मतलब मिट्टी, तो उस विंड में देयर इज अ लॉट ऑफ मिट्टी। ठीक है, काफ़ी डस्टी विंड है एंड इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एज वेल। हरमटान डस्टी कोल्ड विंड इन वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, सो अब अफ्रीका हो गया, नॉर्दर्न अमेरिका एंड साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, नाउ वील मूव टू यूरोप। सो यूरोप में, जैसे अफ्रीका में सारे वार्म विंड्स थे एक्सेप्ट हरमटान, सिमिलरली यूरोप में देर आर ऑल ऑफ द विंड्स आर कोल्ड एक्सेप्ट फोन। ठीक है, तो इसका शायद फ़ोन ही बोलते हैं, पता नहीं क्या है प्रोनाउंसिएशन। सो ऑल ऑफ द विंड्स आर कोल्ड एक्सेप्ट फ़ोन। सो वी लुक एट दिस। सो सबसे पहले हम लोग हॉट विंड के बारे में देख लेते हैं, वो ये है फ़ोन। इसके बारे में भी यहाँ पे इट माइट हैव बीन मेंशन समवेयर। यूरोप, हाँ, ये फ़ोन, फ़ोन इज़ अ वार्म ड्राई गस्टी विंड descending the leeward side of a mountain range, most commonly associated with the Alps in Europe. ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड इटली साइड में है फ़ोन, है ना। तो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो, स्विट्ज़रलैंड या इटली अगर जाते हैं हम लोग,
Then in order to keep in touch with our relatives, we talk on phone. ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस के फ़ोन पे बात करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर. स्विट्ज़रलैंड इटली जाने पे हम लोग फ़ोन पे घर पे बात करते हैं. और घर पे वी हैव वार्म रिलेटिव्स, है ना. वार्म, वार्मथ और काइंडनेस रिलेटिव से लिंक्ड होता है. ठीक है, सो दैट वे यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर दिस कि फ़ोन वार्म रिलेटिव्स से बात कर रहे हैं हम लोग स्विट्ज़रलैंड से. ठीक है, तो ये हो गया. अभी उसके अलावा वी हैव मिस्ट्रल, लिवेंटर, बोरा एंड ग्रिगेल. ठीक है, सो दीज आर ऑल कोल्ड विंड्स, कोल्ड लोकल विंड्स. ठीक है, तो इनका आप नाम देखो, ये दे दे साउंड लाइक यूरोपियन नेम्स, है ना. देखो मिस्ट्रल, मिस्ट्रल कहाँ पे है? मिस्ट्रल इज इन फ्रांस. ठीक है, मिस्ट्रल इज इन फ्रांस. तो इसको कैसे लर्न करोगे आप लोग? मिस्ट्रल, फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं उनकी वाइफ इज क्वाइट ओल्डर टू हिम, है ना, 20 years ओल्डर टू हिम. ठीक है, तो मिस्ट्रेस ऐसे करके कुछ भी लिंक करके बना के लर्न कर लो. ठीक है, तो फ्रांस मिस्ट्रल. देन लिवेंटर, it is a moist cool wind that blows from the east across the Mediterranean Sea into southern Spain. ठीक है, सो लिवेंटर इज इन मतलब स्पेन मेडिटेरेनियन सी वाले रीजन में है. सो लिंक दिस विद केवेंटर. केवेंटर्स करके वो होता है ना, मिल्क शेक की कंपनी है. इट इज़ अ फेमस चेन, है ना, थ्रू आउट इंडिया. सो केवेंटर्स से लिंक करके कर लो. केवेंटर्स पे भी ठंडा मिल्क शेक मिलता है. ठीक है, सिमिलरली वी हैव लेवेंटर, इट इज़ अ कोल्ड विंड एंड इट इज़ इन स्पेन. देन बोरा, बोरा कहाँ पे है? इट इज़ इन एल्प्स में, एड्रियाटिक सी के पास में. ठीक है, तो बोरा, हाँ, इफ समवन गेट्स बोर्ड देन what will they do? They'll go for trekking on the Alps. ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है, फिर है ग्रिगेल. ग्रिगेल है ग्रीस साइड में, सो वो वैसे ही लर्न हो जाएगा. ग्रिगेल, ग्री से ग्रीस. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो कोल्ड विंड. ठीक है, तो ये सारे हो गए. नाउ वी हैव डन यूरोप एज वेल, है ना. अभी क्या बचा? एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. सो फर्स्ट वील डू ऑस्ट्रेलिया, देन वील मूव टू एशिया. ऑस्ट्रेलिया में देर इज ओनली अ हॉट विंड प्रेजेंट एंड द नेम इज ब्रिक फील्डर. ठीक है, तो ब्रिक फील्डर आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट टीम है एंड इवन दे प्ले, मतलब वहाँ पे भी काफ़ी पॉपुलर गेम मानते हैं क्रिकेट को. ठीक है, तो क्रिकेट में देर इज़ अ पर्सन नोन एज अ फील्डर. ठीक है, तो एक बैटर बैटिंग करते हैं और एक फील्डिंग करते हैं. ठीक है, तो फील्डर, ब्रिक फील्डर वैसे लिंक कर सकते हैं क्रिकेट से. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी पता है आपको, दे इवन इन दैट कंट्री क्रिकेट इज़ क्वाइट पॉपुलर. ठीक है, तो क्रिकेट से ब्रिक फील्डर. फिर नॉर्वेस्टर. नॉर्वेस्टर कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में. न्यूजीलैंड का एन एंड नॉर्वेस्टर का एन, ठीक है, दे आर कॉमन, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर नॉर्वेस्टर इज इन न्यूजीलैंड. ठीक है, ये हो गया. नाउ विल बी मूविंग टू एशिया. एशिया में सबसे पहले एक तो सऊदी अरेबिया साइड में देर इज दिस हॉट विंड. हाँ, ये याद रखना कि मोस्ट ऑफ द विंड्स इन एशिया आर हॉट विंड्स एक्सेप्ट वन इन दिस रशिया जिसका नाम है बुरान. ठीक है, बुरान जो रशिया में है दैट इज़ अ कोल्ड विंड, साइबेरिया वगैरह रीजन में रहेगा. ठीक है, सो दैट विल बी कोल्ड एक्सेप्ट दैट ऑल ऑफ देम आर हॉट लोकल विंड्स. ठीक है, तो लू का तो पता ही हमको हिंदी में होता है ना, इंडिया में लू, द हॉट लोकल विंड्स आर नोन एज लू. ठीक है, तो ये नहीं लर्न करना पड़ेगा. उसके अलावा क्या लर्न करना है हमको? सिमूम. सो सिमूम इज़ इन सऊदी अरेबिया साइड. यहाँ पे मेंशन होगा सिमूम इज़ अ
हाँ, हॉट ड्राई डस्टी विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द डिजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड द अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, सऊदी अरेबिया सिमूम। तो इसको लर्न कैसे करेंगे? एस एस, सऊदी अरेबिया एंड सऊदी अरेबिया और सिमोम, दोनों में एस एस है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, देन शमाल। शमाल देखो, इसको ऐसे लर्न कर लो, शमाल से क्या राइम करता है? कमाल। कमाल मतलब अमेजिंग। ठीक है, सो अभी आपने, इफ़ यू माइट हैव सीन दैट ईरान हैज़ गिवन एन अमेजिंग रिस्पॉन्स टू यूएसए। ठीक है, सो डिस्पाइट, मतलब they were quite, it seems that they have been taken by surprise. USA has been taken by surprise by how resilient Iran has been. ठीक है, तो शमाल कहाँ? वो ईरान इराक वाले रीजन में है, एंड यू कैन लर्न इट दैट वे। शमाल मतलब कमाल, कमाल मीन्स अमेजिंग, सो दे हैव गिवन एन अमेजिंग रिस्पॉन्स टू यूएसए। नेक्स्ट है कारा बुरान एंड बुरान। सो कारा बुरान इज इन चाइना एंड बुरान इज इन रशिया। ठीक है, तो चाइना, इसको ऐसे लर्न कर लो कि चाइना हमारे इंडिया के लिए तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड कंट्री, है ना, दे आर वेरी अग्रेसिव एट टाइम्स। ठीक है, तो बुरा बुरा है हमारे लिए, है ना, बहुत ज़्यादा कारा बुरान है, काला बुरा है ये। वेराज रशिया इज़ कम बुरा। वैसे तो इट इज़ अ वेरी फ्रेंडली कंट्री, बट ये मैं बस लर्न करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, सो बुरान एंड कारा बुरान। नेक्स्ट वी हैव योमा। योमा को लग ही रहा है नाम से कि जापान साइड में कहीं होगा, है ना, तो योमा को ऐसे ही लर्न कर लो, इट इज़ इन जापान। ठीक है, सो वी हैव डन ऑल ऑफ द मेजर लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नाउ इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये सुदर्शन सर के नोट्स हैं फ्रॉम विच आई एम रेफरिंग। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ अमेरिका में वी हैड सीन चिनूक, सांता आना एंड ब्लैक रोलर। चिनूक था, इट वाज अ वार्म ड्राई विंड डिसेंडिंग द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकी माउंटेन्स। सो यू नीड टू नो कि कौन से माउंटेन रेंज पे है। रॉकी माउंटेन रेंजेस में है, दे आर नोन फॉर causing rapid snow melt and temperature increases and it is often known as snow eater। ठीक है, चिनूक को स्नो ईटर भी बोलते हैं। देन Santa Ana, again hot dry wind originating from the Great Basin and descending into southern California। ठीक है, if you can remember the locations it will be better। ठीक है, चिनूक यहाँ पे नीचे सांता आना है और ब्लैक रोलर रोलर इज ऑन द राइट। और वो जो सबसे ठंडा वाला था ब्लिजर्ड, इट इज़ इन अलास्कन रीजन साइड में कहीं पे है। ठीक है, सो यहाँ पे वो ये हो गया सांता आना कैलिफोर्निया। ठीक है, सर्दर्न कैलिफोर्निया, एंड इट इज ऑल्सो नोन फॉर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर्स। ठीक है, देन वी हैव ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर इज अ वार्म विंड दैट ब्लोज ओवर द प्रेरीज ऑफ द यूएसए, contributing to dry and warm conditions in the grasslands। Next, blizzard। Blizzard is a very cold, powerful wind carrying snow, common in Northern America। ठीक है, देन साउथ अमेरिका में देख लेते हैं। इसमें बस ये लर्न करने का है कि सांता आना कैलिफोर्निया में है, चिनूक इज नोन एज स्नो ईटर, रॉकी माउंटेन्स में है। एंड इसको बस आप इमेजिन करिए कि ऐसे रॉकी से माउंटेन्स है, उसके ऊपर चिनूक एयरक्राफ्ट, जो हेलीकॉप्टर है ना, चिनूक फ्लाई कर रहा है। ठीक है, दैट वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट और क्या, ये ब्लैक रोलर प्रेरीज ऑफ यूएसए में। साउथ अमेरिका में क्या क्या है? वी हैव जोंडा, पैम्पेरो एंड वीरासेन। सो जोंडा को हम, कहाँ पे था? एंडीज माउंटेन, चिली वाली साइड पे, है ना। देन पैम्पेरो एंड वीरासेन। पैम्पेरो कहाँ पे? अर्जेंटीना, एंड वीरासेन इज इन चिली अगेन। ठीक है, हमने वैसे इसको ब्राज़ील लेके लर्न करा था बिकॉज ब्राज़ील इज इन साउथ अमेरिका, बट यू नीड टू नो द प्रॉपर कंट्रीज वेयर दीज विंड्स फ्लो। ठीक है, सो पैम्पेरो पम्पाज में है, दैट इज़ इन अर्जेंटीना, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो कि पैम्पर्ड बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमें अर्जेंटीना जाना है मेसी को देखने। ठीक है, ऐसे यू कैन रिमेंबर दिस। और वीरासेन चिली। नेक्स्ट यूरोप। यूरोप में फ़ोन हमने देख लिया था।
इज अ वार्म विंड एसोसिएटेड विद आल्प्स इन यूरोप, ठीक है। इटली वगैरह में होते हैं ऑल्प्स, है ना, स्विट्जरलैंड, इटली, वहाँ पे एक वार्म विंड है, फोन, ठीक है। एंड दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो फ्रॉम हियर। फिर है, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि स्विट्जरलैंड में वहाँ बहुत ठंडी होती है, बट डिस्पाइट दैट देयर इज अ वार्म विंड which flows there and the name is Fawn. Then Mistral, Mistral कहाँ था, फ्रांस में, है ना, तो वही रोन वैली इन सर्दर्न फ्रांस, डू रिमेम्बर दैट, ठीक है। देन है लिवेंटर, लिवेंटर कहाँ पे है, इट इज़ अ moist cool wind that blows from the east across the Mediterranean Sea into the southern part of Spain। तो स्पेन हमने करा था कि कैवेंटर्स करके जो मिल्क मिलता है उससे लिंक करा था इसको, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव बोरा, बोरा है कि हम बोर हो जाते हैं तो व्हाट विल वी डू, वी विल गो एंड क्लाइंब द एल्प्स, ठीक है। तो बोरा इज अ कोल्ड विंड डिसेंडिंग फ्रॉम द डायनारिक एल्प्स। देन यू हैव ग्रिगेल, ग्रिगेल एज द नेम सजेस्ट मतलब ग्रीस, ठीक है। एंड बस इसमें इतना ही पता होना चाहिए। देन वील मूव टू अफ्रीकन विंड्स। सो सिरोको मोरक्को से हो रहा था ये राइन, है ना। इट्स अ हॉट विंड फ्रॉम द सहारा डिजर्ट दैट blows across the Mediterranean Sea into southern Europe, ठीक है। इसको बस ये लर्न करना कि इट पिक्स अप मॉइस्चर एंड रिजल्ट्स इन rainfall in the southern part of Italy, and it is also known as locally as the blood rain because of the fallout of red sand falling from the rain, ठीक है। तो इसको सिरोको कॉजेज ब्लड रेन, ठीक है। ये याद रखना आप कि ऐसे सिर में अगर दुख रहा होता है तो ऐसे ब्लडी आइज हो जाती है ना, वैसे करके यू कैन रिमेम्बर दिस, ब्लडी आइज से ब्लडी रेन, ठीक है। सिर सिर से सिर में दुख रहा है अगर तो ब्लडी आइज हो जाती है, दैट वे यू कैन रिमेम्बर दिस कि सिरोको इज द विंड विच रिजल्ट्स इन ब्लड रेन इन इटली, ठीक है, सर्दर्न पार्ट ऑफ इटली। नेक्स्ट वी हैव गिबली, गिबली हमने लिबिया में पढ़ा था, है ना। So it is a warm dry wind that blows from the deserts of North Africa into Libya. Then खमसिन, खमसिन हमने इजिप्ट साइड में, है ना, सिन से इजिप्ट किया था। So hot dry wind that blows from the deserts of Egypt. नेक्स्ट केप डॉक्टर, वो केप ऑफ गुड होप के पास में जो है। So it is a strong southeasterly wind that blows from Atlantic Ocean over the Cape Peninsula in South Africa. So it is known for clearing pollution and bringing warm, dry conditions to the area. So बस इसमें बस पता होना चाहिए केप डॉक्टर है तो डॉक्टर जैसे काम करता है, इट रिमूव्स ऑल pollution from that area, ठीक है। Then harmattan, harmattan is the only cold wind present in मतलब Africa which we are reading. So cool, dry, dusty wind from the Saharan desert and western Africa में blow करता है ये, ठीक है। एंड काफ़ी डस्ट रहती है इसमें, इसलिए हमने मिट्टी करके लर्न किया था, मट्टान, मिट्टी, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो नोन, अच्छा इसमें डू नॉट कंफ्यूज, हरमटान विंड को डॉक्टर विंड भी बोलते हैं और केप डॉक्टर को इससे कंफ्यूज मत करना आप, ठीक है। सो हरमटान विंड इज ऑल्सो नोन एज द डॉक्टर विंड बिकॉज ऑफ इट्स इनविगोरेटिंग ड्राइनेस कंपेयर टू ह्यूमिड ट्रॉपिकल एयर, ठीक है। डू नॉट कंफ्यूज दिस विद केप डॉक्टर। हरमटान मतलब मिट्टी, मिट्टी में भी डॉक्टर है, ऐसे करके लर्न कर लो आप, ठीक है। मिट्टी डॉक्टर, ठीक है। तो ड्राइंग इफेक्ट लाता है बिकॉज वहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो उसको इट एक्ट्स एज अ एंटीडोट टू दैट, ठीक है। देन नाउ विल बी मूविंग टू एशिया। एशिया में योमा कहाँ पे था, जापान, ठीक है। देन यू हैव काराबुरान, काराबुरान वॉज इन चाइना, है ना, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, चाइना साइड, है ना। तो ये पता होना चाहिए। देन यू हैव शमाल, शमाल कहाँ पे, कमाल से लर्न किया था हमने कि कमाल अमेजिंग, सो ईरान हैज़ गिवन एन अमेजिंग रिस्पॉन्स टू यूएसए, सो इराक ईरान साइड पे। देन यू हैव सिमोम, सिमोम कहाँ पे, सऊदी अरेबिया साइड, अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। देन लास्ट, नहीं सेकेंड लास्ट है लू, लू है इंडिया में, पता ही है हमको ये। देन बुरान, बुरान इज इन रशिया,
ठीक है, साइबेरियन रीजन इन रशिया। नाउ ऑस्ट्रेलिया में हमने क्रिकेट से लर्न किया था ब्रिक फील्डर। ठीक है, सो इट इज़ अ वार्म ड्राई विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया टुवर्ड्स द कोस्टल रीजन। बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर्स होते हैं, है ना। सो हमने न्यूजीलैंड का एन और नॉर्वेस्टर का both of them are same, so that is how we had learnt this. And this is a hot, dry and strong wind that originates in the Tasman Sea and affects New Zealand. ठीक है, so these are the main local winds which you need to do. ठीक है, अभी we'll do the periodic local winds. तो यहाँ पे वो आ जाएगा land and sea breezes और mountain and valley winds. So land और जो sea breezes होते हैं they are primarily due to differential heating of land and water. ठीक है, so as you might be knowing, land का जो specific heat है it is low. ठीक है, specific heat is less, whereas the specific heat of water is more. ठीक है, it is higher. ये पता होना चाहिए. Therefore water takes a lot of time to get heated or cooled down, whereas land will take comparatively lesser amount of time. ठीक है, तो इसमें क्या है, सी ब्रीज. लैंड और सी ब्रीजेस में वो ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर होता है. जो सी ब्रीज होता है दैट इज जनरली ड्यूरिंग द डे एंड द कूल एयर ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड. ठीक है, तो दिन में क्या होगा, देखो ऐसे सिंपल चीज़ है ये बिल्कुल. आई विल शो दिस बाय अ डायग्राम. सो फॉर एग्जांपल दिस इज द लैंड, है ना, और यहाँ पे पानी है. ठीक है, तो ड्यूरिंग द डे, डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में लैंड विल बिकम वेरी हॉट. ठीक है, दिस विल बी हॉट और ये कोल्ड रहेगा. ठीक है, दिस इज डे डे टाइम. ठीक है, तो अभी कोल्ड जहाँ पे भी होता है देन देयर इज हाई प्रेशर, वेयर एज हॉट लोकेशंस पे देयर इज लो प्रेशर. एंड एज यू नो, एयर या विंड ब्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर लोकेशंस टू द लो प्रेशर लोकेशंस. ठीक है, तो ये ऐसे जाएगी विंड और कोल्ड जगह से जा रही है तो इट विल बी cold winds. ठीक है, cool air will be blowing from the sea towards the land. Now the second case will be when it is night time. नाइट टाइम में जो लैंड रहेगा, ये लैंड है और ये वाटर है. ठीक है, सो द एट नाइट लैंड विल बी कोल्डर, है ना, बिकॉज ऑफ लो स्पेसिफिक हीट इट गेट्स कोल्डर फास्ट. ठीक है, कोल्ड रहेगा तो यहाँ पे देयर विल बी हाई प्रेशर एंड वार्म जगह पे देयर विल बी लो प्रेशर. नाउ विंड विल ब्लो फ्रॉम दिस हाई प्रेशर रीजन टू द लो प्रेशर. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इट विल फ्लो, है ना. सो वही दिया है यहाँ पे, सी ब्रीज विल बी ड्यूरिंग द डे एंड लैंड ब्रीज विल बी ड्यूरिंग द नाइट. सी ब्रीज में इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम द सी, cool air will blow from the sea to the land and since land heats faster creating low pressure. तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से. Air blows from land to sea, land cools faster thus creating high pressure. ठीक है, नाउ वी लुक एट माउंटेन एंड वैली विंड्स. सो इसमें क्या होगा, वैली ब्रीज को हम लोग एनाबैटिक विंड बोलते हैं और जो माउंटेन विंड है उसको कैटाबैटिक विंड बोलते हैं. ठीक है, तो देखो इसका भी डे और नाइट पे डिफरेंट चीज़ें यहाँ होती हैं. सो ड्यूरिंग द डे व्हाट विल हैपन इज, फॉर एग्जांपल दिस इज द माउंटेन. ठीक है, तो दिन में क्या होगा, दिन में द माउंटेन विल बी रिसीविंग अ लॉट ऑफ सनलाइट. ठीक है, सो इट विल बिकम हॉट, है ना, और वैली विल बी कंपैरेटिवली कूलर, है ना. ये जो वैली वाला पोर्शन है इट विल बी कंपैरेटिवली कूलर एट इन द डे टाइम. ठीक है, जो जहाँ पे भी हॉट है वहाँ पे देयर विल बी लो प्रेशर और जहाँ कोल्ड है वहाँ पे देयर विल बी हाई प्रेशर. ठीक है, सो दैट मीन्स दैट नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है. सो विंड विल बी ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर and these winds which blow from the valley to the mountain will be known as valley breeze,
और इनको एनाबैटिक बोलते हैं। ठीक है, एनाबैटिक। एंड ये वही है, वार्म एयर विल बी राइजिंग, मतलब हाँ वही, एयर विल बी राइजिंग फ्रॉम द वैली टू द माउंटेन स्लोप्स। ठीक है, नेक्स्ट है माउंटेन विंड्स। ये होगा रात को। रात को क्या सिचुएशन हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द माउंटेन, दिस विल बिकम कोल्ड वेरी फास्ट। ठीक है, लैंड वैसे भी ये सिंस इट इज़ एट अ हायर ऑल्टीट्यूड, therefore it will be colder as compared to the valley। ठीक है, सो दिस विल बी स्लाइटली हॉटर एज कम्पेयर टू दैट। कोल्ड जहाँ पे भी है वहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, और जहाँ पे वार्म है विल बी लो प्रेशर। सो व्हाट विल हैपन इज, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर द विंड विल बी ब्लोइंग, है ना। सो दिस विंड विल बी नोन एज कैटाबाटिक। ठीक है, सो दिस विल बी अ कोल्ड विंड। ठीक है, बस यही है इन दोनों में भी। यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स, एनाबैटिक और कैटाबैटिक। तो आप सोचो कि माउंटेन पे आपका घर है, तो आप ऐसे आ जाओ, ऐसे आना आना, ऐसे सोच रहे हो कि विंड आए, गरम गरम अच्छी विंड आए वैली से। ठीक है, तो आना वैसे करके रिमेंबर कर लो। ठीक है, और माउंटेन विंड को कैटाबैटिक बोलते हैं। नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट एयर मासेस, फ्रंट्स एंड साइक्लोन्स। सो यहाँ पे दिया है जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, it generally manifests as large scale weather systems like air masses, fronts, cyclonic circulations that redistribute heat and moisture across the globe। So this is not an important statement, बस ऐसे ही पता होना चाहिए, नीचे we'll be studying the theory properly। So first of all we'll do these questions। ठीक है, so first question क्या है? Consider the following statements: jet streams occur in northern hemisphere only। So only गलत हो जाएगा। ठीक है, only some, हाँ, only some cyclones develop an eye। अच्छा, फिर the temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degrees Celsius lesser than that of the surroundings। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग। अभी हमें देखना है कि थर्ड स्टेटमेंट है कि नहीं है सही, है ना, बिकॉज ये दो बच रहे हैं। इफ़ यू रिमूव द फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली दीज टू आर लेफ्ट। तो क्या टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर दैन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। देखो लो प्रेशर रीजन है, आई डू नॉट थिंक दैट दिस इज करेक्ट, बट लेट मी सी द आंसर। हाँ वही, इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो डेटा पॉइंट दिया है, ये गलत हुआ। सेकेंडली इफ़ यू लुक एट लॉजिक, लो प्रेशर रीजन में रहेगा ना आई, सो आई विल बी एन एरिया विच विल बी वेरी हॉट, वेरी हाई टेम्परेचर रहेगा उसका। ठीक है, एंड दैट विल बी हैविंग हाई टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, तो 10 डिग्री लेसर तो नहीं होना चाहिए। सो द आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स in tropical latitudes, cyclone does not originate। अच्छा, what is the reason why the cyclone does not originate in tropical latitudes, South Atlantic और South Eastern Pacific regions? क्या 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 रीज़न हो सकता है? सी सर्फेस टेम्परेचर्स आर लो, तो नहीं, दिस डज नॉट सीम टू बी अ गुड आंसर। फिर आई टी सी जेड सेल्डम अकर्स। ठीक है, फिर कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक, नहीं, दिस डज नॉट अप्लाई। एब्सेंस ऑफ लैंड इन दीज रीजन्स। देखो एब्सेंस ऑफ लैंड से साइक्लोन का कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी ऑप्शन बी, बट लेट अस सी, हाँ बी है। ठीक है, क्योंकि जो आई टी सी जेड है ना, उसका कन्वर्जन सेल्डम अकर्स इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर। यूजुअली क्या होता है, वो थोड़ा यहाँ, वैसे तो इक्वेटर पे होना चाहिए आइडियली आई टी सी जेड को, बट वो यहाँ कहीं ऊपर घूम रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे आता ही नहीं है, एंड यहाँ पे नहीं आता, सो देयर वोंट बी एनी साइक्लोन्स फॉर्म। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जेंस जहाँ पे भी हो रही है वहाँ पे ही देयर विल बी अ लॉट ऑफ विंड कमिंग टुगेदर, और वहाँ पे देयर आर साइक्लोनिक कंडीशंस विच में फॉर्म।
but this is not happening here because ITCZ is not here. ठीक है, so the answer for this will be B. Next है, during a thunderstorm, the thunder in the skies is produced by the which of the following. ठीक है, थंडरस्टॉर्म में थंडर किसकी वजह से हो रहा है? मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काई. क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस का मीटिंग, अच्छा फिर दिया है, देखो क्यूमुलोनिम्बस के मीटिंग से तो नहीं होता है थंडर, हमें पता है थंडर क्यों होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, एंड फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से. ठीक है, फिर लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड्स, ये भी नहीं है रीजन. वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स, ये भी नहीं है. ठीक है, सो द आंसर विल बी नन ऑफ द अबव. ठीक है, एग्जैक्ट रीजन ऑफ अ थंडर वुड बी दिस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. थंडर के रीजंस, लेट मी जस्ट चेक. हाँ वही है, थंडर इज द साउंड कॉज्ड बाय लाइटनिंग which causes the which rapidly heats the surrounding air to extreme temperatures. ठीक है, सो जो इंटेंस हीट अप हो जाती है ना एयर, उससे द एयर एक्सपैंड्स एक्सप्लोसिवली. ठीक है, दस क्रिएटिंग अ शॉक वेव दैट ट्रेवल्स थ्रू द एटमोसफेयर एज अ साउंड वेव. ठीक है, दिस इज वाई थंडर का साउंड आता है. ठीक है, नेक्स्ट वील स्टार्ट विद एयर मासेस. सो एयर मास क्या होता है? इट इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर विद यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ओवर अ वास्ट एरिया. ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के वास्ट एरिया पे जो एयर है उसको एयर मास बोलेंगे. नेक्स्ट क्या दिया है, सब सोर्स रीजन्स क्या है? सो एरियाज वेयर एयर रिमेन स्टेशनरी फॉर सेवरल डेज आर कंसिडर टू बी सोर्स रीजन्स फॉर एयर मासेस. ठीक है, तो कोई ऐसा एरिया जहाँ पे देयर इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एयर और वो प्राइमरली इट इज स्टैगनेंट स्टेशनरी है, दैट विल फॉर्म एन एयर मास. ठीक है, नेक्स्ट है, नोट मिड लैटिट्यूड्स आर नॉट मेजर सोर्स रीजन्स ड्यू टू frequent cyclonic disturbances. So this is important to remember. ये ऐसे स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि मिडिल लैटिट्यूड्स पे बहुत वो बनते हैं, एयर मासेस बनते हैं, सो दैट विल बी रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एयर मासेस. देयर आर प्राइमरीली टू टाइप्स ऑफ एयर मासेस. सो फर्स्ट क्या है, एयर मास विच इज कोल्डर दैन द अंडरलाइंग सर्फेस, so that will be known as a cold air mass, and the other one is a warm air mass wherein the air mass is warmer than the underlying surface. ठीक है, तो ये बस दोनों पता होना चाहिए. फिर ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी है एयर मासेस की. तो हमने पहले वैसे ही नॉर्मल बेस्ड अपॉन टेम्परेचर वी हैड सीन टू टाइप्स. नाउ बेस्ड अपॉन द ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन वी हैव द फॉलोइंग 5 टाइप्स. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, देन वी हैव कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, फिर मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल पोलर और लास्ट में कॉन्टिनेंटल आर्कटिक. ठीक है, तो इनको देखते हैं. मैरीटाइम ट्रॉपिकल का मतलब क्या होगा, एम्प्टी. सो एज द नेम सजेस्ट, ये इसका वार्म ह्यूमिड सोर्स रहेगा एंड इट विल बी ओवर द ट्रॉपिकल ओशंस. ठीक है, देन कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल. ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल में क्या रहेगा, हॉट ड्राई सोर्स रहेगा बिकॉज कॉन्टिनेंट के ऊपर है एंड इट विल बी ओवर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स. ठीक है, देन वी हैव मैरीटाइम पोलर. तो कहाँ पे रहेगा, मैरीटाइम मतलब ओशन, पोलर ओशंस, हाई लैटिट्यूड वाले जो ओशंस है वहाँ पे. कूल मॉइस्ट सोर्स बिकॉज ओशन पे है, मैरीटाइम लिखा ही है, एंड इट विल बी ओवर हाई लैटिट्यूड ओशंस. देन कॉन्टिनेंटल पोलर मतलब कॉन्टिनेंट के ऊपर है, तो पोलर रीजन में कॉन्टिनेंट के ऊपर, सो दे विल बी, दिस विल बी कोल्ड ड्राई फ्रिजिड सोर्स रहेगा इसका, एंड इट विल बी ओवर स्नो कवर्ड हाई लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, देन कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, आर्कटिक विल बी ओवर द आर्कटिक या एंटार्क्टिक रीजन. सो इट विल बी वेरी ड्राई बिकॉज एज यू माइट बी नोइंग दैट इज़ अ डेजर्ट एरिया है ना, पोलर रीजन्स डेजर्ट एरियाज होते हैं. ठीक है, सो दे विल बी एक्सट्रीमली कोल्ड एज वेल एज ड्राई, और सोर्स कहाँ है, वही आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका की आइस शीट्स. ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दीज 5? दो हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में,
दो हैं पोलर रीजन्स में, एंड देन वन वी हैव आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन पे। ठीक है, अभी जो दो टॉपिक पे हैं वो है, एक मैरीटाइम है, एक कॉन्टिनेंटल। ठीक है, सिमिलरली इवन इन पोलर, ये जो दो पोलर के हैं ये भी मैरीटाइम है एक, और एक है कॉन्टिनेंटल। जो लास्ट है वो आर्कटिक या एंटार्क्टिका पे जो है, दैट विल बी कॉन्टिनेंटल ओनली, बिकॉज वहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ लैंड एरिया। ठीक है, so we have done the air masses. Now we'll move to fronts and frontogenesis. So देख लेते हैं what exactly is a front. So front refers to a boundary between two converging air masses. ठीक है, so a boundary where two air masses with different temperature, humidity or density converge, that is known as a front. फ्रंट मतलब सामना, तो इन दोनों का सामना हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं फ्रंटोजेनेसिस। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रंट which occurs mainly in middle or higher latitudes, that is known as the process of frontogenesis. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट को बोलते हैं। फिर फ्रंटो, जिसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, जेनेसिस मतलब जनरेशन, फ्रंट का जनरेशन। ठीक है, फ्रंटोलिसिस मतलब कम हो जाना फ्रंट का, दैट इज डिसिपेशन और वीकनिंग ऑफ अ फ्रंट। ठीक है, दैट इज नोन एज फ्रंटोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। सो वी हैव कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ये यहाँ पे भी हमने पढ़ा था। देन अप नहीं, वो दोज वर एयर मासेस, दिस इज फ्रंट्स। ठीक है, तो वी हैव अ कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, देन वी हैव स्टेशनरी फ्रंट एंड लास्ट में अक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, सो इनके बारे में देख लेते हैं। कोल्ड फ्रंट कब बनता है? कोल्ड फ्रंट इज व्हेन, आई विल जस्ट जूम दिस, हाँ, एडवांसिंग कोल्ड एयर वायलेंटली डिस्प्लेसेस वार्म एयर अपवर्ड्स। ठीक है, जो भी चीज़ मूव कर रही है, जो भी एयर मास मूविंग एयर मास है, उसके नाम से फ्रंट रहेगा। ठीक है, डू रिमेम्बर दिस प्रॉपरली। तो जो काम कर रहा है उसी का नाम लगाएंगे, है ना। सो द वन हु इज मूविंग उसका नाम लगेगा। सो कोल्ड फ्रंट में कोल्ड एयर विल बी द वन मूविंग। ठीक है, एडवांसिंग कोल्ड एयर रहेगी कोल्ड एयर में, कोल्ड फ्रंट में कोल्ड एयर विल बी द वन मूविंग। ठीक है, वो वार्म एयर को डिस्प्लेस कर देगी ऊपर की तरफ। ठीक है, देन वार्म फ्रंट में क्या होगा, वार्म एयर विल बी द वन मूविंग। ठीक है, एडवांसिंग वार्म एयर विल ग्लाइड ओवर रिसीडिंग कोल्ड एयर मास। देन स्टेशनरी फ्रंट में क्या रहेगा, बोथ ऑफ देम विल बी स्टेशनरी, एयर मासेस विल बी स्टेशनरी। ठीक है, एंड लास्ट क्या है, अक्लूडेड फ्रंट। सो अक्लूडेड फ्रंट क्या रहेगा, इसमें ये कोल्ड फ्रंट का ही थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म होता है अक्लूडेड फ्रंट। सो आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं, कोल्ड जो फ्रंट है यहाँ पे जो दिया है, इसमें क्या हो रहा है, एडवांसिंग कोल्ड एयर वायलेंटली डिस्प्लेसेस वार्म एयर अपवर्ड्स। ठीक है, तो ये यहाँ से ठंडा एयर मास आ रहा है, वो वार्म एयर को ऊपर की तरफ धक्का देगा, बिकॉज कोल्ड एयर इज हायर इन वेट, मतलब वेट विल बी हायर, डेंसिटी विल बी हायर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ कोल्ड फ्रंट। फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट विल बी हैविंग अ स्टीप स्लोप, एंड इसकी वजह से क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के बारे में पता होगा। अच्छा, वील बी स्टडिंग अबाउट क्लाउड्स लेटर ऑन, बट जस्ट रिमेंबर दैट क्यूमुलो निम्बस क्लाउड विल बी फॉर्म्ड हियर। ठीक है, एंड हेवी रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म्स हैपन व्हेन दिस इज फॉर्म्ड। ठीक है, कोल्ड फ्रंट से हेवी थंडरस्टॉर्म्स और रेनफॉल होता है। ठीक है, ट्राई टू रिमेंबर दैट। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट वार्म फ्रंट। एक सेकेंड। वार्म फ्रंट में क्या होगा, वार्म एयर विल बी द वन हु विल बी मूविंग। ठीक है, सो एडवांसिंग वार्म एयर विल ग्लाइड ओवर अ रिसीडिंग कोल्ड एयर मास। तो सिंस वार्म एयर इज लाइटर इन वेट, देयरफॉर ये उसके ऊपर ग्लाइड करके चले जाएगा। ठीक है, सो इट विल हैव अ जेंटल स्लोप, बिकॉज कोल्ड एयर में क्या हो रहा था, ये पुश कर रहा था वार्म एयर को ऊपर, क्योंकि उसको उसकी जगह चाहिए थी,
है ना, एंड दैट इज वाई सडनली ऊपर जाएगा वार्म एयर, इट विल फॉर्म क्यूलोनिम्बस क्लाउड्स एंड थंडरस्टॉर्म विल आकर। वेराज यहाँ पे जेंटल स्लोप इज फॉर्म्ड, जेंटल प्रेसिपिटेशन होगा, धीरे धीरे स्मॉल क्लाउड्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट में क्या होगा, द एयर मासेस विल नॉट बी मूविंग अगेंस्ट ईच अदर एंड विंड्स विल ब्लो पैरेलल टू द फ्रंट, ठीक है। तो ये बस ऐसे स्टेशनरी रहेगा, स्टेशनरी फ्रंट है, ठीक है। और ये बस याद रखो कि विंड्स विल बी ब्लोइंग पैरेलल टू ईच अदर। देन ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होगा, देखो ये कोल्ड एयर मास में क्या करा था इसने, वार्म एयर को ऊपर कर दिया था थोड़ा सा। However, a portion of the warm air will still be on the ground. Now what happens is, ऐसे cold air जो है ना, वो ऐसे इसको यहाँ जाके वार्म एयर जो खड़ पड़ा है उसको ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ बहुत सारी जगह पे वार्म एयर है, तो अब पूरा तो एक बार में नहीं हो पाएगा। बट ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होगा, दिस इंटायर कोल्ड एयर, जो ये कोल्ड एयर है वैसे स्पाइरल करके पूरा नीचे कवर कर लेगी और वार्म एयर विल बी मेड टू completely राइज, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, व्हेन द कोल्ड एयर मास overtakes a warm air mass completely, thus lifting the warm air entirely off the ground, that will form a occluded front, ठीक है। तो these are the different types of fronts and frontogenesis. Next we will be looking at cyclones, ठीक है। सो साइक्लोन्स क्या रहेगा, देखो लो प्रेशर सिस्टम्स को साइक्लोन्स बोलते हैं, है ना, एंड देयर इज समथिंग नोन एज एन एंटी साइक्लोन एज वेल विच इज़ अ हाई प्रेशर सिस्टम, ठीक है। अभी व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में द साइक्लोन्स आर एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन, ठीक है, वेयर एज व्हेन इट कम्स टू द सदर्न हेमिस्फेयर द साइक्लोन्स आर क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन। सॉरी, आई एम सॉरी अबाउट दिस, देखो हाँ, ये सही बोला था मैंने। साइक्लोन्स का अगर बात कर रहे हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज है और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज है। whereas if we talk about anti cyclones will be clockwise in northern hemisphere and anti-clockwise in southern hemisphere, ठीक है। नाउ वील प्रॉपरली स्टडी के इसमें हो क्या रहा है। साइक्लोन्स में क्या रहेगा, देयर विल बी अ लो प्रेशर एरिया और उसके सराउंडिंग देयर विल बी अ लॉट ऑफ हाई प्रेशर एरियाज, ठीक है। तो क्या होगा, एक साथ हाई प्रेशर एरिया से ना इस लो प्रेशर एरिया में बहुत सारा विंड विल गो, है ना, बिकॉज विंड गोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये वाला एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रैवल करेगा, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड अदर थिंग्स इट विल कर्व स्लाइटली, ठीक है। कर्व हो के वो ऐसे स्पाइरल शेप बना लेता है, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ साइक्लोन, ठीक है। सो यहाँ पे दिया है मैकेनिज्म क्या है, एयर विल कन्वर्ज, air converges at low pressure in the center and the surface and rises upwards. Air converges at the surface and rises upward, thus leading to cloud formation and precipitation, ठीक है। लो प्रेशर सेंटर पे रहेगा। देन इन द केस ऑफ एंटीसाइक्लोन व्हाट हैपेंस इज, हाई प्रेशर रीजन विल बी एट द सेंटर, ठीक है। तो क्या होगा, एयर विल सबसाइड फ्रॉम द अबव एंड डाइवर्ज एट द surface leading to stable fair weather, ठीक है। सो एंटी साइक्लोन इज समथिंग विच इज ऑपोजिट टू अ साइक्लोन। तो अगर कहीं पे भी हाई प्रेशर रीजन है सो दैट विल बी अ स्टेबल रीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से जो ट्रोपोस्फेयर वाली जगह से एयर ऐसे डिसेंड करेगी और यहाँ नीचे आके इट विल गो टू लो प्रेशर रीजन्स, ठीक है। तो जो हाई प्रेशर रीजन रहेगा दैट विल बी वेरी स्टेबल और बहुत ही काम रहेगा वहाँ पे, स्टेबल फेयर वेदर रहेगा उधर, ठीक है। नेक्स्ट वही विंड डायरेक्शंस तो हमने देख ली थी। सो नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टेम्परेट और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। सो ये टेम्परेट या जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ये वही फ्रंटोजेनेसिस की वजह से बनते हैं, है ना, अपलोडेड फ्रंट वगैरह। सो आई वेट, आई जस्ट टीच यू दिस। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में क्या होगा, देयर विल बी वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ओवर ओशंस इन ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, एंड दे ब्रिंग वेरी हेवी रेनफॉल, storm surges and widespread destruction in coastal areas. So Indian Ocean में it is known as a cyclone,
देन अटलांटिक ओशन में दीज आर नोन एज हरिकेन्स. वेस्टर्न पैसिफिक इट इज़ नोन एज टाइफून, ठीक है, जापान वगैरह में. एंड ऑन ऑस्ट्रेलिया इट इज़ नोन एज विली विलीज. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स एज वेल. नेक्स्ट टेम्परेट में देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वील जस्ट रीड अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, देन वील रीड अबाउट द टेम्परेट वंस सेपरेटली. या तो फिर साथ में पढ़ लेते हैं, इट विल बी बेटर इफ वी रीड इट टुगेदर. तो देखो, we have read about the tropical cyclones. अभी टेम्परेट में देखते हैं. They are large scale systems developing along the polar front in the middle and higher latitude regions. ठीक है, and beyond the tropics and are called as middle latitude और extra tropical cyclones. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं conditions of formation. So first of all, the sea surface temperature should be more than or equal to 26 to 27 degree Celsius up to 60 meter of depth. ये है sea surface का temperature. This is one of the conditions of formation of a tropical cyclone. फिर apart from that एक Coriolis force होना चाहिए वहाँ पे, है ना. Then there should, फिर there are small variations in vertical speed of the air, मतलब wind. ठीक है, वो भी एक फैक्टर है, कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर डिस्टर्बेंस होना चाहिए उधर. ठीक है, सो इन साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स साइक्लोन्स डू नॉट ओरिजिनेट बिकॉज आईटीसीजी नहीं होता है वहाँ पे, है ना. इंट्रो ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नहीं होता. ठीक है, तो ये दिस वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, वी हैड जस्ट डन द क्वेश्चन. ठीक है, तो बस यही पता होना चाहिए कि प्री एग्जिस्टिंग एंड लो प्रेशर डिस्टर्बेंस शुड बी देयर, लो प्रेशर एरिया शुड बी देयर. और आई टी सी जेड पे क्या होता है, आई टी सी जेड पे देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड द ईस्ट, वही ट्रेड विंड्स जो है ना, एक तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और यहाँ से क्या आएगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. बोथ ऑफ देम कन्वर्ज एट द आई टी सी जेड और वहाँ पे फिर साइक्लोन फॉर्मेशन हैपेंस. ठीक है, नेक्स्ट है अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम शुड ऑल्सो बी देयर. ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन. नेक्स्ट है, देखो इसको कैसे लर्न करना है. सी सरफेस टेम्परेचर को टेक इट एज 30 डिग्री सेल्सियस और एंड 60 मीटर डेप्थ. ठीक है, तो 30 60 इट विल बी इजियर टू रिमेंबर, है ना. सो दिस मच यू कैन रिमेंबर. ठीक है, नाउ वील बी लुकिंग एट टेम्परेट साइक्लोन्स. उसकी क्या क्या कंडीशंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन द टू एयर मासेस. ठीक है, एंड इट जनरली फॉर्म्स ओनली अलोंग अ पोलर फ्रंट. ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ these extra tropical cyclones takes place along a polar front. देन अपर एयर का डाइवर्जेंस होना चाहिए और इंस्टेबिलिटी होना चाहिए ड्यू टू फ्रंटोजेनेसिस. फ्रंटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रंट. ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने वी हैड रेड अबाउट फ्रंट्स, तो उसी में बात हो रही है. आई थिंक आउटलूडेड फ्रंट इज द वन वेयर इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टेक प्लेस. ठीक है, नाउ वी आर लुकिंग एट द लैटिट्यूड्स. सो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, एज द नेम सजेस्ट्स इट हैपन्स ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स. तो ट्रॉपिकल रीजन कहाँ तक है, 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ तक है. ठीक है, सो 10 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ. इट इज़ रेयर नियर द इक्वेटर बिकॉज वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं है. ठीक है, इट इज़ द कोरियोलिस फोर्स ओनली विच मेक्स द विंड्स गो इन दिस सर्कुलर मैनर. ठीक है, जो साइक्लोन में ऐसे सर्कुलर मैनर में फ्लो करते हैं ना विंड्स, कोरियोलिस फोर्स इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ठीक है, अच्छा हमने ये लर्न नहीं किया ना एंटी साइक्लोन और साइक्लोन का, हाँ, डायरेक्शन. वील ट्राई टू लर्न दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. देखो, एंटी जो साइक्लोन है और एंटी साइक्लोन, साइक्लोन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड क्लॉकवाइज इन सर्दर्न हेमिस्फेयर, whereas anticyclone is clockwise in northern hemisphere and anti-clockwise in southern hemisphere. इसको बस आप ऐसे learn this के these are उल्टा
इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो मतलब जो भी है उसका उल्टा होगा। यहाँ पे नाम क्या है, एंटी साइक्लोन, बट इट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में। वेराज यहाँ साइक्लोन है, इट इज़ एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। और इसी का ऑपोजिट विल बी प्रेजेंट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। नाउ वी वर लुकिंग एट लैटिट्यूड्स, तो हमने देख लिया था ट्रॉपिकल साइक्लोन का। नाउ वी विल बी लुकिंग एट द लैटिट्यूड फॉर टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है। तो इसमें 35 डिग्रीज टू 65 डिग्री नॉर्थ साउथ में we'll get temperate or extra tropical cyclones. ठीक है, so they are more pronounced in the northern hemispheres. This is important, do remember this. ठीक है, तो इसमें वही एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है, मतलब कि सब ट्रॉपिक्स वाला जोन कहाँ से कहाँ तक है, इट इज़ फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज, है ना। उसके बाद में फिर पोलर रीजन स्टार्ट हो जाएगा 60 to 90। ठीक है, सो इन दैट रीजन, सब ट्रॉपिकल वाला रीजन, we are having these extra tropical cyclones। ठीक है, सब ट्रॉपिकल नहीं, वो टेम्परेट रीजन रहेगा। सब ट्रॉपिकल एग्जैक्टली विल बी एट 30 डिग्रीज, देन आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग द टेम्परेट रीजन अप टिल 60, है ना, एंड दैट इज वेयर दीज साइक्लोन्स विल बी फॉर्म्ड, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वंस। नाउ मूवमेंट देख लेते हैं। सो these cyclones move from the east towards the west, है ना। सो दे विल बी मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स, और हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन क्या है, दे मूव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू, मतलब ईस्टर्लीज बोलते हैं ना उनको, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। तो दे मूव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ठीक है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, वेयर एज इन द सदर्न हेमिस्फेयर they will be moving from southeast to north west। ठीक है, so they move from east to west basically under the influence of trade winds, and they can also move। अच्छा, ये उसका हो गया, ट्रॉपिकल का हो गया। whereas in the case of temperate cyclones, वो they will be under the influence of westerlies। ठीक है, so they will be moving from west to east under the influence of westerlies। ठीक है। नाउ वी आर लुकिंग एट द नेचर एंड ओरिजिन। सो इसका थर्मल ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ओनली, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, दीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, सो दे आर ओवर इंटेंस लो प्रेशर और ओवर वार्म ओशंस, देर आर नो फ्रंट्स प्रेजेंट इन दिस केस, है ना। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन फ्रॉम द वार्म मॉइस्ट एयर प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर साइक्लोन्स। ठीक है, सो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या रहेगा, इट रेफर्स टू द हीट विच इज़, कंडेंसेशन होने पे हीट रिलीज होता है कि ऑब्जॉर्व होता है, इट इज़ कंडेंस हो रहा है ना, तो कंडेंस हो रहा है मतलब ऑब्जॉर्व कर रहा है हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मतलब कि द गैसेस आर अब्जॉर्बिंग हीट इन ऑर्डर टू बिकम वाटर, लिक्विड फॉर्म में आने के लिए। ठीक है, so latent heat of condensation from the warm moist air will be providing energy for the cyclones। Now we look at the frontal ones, yeah, temperate cyclone, वहाँ पे they have a dynamic origin and they are formed by frontal interaction between warm and cold air masses। और यहाँ पे there is a horizontal temperature contrast between the air masses which provides energy for extra tropical cyclones। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर कंट्रास्ट है बिटवीन द एयर मासेस। नेक्स्ट चलते हैं अक्रंस। सो अक्रंस कहाँ है होगा, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है दे विल फॉर्म ओनली ओवर वार्म ओशंस। ठीक है, एंड मोस्टली लेट समर ऑटम इस टाइम पे होगा। वेराज जो टेम्परेट साइक्लोन्स है दे फॉर्म ओवर लैंड एंड सी, दे आर इरेगुलर बट मोस्ट कॉमन इन विंटर एंड ट्रांजिशनल सीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर स्मॉलर इन साइज, तो उनका डायमीटर विल बी अराउंड 100 to 500 किलोमीटर्स। ठीक है, इनका प्रेशर ग्रेडियंट विल बी स्टीपर एंड सर्कुलर आइसोबार्स बन जाएंगे इनके पास में। ठीक है, और
प्रेशर ग्रेडियंट स्टीपर क्यों क्यों है? बिकॉज ये प्राइमरली हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच में इंटरेक्शंस की वजह से दे आर बीइंग फॉर्म्ड, है ना? दे विल बी हैविंग वेरी हाई स्पीड्स अप टू 250 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है? नेक्स्ट है दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ एज वेल, लेस than 1 week or so, and there is an eye present at the center, and that eye is warmer than the adjoining areas because वो low pressure region है ना? It will be the warmer region, that is why it is the eye, ठीक है? Now in mature and intense tropical cyclones there, ये क्या लिखा है? आइज विल बी प्रेजेंट एट द सेंटर ओनली इन मच्योर एंड इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो सारे साइक्लोन्स में आई नहीं होता है, इट इज़ ओनली इन सम साइक्लोन्स that there is an eye present. Then torrential rainfall will happen in these cyclones primarily due to cumulonimbus clouds, ठीक है? So cumulonimbus clouds are in this shape, वो ऐसे vertical shape के रहते हैं, ठीक है? They start from the bottom and they go up quite a lot, यहाँ पे ऐसे यहाँ से शुरू होके ऐसे लंबा सा रहेगा, ठीक है? Vertical height will be more. Next है the they do not have much relationship with jet streams, ठीक है? Then they affect the eastern coast of India, Bay of Bengal की में they get originated and they affect Odisha वगैरह, and west coast पे इतना it is not very common, west coast of India. Next we are looking at temperate cyclones. यहाँ पे they are larger in size. They go up till 2000 kilometers in diameter. And why is it so? Because air masses are also very large in size. ठीक है, that is why. Now they have very low pressure gradient. ठीक है, इनका जो isobar रहेगा it will be V shaped, है ना? एंड मॉडरेट विंड्स रहती हैं इनके केस में, एंड दे हैव अ लॉन्गर लाइफ ऑफ अप टू 3 weeks और सो. नो आई इज प्रेजेंट व्हेन इट कम्स टू टेम्परेट साइक्लोन्स, एंड देयर इज स्टेडी वाइड स्प्रेड रेन विद मल्टीपल फ्रंटल क्लाउड टाइप्स, ठीक है? यहाँ पे टोरेंशियल रेनफॉल नहीं होगा, इट विल बी स्टेडी रेन्स, एंड दीज आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेट स्ट्रीम्स एंड रॉस्पी वेव्स, ठीक है? अनलाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. नाउ these temperate cyclones also bring winter rains to northwestern India, as वो जो हमें पता है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के अंडर जो आता है, WD जिसको बोलते हैं. सो दे ब्रिंग विंटर रेन्स लोकली कॉल्ड एज महावत. महा इसको आप उससे लिंक कर लो, महान. महान मतलब वेरी बिग, है ना? तो दी साइक्लोन्स आर वेरी बिग, तो ऐसे करके यू कैन रिमेंबर 2000 किलोमीटर तो डायमीटर ही होता है इनका, है ना? सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. एंड इनको वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं इंडिया में, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी क्रूशियल फॉर राबी क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स कब ग्रो करते हैं? विंटर्स में, ठीक है? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राबी क्रॉप्स. नाउ वी विल बी लुकिंग एट, ठीक है? सो वी आर डन विद द टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं extreme weather and special events. So extreme weather events में there are many things which happen. For example, we have thunderstorms. Thunderstorm क्यों होता है? It is primarily due to intense convection at a pace, है ना? And it is associated with cumulonimbus clouds, lightning and thunder, ठीक है? बहुत ज़्यादा convection currents कहीं पे flow हो रहे हैं, then it will result in a thunderstorm. Then lightning क्या होता है? लाइटनिंग में जो क्लाउड का जो अपर ड्राफ्ट है दे कोलाइड, है ना? एंड द कोलिजन विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, वही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होगा. चार्ज सेपरेशन विल अकर, इट विल बिल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड when the breakdown voltage is exceeded then invisible negative scout zap creeps down to meet grounds पॉजिटिव स्पार्क, ठीक है? यू जस्ट नीड टू नो दिस टर्म कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है. एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड दिस रिजल्ट्स इन अ वेरी ब्राइट फ्लैश, ठीक है? और टेम्परेचर कितना हो जाता है? अराउंड 30,000 डिग्री सेल्सियस और सो. सो इट इज़ अ लॉट, ठीक है? और ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना रहेगा? इट विल बी 3 megavolt per meter, ठीक है? So 3 is the multiple which is being used दोनों केसेस में.
3 मेगावोल्ट कुछ रहेगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। उससे ज़्यादा अगर हो गया देन अ नेगेटिव, इनविजिबल नेगेटिव स्काउट जैप। जैप को आप ऐसे कर लो कि जैप करके, इट इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, lightning is very fast, so an invisible negative scout zap creeps down to meet ground's positive spark। ठीक है, दैट इज़ व्हाट लाइटनिंग एक्चुअली इज, है ना। एंड इससे ब्राइट फ्लैश होता है तो 30,000 डिग्री सेल्सियस हीट का देर बी जनरेटेड। ठीक है, फिर थंडर। थंडर क्या है होगा, फ्लैश विल सुपर हीट द एयर एंड इट विल एक्सप्लोड आउटवर्ड्स एज अ शॉक वेव। ठीक है, ये जो हो रहा है ना लाइटनिंग, उसी की वजह से अ शॉक वेव इज फॉर्म्ड। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट कॉजेज द साउंड। नेक्स्ट है ट्विन साइक्लोन्स को देख लेते हैं। ट्विन साइक्लोन्स क्या है? दीज आर टू साइक्लोन्स विच फॉर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। दे आर longitudinally similar but they will be in opposite hemispheres। ठीक है, and these are primarily caused by equatorial Rossby waves and thus rotate in opposite directions। ठीक है, so this is an important fact as well। Next we have interaction between true tropical storms within 1400 kilometers can lead to merging or track alteration। ठीक है, तो अगर दो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, स्टॉर्म्स हैं within the distance of 1400 kilometers, then both of them might get merged। ठीक है, देन बॉम्ब साइक्लोन बाय, अच्छा इसको फूजीवारा इफेक्ट बोलते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे? फूजीवारा, देखो फू मत से हो जाएगा फूक मारना, है ना। फूक मारना, फूक मारना कैन बी लिंक्ड टू साइक्लोन्स, है ना। विंड साइक्लोन इस सबसे लिंक कर सकते हैं हम लोग ट्रॉपिकल स्टॉर्म से। तो अगर दो जगह से फूक मार रहे हैं देन ऐसे मर्ज हो जाएगा, ऐसे करके कुछ भी यू कैन थिंक दिस समहाउ। ठीक है, देन बॉम्ब साइक्लोन। बॉम्ब साइक्लोन विल बी रैपिडली इंटेंसिफाइंग mid latitude storm and the atmospheric pressure in this case will drop by at least 24 millibars within 24 hours। ठीक है, इसको एक्सप्लोसिव साइक्लोजेनेसिस भी बोलते हैं, बॉम्ब साइक्लोन। ठीक है, सो रैपिडली इंटेंसिफाइंग मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म को बोलते हैं where the atmospheric pressure drops by 24 millibars within 24 hours। सो बॉम्ब साइक्लोन इट विल बी वेरी इंटेंस। ठीक है, फिर ब्राउन ओशन इफेक्ट। सो ब्राउन ओशन इफेक्ट अकर्स व्हेन साइक्लोन्स इंटेंसिफाई और सस्टेन ओवर लैंड ड्यू टू हीट एंड मॉइस्चर रिलीज फ्रॉम हॉट वाटरलॉक्ड सॉइल्स। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड ओवर द ओशन, है ना, एंड दैट इज़ वेयर दे रिसीव द मॉइस्चर फ्रॉम। बट इन केस ऑफ ब्राउन ओशन इफेक्ट जो साइक्लोन है क्या करता है, दे इंटेंसिफाई और सस्टेन ओवर लैंड बाय गेटिंग मॉइस्चर फ्रॉम द वाटरलॉक्ड सॉइल्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टर्म। ठीक है, so we are done with cyclones and extreme weather events. Now we'll be moving to water in the atmosphere। So as you might be knowing, water exists in the atmosphere in three different states। We have water in gaseous form, liquid and solid form। So its continuous circulation between oceans, atmosphere and land is primarily driven by solar energy and is known as the hydrological cycle। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है और everyone must be knowing this। Then while water vapor accounts for only 0 to 4% of the atmospheric volume, it is the primary driver of weather phenomena। ठीक है, now we look at this question first और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Why are dewdrops not formed on a cloudy night? तो इसका वो ये रीज़न रहेगा कि जो अर्थ का रेडिएशन इट इज़ बीइंग ट्रैप्ड, तो वार्म एयर रहेगी पूरी, है ना। सो दैट इज़ वाई देयर विल बी नो लो टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पे क्या क्या दिए ऑप्शंस? क्लाउड्स absorb the radiations released by the earth's surface, ये नहीं है। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक earth's radiation, this is correct।
सिंस दे रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन देयरफॉर टेम्परेचर हाई रहेगा. ठीक है, सो द items won't become cold and condensation temperature cannot be reached. ठीक है. नेक्स्ट क्या दिया है? द अर्थ's surface would have low temperatures on cloudy nights. ये नहीं. Clouds deflect the blowing wind to ground level. ये भी नहीं. So the answer is option B. ठीक है. नाउ वी आर लुकिंग एट कोर प्रोसेसेस. फिर फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन देखेंगे और टाइप्स ऑफ क्लाउड और प्रेसिपिटेशन ये सब देख लेते हैं. ठीक है. सो कोर प्रोसेसेस क्या है? इवापोरेशन. सो इवापोरेशन इज जस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस. ठीक है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है. तो इट इज़, अगर यहाँ पे मेरे पास ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है, इसको अगर इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू गैस, हाउ, और सेम टेम्परेचर का वाटर एंड सेम टेम्परेचर का गैस. ठीक है. सो हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड टू डू सो, दैट विल बी नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है. ड्राइवर्स क्या है? हायर टेम्परेचर्स इंक्रीज द एयर्स मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी. एयर मूवमेंट रिप्लेसेस सैचुरेटेड layers with unsaturated air and thus accelerating the process. ठीक है. तो ये नॉर्मल चीज़ है, पता है हमें कि हाई टेम्परेचर से मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है और एयर मूवमेंट से भी इवापोरेशन गेट्स इंक्रीज, मतलब इट्स रेट इंक्रीजेस. फिर कंडेंसेशन देख लेते हैं. इट रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड कॉज्ड बाय हीट लॉस. ठीक है. सो इसमें क्या होगा? दिस विल अकर व्हेन द टेम्परेचर रीचेस द ड्यू पॉइंट, है ना. इसको सैचुरेशन टेम्परेचर भी बोलते हैं ड्यू पॉइंट को. ठीक है. बिकॉज वहाँ पे इट मीन्स दैट द एयर हैज़ गॉटन सैचुरेटेड एंड देन इट विल स्टार्ट कंडेंसेशन. ठीक है. एंड एयर वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड और मॉइस्चर इज एडेड थ्रू इवापोरेशन. नेक्स्ट है कंडेंसेशन और हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई. तो ये क्या होता है? दीज आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दैट प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कलेक्ट ऑन. ठीक है. तो डस्ट, स्मोक, पोलन ग्रेन्स, सी सॉल्ट, ये सब दे एक्ट एज माइक्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई. ठीक है. देन वी हैव आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग. सो ये क्या होता है? दिस इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ इंड्यूसिंग रेन. इसमें क्या करेंगे? दे विल गो इन, मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह है ना, दे हैव डिवाइस्ड दिस मेथड बाय विच दे इंजेक्ट सम एरोसॉल और समथिंग लाइक दैट इनटू द एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो उससे क्या होगा? जो हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है वो मिल जाएगा. सो दे में inject some salt like silver iodide or something into the atmosphere, and once such condensation nuclei become abundant in the atmosphere, then the saturated air starts getting condensated. ठीक है. तो कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई. देन क्लाउड्स विल फॉर्म और फिर रेन माइट टेक प्लेस. ठीक है. तो ये है आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग. Now there are various forms of condensation as well. You have dew, frost, fog, mist and smog. ठीक है. तो we'll start with dew. So dew क्या होता है? These are water droplets which are deposited on cool solid surfaces when the dew point is above the freezing point. This is important. Dew point is above the freezing point. ठीक है. अगर dew point is below the freezing point, then frost will occur. ठीक है. ये लिखा है ड्यू पॉइंट इज एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. इन दैट केस वी विल गेट फ्रॉस्ट. ठीक है. नाउ फेवरेबल कंडीशंस क्या रहेंगे इसके लिए? क्लियर स्काई, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड कोल्ड लॉन्ग नाइट्स. ठीक है. नाउ क्लाउड्स जनरली रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन. सो अगर क्लाउडी नाइट है देन द इंटायर एटमोसफेयर विल बी वार्म. ठीक है. एंड दैट इज वाई ड्यू मे नॉट बी फॉर्म्ड. नेक्स्ट है फॉग. So, a fog is a mini cloud with its base at or near the ground, thus reducing visibility to less than 1 kilometer. ठीक है. नेक्स्ट है मिस्ट. मिस्ट इज सिमिलर टू फॉग बट इट कंटेन्स मोर मॉइस्चर. ठीक है. एंड ईच न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर एंड
visibility is typically more than 1 kilometer, whereas fog में it is less than 1 kilometer. Then smog क्या है? Smog is a combination of smoke and fog. ठीक है. So classical smog occurs in cold, humid climates. There are two types of smogs. One we have is the classical smog. The other one is photochemical smog. ठीक है. क्लासिकल स्मोक कहाँ पे होगा? इट विल अकर इन कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट्स. ठीक है. एंड दैट विल बी रिच इन सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है. वेयर एज फोटोकेमिकल स्मोक विल फॉर्म प्राइमरीली इन सनी क्लाइमेट्स. और ये किस चीज़ में रिच रहेगा? इट विल बी रिच इन नॉक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड VOC, दैट इज़ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, है ना. एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस कि फोटोकेमिकल में नॉक्स है और क्लासिकल में SO2 है. तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो. हाँ. ठीक है. क्लासिकल, जस्ट सेकेंड. हाँ. सो क्लासिकल है ना, CLASSICL, क्लासिकल. तो एस इसमें एस है, सो एस से SO2. ठीक है. देन यू हैव फोटोकेमिकल. फोटोकेमिकल में नॉक्स है और VOC बचा हुआ. ठीक है. सो क्लासिकल में SO2, बाकियों में नॉक्स एंड VOC. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट क्लाउड्स, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. सो क्लाउड होता क्या है? क्लाउड्स आर बेसिकली masses of water droplets or ice crystals formed in free air at significant altitudes. ठीक है. तो फॉग जैसा ही कुछ होता है, बट दे विल बी एट अ वेरी हायर ऑल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू फॉग. ठीक है. सो वी आर लुकिंग एट दिस नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द मीसोस्फेयर. मीसोस्फेयर में कौन से क्लाउड्स रहते हैं? वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दीज, द नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स, है ना. सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी अर्थ्स हाइएस्ट क्लाउड्स एंड दे आर विजिबल ओनली एट नाइट व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय सनलाइट फ्रॉम बिलो द होराइजन. ठीक है. तो दीज आर द हाइएस्ट क्लाउड्स एंड विजिबल ओनली एट नाइट. ठीक है. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स. उसके बाद में आएगा वी हैव द स्ट्रेटोस्फेयर, है ना. स्ट्रेटोस्फेयर में कौन से क्लाउड्स रहेंगे? सो stratosphere में first of all we have the polar stratospheric clouds. We had read about these also when we were studying jet streams and polar vortex. ठीक है. So these are beautiful iridescent mother of pearl clouds and they provide surfaces for chemical reactions that accelerate ozone depletion. और ये कब होगा? When the jet stream is strong. ठीक है. If the jet stream is strong then polar stratospheric clouds are formed and that is when ozone depletion will accelerate. ठीक है. So they are not very helpful for us. फिर higher ranges में we have cirrus clouds. Cirrus clouds are very thin feathery clouds and they are composed primarily of ice crystals. ठीक है. सिरस मतलब बहुत ही थिन फेदर टाइप है. फेदर में भी आर होता है और सिरस में भी देर इज आर. ठीक है. सो try to learn it by linking it with feather. Then you have थोड़ा सा कम हाइट पे क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं. ठीक है. सो क्यूमुलस क्लाउड्स आर ऐसे, क्यूमुलस मतलब क्यूमुलेटिव रहेंगे. दे विल बी ऐसे थोड़े से लंप्स रहेंगे, कॉटन का जैसे लंप्स होते हैं ना, वैसे रहेगा. इसमें कॉटन वूल अपीयरेंस रहेगा विद अ फ्लैट बेस एंड दे एग्जिस्ट इन पैचेस. ठीक है. सो ऐसे क्यूट से जो क्लाउड्स विच वी मेक इन आर व्हेन वी वर स्मॉल, है ना. तो हम लोग डायग्राम्स और पेंटिंग्स में बनाते थे, वो दोज वर क्यूमुलस क्लाउड्स. ठीक है. एंड दीज आर क्वाइट, इसको क्यूट से भी लर्न कर सकते हो या क्यूमुलेटिव से यू कैन रिमेंबर दिस. Now there is one more form of cumulus clouds known as the cumulonimbus. So I'll read about that later. पहले हम लोग stratus और nimbus देख लेते हैं, फिर then we'll move to cumulonimbus. Stratus clouds क्या रहेंगे? Strata. Strata मतलब कि layer. Strata, stratum. ठीक है. So they will be in the form of layers. These are layered clouds which cover large portions of the sky and they are formed by mixing of air masses. ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हाउ आर दे फॉर्म? दे आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस.
Then we have nimbus clouds. Nimbus clouds are the ones which carry a lot of water vapor, ठीक है, lot of moisture, and they result in rainfall. ठीक है, so these are dark, shapeless, dense clouds and they are exceptionally opaque to sunlight. ठीक है, तो जब भी हैवी रेन्स होते हैं यू विल सी वेरी डार्क, एक्सट्रीमली डार्क क्लाउड्स एंड दे डू नॉट जनरली हैव अ शेप, एंड दोज विल बी द निम्बस क्लाउड्स. ठीक है, निम्बस इसको उससे लर्न कर लो, हैरी पॉटर में the name of the broom on which he used to travel या play Quidditch was also Nimbus. ठीक है, तो उससे लर्न हो जाएगा. Then we have cumulonimbus. Cumulonimbus में क्या होगा? It will be a combination of cumulus and nimbus. ठीक है, so these are heavily developed vertical clouds with an anvil head. ठीक है, ऐसे बिल्कुल vertical रहेगा. These will be formed in tropical cyclones, thunderstorms, heavy rain, इन सब केसेस में. और एक ऐसे anvil head रहेगा. Anvil क्या होता है? ये ब्लैक स्मिथ्स वगैरह के पास में देर इज़ अ मशीन, मशीन तो नहीं बोलेंगे, इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसके ऊपर रख के दे क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई भी मेटल रखेंगे जिसको दे वांट टू आइदर हैमर और समथिंग लाइक दैट, दे वांट टू हैमर दिस मेटल और मे बी कुछ और इसको टर्न करके कुछ और बनाना है. तो ये एक टेबल जैसे काम करता है. ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग टेबल काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है, सो cumulonimbus has a anvil head and they are associated with thunderstorms. ठीक है, ये हो गया. So these were the major types of clouds which are present. ठीक है, so we'll again look at them once. तो mesosphere में we have the noctilucent clouds. ठीक है, they are generally visible only during dusk or dawn, जब sunlight will be um, from the sunlight will strike them from below the horizon. ठीक है, then we have winter और stratosphere में polar stratospheric clouds रहेंगे. then नीचे जाके cirrus clouds होते हैं which are feather like. then you have cumulus clouds which are very cute clouds, है ना, कॉटन बॉल्स जैसे. देन यू हैव स्ट्रेटस क्लाउड्स एंड वो लेयर्स के फॉर्म में रहेगा. निम्बस विल बी इन द फॉर्म ऑफ, मतलब दे विल बी शेपलेस एंड दे विल बी वेरी dark in color and they carry rain. Then we also have cumulonimbus which is a mixture of cumulus and nimbus. ठीक है, these are vertical clouds, anvil shaped, और lightning वगैरह thunderstorms के टाइम पे these are formed. Now we are looking at precipitation. So precipitation refers to the release of moisture when condensed particles grow too heavy for air resistance to hold against gravity. ठीक है, so what happens is यहाँ पे ऐसे पानी, ये कोई भी सपोज दिस इज अ हाइग्रोस्कोप हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, वी हैड रेड अबाउट दीज, है ना, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जिसके आसपास में कंडेंसेशन होता है. ठीक है, so consider that this particle which I have made is a hygroscopic nuclei. Wait a second. ठीक है, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है. ठीक है, इसके आसपास रहेगा पानी, है ना, ये ऐसे साइड साइड में. ठीक है, सो ये क्या होगा, दिस विल बी सस्पेंडेड इन द एयर. ठीक है, हाउ एंड बिकॉज दिस इज़ वेरी लाइट, है ना, जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, माइन्यूट एंड वेरी लाइट. That is why this will remain suspended in the air. However, a point will come when ऐसे करके बहुत सारे hygroscopic nuclei will come together. ठीक है, and water will condense around them. ठीक है, बहुत सारा पानी भी उनके अराउंड कंडेंस हो जाएगा. then what happens is इसका weight will become higher. ठीक है, and the air resistance will not be able to take the weight of this. अभी क्यों है हवा में, because of the air resistance that they are able to sustain there. However, what happens is after some time once this becomes heavy then gravity will take over and the air resistance will no longer be able to sustain the amount of weight. ठीक है, and this is when the rain occurs. Rain या any form of precipitation will occur.
ठीक है। प्रेसिपिटेशन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, दे कैन बी रेन और हेल स्टॉर्म, हेल में वो ऐसे बर्फ़ का रहता है, ठीक है। एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव स्नो, ठीक है। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। देयर इज ऑल्सो स्लीट, स्लीट इज समथिंग बिटवीन रेन एंड स्नो, ठीक है, उसका बीच का रहता है स्लीट, ठीक है। सो वील बी लुकिंग एट दिस, यहाँ पे दिया है हेलस्टोन्स के बारे में देख लेते हैं। दे आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स आर कैरीड थ्रू ऑल्टरनेटिंग कोल्ड एंड वार्म लेयर्स बाय पावरफुल अपड्राफ्ट्स, thus developing concentric layers, ठीक है। सो दे इट विल बी लाइक अ बॉल ऑफ आइस जैसा रहेगा। एंड वाई हैज दिस फॉर्म्ड इनटू अ बॉल ऑफ आइस, बिकॉज क्या हुआ है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है दे हैव बीन कैरीड थ्रू ऑल्टरनेटिंग कोल्ड एंड वार्म लेयर्स, ठीक है, बाय पावरफुल अपड्राफ्ट्स, therefore concentric layers have formed, ठीक है। एंड दैट इज बाय अ बॉल टाइप ऑफ शेप हैज फॉर्म्ड एज वेल, ठीक है। ये आप देख रहे हो कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं, है ना। देन वील बी लुकिंग एट ग्रोपल। ग्रोपल क्या होता है, दिस इज फॉर्म्ड व्हेन सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज ऑन टू द सर्फेस ऑफ अ फॉलिंग स्नोफ्लेक। सो दिस इज अ ग्रोपल, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल टू लुक एट, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, स्नोफ्लेक था एक नॉर्मल, वो स्नोफ्लेक पे हल्का सा पानी भी लग गया है, ठीक है। एंड दैट वाटर गॉट फ्रोजन ओवर दैट स्नोफ्लेक, सो दैट विल बी नोन एज ग्रोपल, इट इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट हेल, ठीक है। देन वी हैव वर्गा ऑल्सो। वर्गा क्या होता है, इट इज रेन ड्रॉप्स दैट इवापोरेट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, दैट विल बी नोन एज वर्गा, ठीक है। और स्नोफ्लेक तो पता है आपको, है ना, वो स्नो से बनेगा, है ना। देन स्लीट क्या होता है, स्लीट इज रीफ्रोजन रेन, ये यहाँ पे दिया है, स्लीट इज स्मॉल क्लियर आइस पेलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन ड्रॉप्स विच हिट्स द ग्राउंड एज सॉलिड आइस, ठीक है। सो दीज आर फ्रोजन रेन ड्रॉप्स। नाउ डू नॉट कंफ्यूज स्लीट विद हेल, है ना, वो ऐसे पूछ सकते हैं कि स्लीट हो रहा है कि हेल हो रहा है। स्लीट में रेन ड्रॉप्स विल बी फ्रोजन वंस, ठीक है। whereas in the case of hailstones what happens is repeatedly, एक बार वार्म फिर कोल्ड फिर वार्म लेयर्स ऐसे में, ड्यू टू द अपड्राफ्ट दे गो, एंड दैट इज वाई कंसेंट्रिक सर्कल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट ग्रोपल, एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस ग्रोपल, देखो इसको ऐसे लर्न कर लो कि स्नोफ्लेक के आसपास सम वाटर ड्रॉपलेट्स हैव ग्रोन, ठीक है, ग्रोन से ग्रोपल हो जाएगा, ग्रोन से ग्रोपल, ठीक है। और वर्गा क्या है, नीचे तक पहुंचा ही नहीं रेन ड्रॉप, ठीक है, इट इवापोरेटेड बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, है ना। सो रिमेंबर दैट वर्गा, तो इसको कैसे लर्न करेंगे, वर्गा मतलब कहाँ गया, ऐसे करो, यू कैन रिमेंबर दिस, वर्गा तो मतलब कहाँ गया से दिस इज राइमिंग के नीचे पहुंचा ही नहीं कुछ भी पानी, इट इवापोरेटेड ऑलरेडी, ठीक है। नाउ वील बी लुकिंग एट टाइप्स ऑफ रेनफॉल फॉर्मेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कन्वेक्शनल रेनफॉल, उसके बाद में ओरोग्राफिक रेनफॉल और रिलीफ रेनफॉल बोलते हैं इसको, एंड देन लास्ट में वी हैव साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होगा, इट इज़ कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन्स एंड कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस इज, देखो कन्वेक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना। सो कन्वेक्शन के केस में क्या होगा, नीचे हॉट एयर है, नीचे नहीं, मैं पहले तो हॉट सरफेस है, वो उससे द एयर इन contact with that surface will get heated up due to conduction, then this air will rise और फिर एक कन्वेक्शन करंट बन जाएगा, ठीक है। नाउ ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस इज cumulonimbus clouds are formed, and this is something which also happens during tropical cyclones, ठीक है। दिस इज समथिंग विच यू शुड बी नोइंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में भी कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, ठीक है। सो इट इज़ कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन्स एंड कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स एज वेल, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स में भी होता है, डू रिमेंबर दिस, ठीक है, क्योंकि हमें लगेगा कि नहीं वहाँ पे कोई वाटर सोर्स नहीं है जिससे इवापोरेशन होके फिर वो पूरा वाटर साइकिल कंप्लीट हो, बट नहीं,
इवन इन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स ऑल्सो कन्वेक्शनल रेनफॉल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे वही हुआ है, एज आई टोल्ड यू, यहाँ से वार्म एयर हैज रिजन, फॉर्म क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, एंड देन रेनफॉल हैज हैपेंड। ठीक है, देन वी आर लुकिंग एट ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल। इस केस में क्या होगा, इन केस देयर इज अ माउंटेन और सम सच रिलीफ स्ट्रक्चर, व्हाट विल हैपन इज, जो भी क्लाउड है इट विल परफोर्स हैव टू राइज अप। ठीक है, एंड सिंस वंस इट राइजेस अप इट गेट्स कूल्ड डाउन। ठीक है, तो वो क्लाउड क्या है, कूल डाउन हो जाएगा। कूल डाउन होने से व्हाट विल हैपन, रेन विल अकर। ठीक है, सो दैट इज ऑल व्हाट इज हैपनिंग। एयर असेंड्स ओवर अ माउंटेन, है ना। विंडवर्ड साइड पे एडियाबैटिक कूलिंग एंड कंडेंसेशन होगा, हेवी प्रेसिपिटेशन। Moist air will be ये, as I told you, moist air is forced to ascend because of the this thing, स्लोप। ठीक है, तो ये ऊपर जाने से क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सो व्हाट विल हैपन, कंडेंसेशन पॉइंट विल बी अचीव्ड। ठीक है, उससे फिर कंडेंसेशन होने लग गया तो इट माइट लीड टू रेनफॉल एज वेल। ठीक है, इसको एडियाबैटिक कूलिंग एंड कंडेंसेशन भी बोलेंगे इस प्रोसेस को। ठीक है, और फिर लीवर्ड साइड में क्या होगा, लीवर्ड साइड पे देयर विल बी नो रेन, है ना, क्योंकि वहाँ लीवर्ड साइड इज दैट साइड वेर इन नो विंड इज, मतलब विंडवर्ड साइड पे विंड सीधा आके लग रही है। ठीक है, लीवर्ड साइड पे देयर इज नो विंड एज सच कमिंग। ठीक है, सो लीवर्ड साइड विल बी द रेन शैडो रीजन। ठीक है, वहाँ पे नहीं हो पाएगा रेन, रेन पूरा इसी साइड हो गया, विंडवर्ड साइड हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। सो दिस जनरली अकर्स, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दीज, है ना। तो दो टाइप के हमने जो फ्रंट्स पढ़े, हमने वी हैड रेड अबाउट फोर टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। सो कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, एंड देन वी हैड रेड अबाउट स्टेशनरी फ्रंट एंड ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, तो ऑक्लूडेड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल विच टेक प्लेस। ठीक है, सो उसको ही देख लेते हैं, वही सेम चीज़ हैज़ बीन रिपीटेड ओवर हियर। आई विल जस्ट शो, दिस इज द थिंग, है ना। यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड फ्रंट के केस में देयर विल बी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स व्हिच विल बी फॉर्म्ड सिंस द वार्म एयर विल बी राइजिंग अप, मतलब कोल्ड एयर उसको पुश अप कर देगी तो एकदम से ऊपर चले जाएगा। ठीक है, सो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स विल बी फॉर्म्ड, whereas in the case of a warm front the clouds will rise आराम से। ठीक है, जेंटली, therefore वही निम्बस क्लाउड स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस, ये सब बनेगा। ठीक है, सो देन दे लीड टू रेन। सो दैट इज ऑल फॉर दिस। ये हो गया, क्लाउड्स वाला भी हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल हो गया, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू। We have done all the questions as well. ठीक है, thank you.